much. Thank you very much, and Assalamu alaikum everyone. Good day to you. आज सुबह का दिन आपका शुरू होता है सोचने से और इमोशनल इंटेलिजेंस से. सो आई एम श्योर सबका नाश्ता हुआ है, दिमाग खुले हुए हैं, इसलिए बिकॉज इसमें दिमाग बहुत सारा चाहिए. Actually, as a teacher and as a faculty member, always you're thinking, है ना. और बचपन से जब से आपने पढ़ना शुरू किया तभी भी सोचते थे, लेकिन पढ़ाने के वक्त जरा सोच की challenges और तरह के होते हैं. So what this is going to be is teaching you life skills, and two life skills which are very important. One is critical thinking, and the second one is emotional intelligence. And we're going to be talking about critical thinking first. Kindly इनके जुल्करनैन साहब माइक इनके बंद करवा दीजिए, हर किस्म के रिक्शे टैक्सियों की आवाज़ें आ रही हैं. Okay जी. So what we have, there are many kinds of thinking, and you all, some of you perhaps जिन्होंने philosophy या psychology पढ़ी हुई है, उनको पता है critical thinking भी होती है, creative thinking, problem solving thinking, और किस्म की thinking. So there are many more forms of thinking. Logical thinking भी है, और जिन्होंने science पढ़ी हुई है, biological sciences, chemistry, physics, mathematics, वो भी scientific thinking एक होती है. And there are sequential, चाहे आप इंडक्टिव लॉजिक इस्तेमाल करें चाहे डिडक्टिव लॉजिक इस्तेमाल करें, सीक्वेंशियल थिंकिंग होती है ऑफ हाउ टू रीच सर्टेन कंक्लूजन्स. सो critical thinking, creative thinking, also problem solving thinking, logical thinking, scientific thinking, वगैरह वगैरह वगैरह, many forms. Actually critical thinking जो है is very focused. Critical thinking is different because बाकी भी होंगे, लेकिन इसकी it is being responsive to variable subject matter, the issues, the purposes at hand, how to get and analyze the issues that you face. And this is part of, as I said before, a family of interwoven modes of thinking. Among them, scientific thinking, जैसे आप जिन्होंने PhD की है उनको पता है रिसर्च के लिए एक खास फॉर्मेट होता है थिंकिंग का. If then, mathematical thinking, where you derive from formulas, where you derive conclusions, and very abstract. A scientific thinking can be abstract, but at the same time can be based on your laboratory experiments and the conclusion you draw thereof. Historical thinking, ये भी सोच है. अब हम पार्टीशन की बातें करते हैं तो उसकी एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, या हम जो पॉलिटिकल सिचुएशंस की जो पीछे गुजरे हुए साल, पिछले 70 से डेकेड, 7 डेकेड्स हमारे जो गुजरे हैं उनकी एनालिसिस, या उससे पहले की जो हिस्ट्री की लोग बातें करते हैं, हमारे हिस्टोरिकल फिगर्स की जो पुरानी हिस्ट्री की एनालिसिस करते, दैट इज यूजिंग हिस्टोरिकल थिंकिंग. And then there is anthropological thinking. Anthropological thinking is that kind of thinking where you take social issues and issues of cultures, issues of tribes, issues of differences between different kinds of systems, social systems and cultural systems and tribal systems, और उनके अंदर से commonalities. So anthropological thinking, so thinking about societies and analyzing what is within them. Economic thinking, ये तो आप रोज अगर टीवी खोल के देखें तो वहाँ पर बोल रहे होते हैं इकोनॉमिक्स के सोशो इकोनॉमिक हालात ये हैं, फाइनेंशियल हालात ये हैं. तो इकोनॉमिक थिंकिंग इज एक्चुअली looking at the financial systems of a country or of the nation or of the world, and then comparing and deriving conclusions from that. Moral thinking वो thinking है जिसमें हम सोचते हैं कि ये गलत हुआ या सही हुआ, ये is it acceptable under the norms, it is not acceptable. तो moral thinking जो है बिल्कुल एक different mode of thinking है. इसी तरह philosophical thinking, इसमें एब्स्ट्रैक्शंस में प्रॉब्लम्स के ऊपर सोचते हैं, ये यूनिवर्स का मकसद क्या है,
ये पनिशमेंट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये लॉज होने चाहिए, ये गुनाह क्या है, ये सज़ा क्या है, ऐसी ऐसी सोचें फिलोसफर्स निकालते हैं। और कभी मैंने क्रिटिकल थिंकिंग का जो कोर्स में बहुत एक्सपेंशन में पढ़ाती हूँ, उसमें फिलोसफर्स की बातों पे भी जाती हूँ और उनको भी बताती हूँ कि क्या क्या हर एक ने कहा है। एंड आगे में एक फिलोसफर जो हम इसको बेस करते हैं, उसकी भी मैं आगे स्टेटमेंट दूंगी कि एनालिसिस करना, सेल्फ एग्जामिन करना, फिलोसफर्स यही काम करते हैं। लेकिन ये दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हाट इट डज इज लीड्स पीपल टू प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। वहां एब्स्ट्रैक्ट सोच से निकलती। हम यूनिवर्सेस तक तो नहीं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो है वो पूरे यूनिवर्सेस की बातें करते हैं, हम पहुंच तो नहीं सकते ना, लेकिन इनकी सोचों की आप होराइजन देखिए कितना बड़ा है। तो इसी तरह से देर आर ऑल काइंड्स ऑफ थिंकिंग दैट वी कैन टॉक अबाउट, बट let's focus on two kinds of thinking, and I'm going to be talking about the critical thinking and the creative thinking, and then of course the problem solving thinking, which is decision making. अब इसको आप कार्टून को देखें तो इस कार्टून के आप देख रहे हैं दिमाग बहुत बड़ा है और सोचें चल रही हैं उसमें। ओके, एक तरफ आप देखते हो क्रिटिकल थिंकिंग है। क्रिटिकल थिंकिंग अगर इस कार्टून के ऊपर, छोटे कार्टून को देखें, वो एनालाइज कर रहा है, माइक्रो वो लगा के ना दूरबीनें और अपनी माइक्रोस्कोप, ये जो कुछ भी है ना, जस्ट टू एनालाइज। सो एनालाइज, इवैल्यूएट एंड रीजन व्हाट इज विजिबल और व्हाट इज नॉट विजिबल, उनको उस पर एनालिसिस करना, इवैल्यूएट करना जो कुछ चीजें नजर आ रही, एंड रीजन टू रीच द बेस्ट कंक्लूजन। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, क्रिएटिव थिंकिंग है। क्रिएटिव थिंकिंग इज, ये जब लाइट बल्ब है, इसका मतलब नई चीजें सोचना, नई इन्वेंशंस बनाना। अब ये जितनी आप आजकल कंप्यूटर की लैंग्वेजेस इस्तेमाल कर रहे हो, कंप्यूटर के सेटअप इस्तेमाल कर रहे हो, आईटी के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर, ये क्या है? नए आइडियाज, नई किस्म की कारें हैं बिजली से चलने वाली, ये क्या है? ये नए आइडियाज हैं। दिस emerged out of creative thinking, and दोनों मिलके they arrive at what we need to problem solve। जो प्रॉब्लम एट हैंड है उसको सॉल्व करने के लिए हमें दोनों किस्म की थिंकिंग, इंडिपेंडेंट रास्ते इस्तेमाल करते हैं, और डिसीजन मेकिंग के लिए भी दोनों के इंडिपेंडेंट रास्ते। अब गौर से नीचे इस कार्टून की तरफ आइए। कार्टून के एक तरफ लिखा हुआ लेफ्ट और दूसरी तरफ लिखा हुआ राइट। नाउ लेफ्ट एंड राइट मीन्स इट्स नॉट जस्ट द ईयर्स, it's the part of the brain that is being used to do critical thinking. The left hemisphere of the brain does the critical thinking, mathematical thinking भी इसी में आती है, abstract thinking भी इसी में आती है, और right hemisphere thinking जो है वो imagination, extension of images को इस्तेमाल करती है। सो ये राइट हेमिस्फीयर इज मोर स्पेशल, इसलिए वहां पर आपकी क्रिएटिव थिंकिंग जाती है, और लेफ्ट हेमिस्फीयर इज मोर एब्स्ट्रैक्ट, मोर लैंग्वेज बेस्ड, नॉट पिक्चर बेस्ड, तो वहां पर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इस्तेमाल होती है ना। इंटरेस्टिंग बात है ना, हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि हमारे दोनों हेमिस्फीयर अलग-अलग सोचते हैं, लेकिन है। और इसी से मजे की बात यह है कि फिर दोनों they come together to help you solve a problem। फिर आप देखिए, अब क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग का हम फिर से इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। इमेजिन, क्रिएटिव थिंकिंग क्या है? इमेजिनेशन, इन्वेंशंस, चेंज बनाना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, डिजाइन करना। जैसे हमारे आर्किटेक्ट्स है, घर डिजाइन करते हैं, या आर्टिस्ट हैं पेंटिंग करते हैं, तो वो उनकी क्रिएटिव थिंकिंग, सो दे क्रिएट व्हाट इज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग और ऑल्टर व्हाट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग
टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो ये क्रिएशन का एक सोच। उसके बाद आपकी क्रिटिकल थिंकिंग आती है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या करती है? एनालाइज, जैसे मैंने पहले कहा, और ब्रेक डाउन करती है ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द फीचर्स दैट यू हैव बिफोर यू, ऑफ द प्रॉब्लम दैट यू हैव बिफोर यू। यू कंपेयर डिफरेंट सॉल्यूशंस, कैटेगराइज देम। ये हम सोच के नहीं करते कि अब मैं कैटेगरी बना ले रहा हूँ। ये कैटेगरी खुद ही आपकी ब्रेन इनको, वो कंप्यूटर जैसे है ना प्रोग्राम, क्या कहते हैं उसको, इस डब्बे में डाल दो, इसको इस डब्बे में डाल दो, वो बॉक्सेस बनाते जाते, ये ब्रेन खुद ही कर लेती है। सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस खुद ही निकालती है। एंड देन लिस्टिंग इट, सीक्वेंसिंग इट, कौन से इवेंट्स पहले आए, कौन से बाद में आए, इसका नतीजा क्या निकलेगा। And ranking the solutions, the best possible solutions that you might have. तो ये दोनों मिलके क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग मिलके प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग की तरफ लेके जाते हैं आपको। क्या होता है वहाँ, हम क्या कर रहे थे? वी नीड टू इम्प्रूव, वी नीड टू रीडिजाइन, रिफाइन और फाइंड सॉल्यूशंस। These above. तो अब हम अगर देखें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग इस कार्टून में क्या है? एक चीज याद रखिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग इज टाइड टू अ प्रॉब्लम। वो एक प्रॉब्लम आपके सामने आया है, आप कॉलेज में हैं, इवेंट कराना है, पैसे नहीं है, सोचें इसको कैसे मसले को हल करना है। या स्टूडेंट का डिसिप्लिन का प्रॉब्लम आया, सोचें कैसे हल करना है। या एग्जाम का पेपर बनाना है, सोचें। तो what you do every time is you do problem solving thinking, you find solutions to the problem. So problem आता है, परेशान होता है, how to do it? आपको प्रिंसिपल साहबा ने कह दिया ये करना है आपने, या एचईडी की तरफ से आता है ये करना है आपने, तो प्रॉब्लम सामने आता है तो सोचने लगता है, दिमाग चलता है, एंड देन यू अराइव एट अ सोल्यूशन कि उसको इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। इसको थोड़ा सा हम आगे भी एक्सपैंड करेंगे, लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ जरा आइए। क्रिएटिव थिंकिंग फिर क्या है? वो इट इज अ वे ऑफ लुकिंग एट प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस फ्रॉम एन एंटायरली न्यू पर्सपेक्टिव। बिल्कुल डिफरेंट चीज सोचना। एंड इसका एक जो वर्ड इन्होंने यूज किया है, अनऑर्थोडॉक्स सॉल्यूशंस, यानी कि जो गिवन सॉल्यूशंस है उससे बिल्कुल हटके। हम जैसे बच्चे को देखते हैं ना कि इसको इस तरह से जोड़ लो, वो कहता है ऐसे क्यों नहीं जोड़ सकता। वो हमारी सोचें फिक्स हो गई हैं, वो एक क्रिएटिव सोच रखते हैं बच्चे। अब मैं आगे जाके बताऊंगी क्यों। सो क्रिएटिव थिंकिंग कैन बी स्टिमुलेटेड बाय बोथ एन अनस्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग। आइडियाज आते हैं ना, मीटिंग में बैठे हैं, आप कहते हैं अच्छा ये करके देखिए, ये करके देखिए, ये करके देखिए, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। लेकिन आइडियाज आ रहे हैं ये बारिश की तरह, ऊपर से सोच रहे हैं, निकल रहे हैं आइडियाज, फिर इसी में से फिर आपका निकलेगा द सॉल्यूशन। दूसरी जो है स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, जिसको हम कहते हैं लैटरल थिंकिंग। ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगी लैटरल थिंकिंग क्या होती है और ये किस तरह से इसको चलाते हैं। और कई ऑर्गेनाइजेशन लाइक जो बिजनेसेस हैं, ह्यूज मल्टीनेशनल्स। आपका क्या ख्याल है, कोक का नया जो इश्तेहार आया वो किधर से निकला? क्रिएटिव प्रोसेस से। या उन्होंने जो कोक स्टूडियो बनाया, क्यों? कहीं से प्रोसेस में से ये एक आइडिया निकला कि इसको चला के देखें। कल मुझे एक बच्ची मिली जो कहती है, एक नाम नहीं मैं लेना चाहती, लेकिन एक टिश्यू के डब्बे हैं, कहती है कि मेरा आइडिया है, इसके नीचे जो लगी हुई है आपकी लेटरिंग और वो नजर आते हैं कि जी इसको सेल करने के लिए किस तरह से हम इसको मार्केट में लेके जाएं, कलर चेंज करें या एक्सपैंड करें, व्हाटएवर। तो व्हाट इज दे डूइंग इज ये दिस इज अनस्ट्रक्चर्ड प्रोसेस व्हिच इज लीडिंग देम टू क्रिएट। एंड ये जो गाने लिखते हैं ये भी, या शायरी करते हैं, वो भी नई चीज क्रिएट कर रहे होते हैं ना। अशार वही होते, लफ्ज वही है, लेकिन द वे दे आर प्लेस्ड, दे आर
coming out in a different combination. So creative thinking can be stimulated both by unstructured process जो ग्रुप में हम डिस्कशन करते हैं और by a structured process which is lateral thinking, thinking out of the box. अच्छा, इसको जरा कंपेयर अगर हम करते हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग में हमें नजर आता है क्या शुरू कहाँ से होता है। शुरू कहीं से होता है, वहीं से कि आपको पता चलता है कि आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि प्रॉब्लम आया है। आइडेंटिफाइंग, फॉर्मुलेटिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम वहां से शुरू होता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिकग्नाइजिंग दैट देयर इज अ प्रॉब्लम सिचुएशन एंड वी नीड टू रिजॉल्व। दूसरा में अगेन क्रिटिकल थिंकिंग recognizes, uses inductive thinking to solve problems. और प्रॉब्लम सॉल्विंग में डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, जैसे आप अपने थीसिस में नहीं करते या पीएचडी या मास्टर्स आपने किया, डिफाइन द प्रॉब्लम टीचर कहता है या सुपरवाइजर कहता है, तो डिफाइन करते हैं क्योंकि आइडिया तो बड़ा वेग था, वो कहता है नहीं डिफाइन करो, उसको आप क्लियर करो, सो डिफाइन द प्रॉब्लम। और तीसरे ये आपका है कॉम्प्रीहेंड, डेवलप एंड यूज कॉन्सेप्ट्स एंड जनरलाइजेशंस। ये कॉमन है दोनों में, दोनों में सोच के चाहिए, सोचना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एंड देन वर्किंग ऑन डेवलपिंग एंड यूजिंग न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड देन अराइविंग एट जनरलाइजेशंस। जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है वो, उसमें क्रिटिकल बात ये है कि वो ओपिनियन और फैक्ट के दरमियान बड़ा डिफरेंशिएट। ओपिनियन इज जजमेंट, जजमेंट से क्रिएटिव थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हो सकती, फैक्चुअल बेस्ड होती है क्रिटिकल थिंकिंग। सो फर्स्ट, जब तीसरे स्टेप पे आप जाते हैं, चौथे पे, तो डिस्टिंग्विश करो कि ओपिनियंस क्या हैं और फैक्ट्स क्या हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग में यू, जैसे आपकी थीसिस में आपने किया, यू टेस्ट योर हाइपोथेसिस टू गो एंड गो आउट एंड गैदर डेटा। इस वक्त मेरे 3-4 पीएचडी स्टूडेंट्स यही काम कर रहे हैं, और फिर वो जाके डेटा को देखते हैं क्या ये हमारी हाइपोथेसिस को फिट हो रहा है कि नहीं। Otherwise, they revise their hypothesis and test a new hypothesis. So, recycling a procedure. और क्रिटिकल थिंकिंग का एंड में क्या है, यू ड्रॉ अ रीजनेबल कंक्लूजन फ्रॉम इंफॉर्मेशन फाउंड इन वेरियस सोर्सेज। It could be written, it could be spoken, it could be tabular, it could be graphic, it could be anything. And then you are able to defend your conclusions rationally. Now, word that is very important in critical thinking is rationally. बड़ी factual based rational thinking है। And problem solving thinking में you form a conclusion which you will go back and test अगर दोबारा ठीक नहीं होता। अब critical thinking, what is it and why is it important and how does it improve teaching and learning? हमारे लिए, आपके लिए जो टीचर्स हैं उनके लिए क्यों critical thinking important है? क्योंकि आपने अपने स्टूडेंट्स में भी critical thinking डेवलप करनी है, खुद critical thinking थिंकर होना है और उनको भी critical thinking डेवलप करनी है। Critical thinking is what? The art of analyzing and assessing thinking, यानी अपनी सोच को एनालाइज करो, उसको असेस करो in order to improve it. कितना मुश्किल काम है। सोच रहे होते हैं जब, तो आप रुक के कि मेरी ये सोच ठीक है, मुझे ये इसको एनालाइज करो कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसमें मेरा गुस्सा तो नहीं शामिल, इसमें दूसरे का लिए जेलसी तो नहीं शामिल, इसमें मुझे कोई अदर नेगेटिव इफेक्ट्स या इवन पॉजिटिव इफेक्ट्स शामिल तो नहीं। तो एनालाइजिंग एंड असेसिंग थिंकिंग इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट। सो फोकस है हमारा सोच पे। एंड सबसे क्रिटिकल बात यह है कि क्रिटिकल थिंकिंग इज ट्राइंग टू वेकन your intellectual capacities to study the intellect and the thinking itself.
कितना ये कोई आसान काम है? सोच के सोचना, सोच के ऊपर सोचना, सोचने को दशक करना। अरे भाई, हम कहते हैं शुक्र करो हम सोच रहे हैं, लेकिन अब स्टूडेंट आपको कहेंगे मैडम ये क्या काम आपने मुझको दे दिया। सोचने का काम, हमने तो याद करना, एग्जाम पास करने। लेकिन अगली बात मैं आपको बताती हूँ क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूमन ने ये कहा है, अ मैन में hear 1,000 lectures, read 1,000 volumes, and be at the end of the process very much where he was as regard knowledge. है इतना कुछ पढ़ लिया, इतना लेक्चर सुन लिए, फिर भी नॉलेज के मारे में हम वहीं पे हैं जहाँ शुरू हुए थे। Something more than merely admitting it in a negative way into the mind is necessary if it has to remain there. दिमाग में चीज को रखने के लिए, वहां उसको अपनी जगह बनाने के लिए सिर्फ कानों से सुन लेना और आंखों से पढ़ लेना काफी नहीं है। उसको अंदर जगह बनाने की के लिए जरूरी है, ये आपके स्टूडेंट्स के लिए। सो इट शुड नॉट बी पैसिवली रिसीव्ड but actually and actively entered into, embraced and mastered. चाहे फिजिक्स की, चाहे साइकोलॉजी की, चाहे बायोलॉजी की, जो भी आप पढ़ा रहे हो उसको अंडरस्टैंड करना, उसको एक्टिवली एनालाइज करना के अंदर, एंड मास्टर, सिर्फ फॉर्मूले याद करना नहीं। एंड द माइंड मस्ट गो हाफ वे to meet what comes from it to it from without. So काम दिमाग ने भी करना है, पैसिवली रिसीव नहीं करना है। एंड न्यूमन की ये बात बड़ी सही है, लेकिन उससे भी सही एक और बात भी है। टाकिंटन ने कहा, ये एक किसी की बात, और ये हमारे हर स्टूडेंट की बात है जो नंबर 1100 में से 1050 ले लेते हैं, 1050, 50 नंबर कटे कहाँ से? और वो बच्चे नंबरों के हिसाब से तो टॉप है। लेकिन ये जरा सुन लीजिए, टार्किंटन ने बिल्कुल ये बात सही कही है। He had learned to pass how to pass examination by cramming, that is 3 or 4 days and nights, what he could get into his head, enough of a selected fragment of some scientific or philosophical or literary or linguistic subject to reply plausibly to 6 questions out of 10. जब हम चॉइस देते थे ना, तो यही होता है। बच्चा जो है वो, उसको पता है कि ये क्वेश्चंस, पिछले क्वेश्चंस देख लिए, पिछले सालों के, ये क्वेश्चन जरूर आता है, उसके लिए याद कर लिए। He could retain the information necessary for such a feat, that is passing the exam, just long enough to give a successful performance. Then it would evaporate utterly from his brain and leave him undisturbed. है ना? हम कहते हैं इतना पढ़ा है फिर कहाँ गया, आपको कुछ ही याद नहीं है। वो कहेगा जी मैं आपको 2 एग्जाम्पल देती हूँ। एक, मैं जब वाइस चांसलर थी तो एक कॉन्फ्रेंस में गई हूँ, तो कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज़ की, तो ऑस्ट्रेलिया में थी, तो एयरपोर्ट पे मैं बैठी हुई थी और मेरे साथ आ गया एक अफ्रीकन यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर। हम बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा देखो, जहाज़ का इंतज़ार करते, मैंने कहा देखो कई हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ लिख के भी लगता नहीं है कि यूनिवर्सिटी में पढ़े। वो कहता है यस वी हैव अ फ्रेज फॉर देम। वो क्या? He has gone through the university, but the university hasn't gone through him. मैं कहा एग्जैक्टली, है ना, यही हमारा डिलेमा है, यही हमारे जितने पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ हो रही, वो सिर्फ पढ़ के नंबर ले लो, ये हमारा टारगेट है। फिर एक और एग्जांपल, जब फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी में थी तो मेरी कोशिश होती थी कि स्टूडेंट्स को, वैसे तो टेस्ट कोई नहीं था, लेकिन इंटरव्यू करती थी, और 3 दिन या 4 दिन पे जितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था उनको टीमें इंटरव्यू करती थी। एक मुझे याद है इकोनॉमिक्स की बच्ची आई और उसके नंबर थे मेरा ख्याल है 180 या
70। तो इकोनॉमिक्स की जो प्रोफेसर साहबा थी बड़ी खुश हुई, कहती मैडम इसको तो ज़रूर लेना, ये बहुत अच्छी। तो उन्होंने, मैंने कहा जी सवाल जवाब कर लेते हैं, पूछते हैं उससे। उससे पूछा तो उसने कहा कि ये तो मुझे सवाल नहीं आते, ये तो मुझे सवाल नहीं आते, जवाब नहीं आते, कुछ भी जो मॉडर्न डे इकोनॉमिक्स के इश्यूज थे। आपने पूछा कि नंबर कैसे आए? कहती वो मैडम सिलेक्टेड स्टडी की थी, जो सवाल मैंने याद किए थे, जवाब याद किए थे, वो आ गए एग्जाम में। वो फर्स्ट डिवीजन से भी टॉप, अमंग द टॉप नंबर ले गई। उसको इकोनॉमिक्स का इतना पता नहीं था। ऑन द अदर हैंड, एक उसी बैच में एक बच्ची आई जिसकी थर्ड डिवीजन 2 नंबरों से रह गई थी। तो वो आके कहने लगी कि तुम इकोनॉमिक्स, मैंने कहा क्यों जाना चाहती हो? आई हैव अ पैशन फॉर इकोनॉमिक्स। मैं कहा पैशन तो तुम्हारा इकोनॉमिक्स का है, नंबर तो तुम्हारे देखो, क्यों इतना नंबर कम आए? कहती है मैं किताबें सारी पढ़ती हूँ, मैं इतना पढ़ती हूँ इकोनॉमिक्स के बारे में। हमने कहा अच्छा इसको टेस्ट कर लेते हैं। मैडम ने कुछ, वो जो प्रोफेसर साहिबा थी, उन्होंने इतने मुश्किल मुश्किल सवाल, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड, इन्फ्लेशन से रिलेटेड, उस जमाने में जो जो इशू थे, वो फटफट जवाब देती जा रही थी। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर आपने एक स्टूडेंट को क्रिटिकल थिंकर बनाया है, तो उसके अंदर नॉलेज रिटेन हो जाता है, एंड नॉलेज विल हेल्प दैट स्टूडेंट प्रोसीड फर्दर। तो व्हाइट हेड ये कहता है, हम जो कर रहे होते हैं और अभी भी करते हैं, the result of teaching small parts of a large number of subjects is that student has a passive reception of disconnected ideas. Physics अलहदा पढ़ाई जा रही है, बायोलॉजी अलहदा पढ़ाई जा रही है, मैथमेटिक्स अलहदा पढ़ाई जा रही है, केमिस्ट्री। क्या आपने बायोकेमिस्ट्री या न्यूरोफिजिक्स या बायोफिजिक्स का रिलेट किया है कहीं? नहीं ना, अलग अलग। सो वो कहता है छोटे छोटे टुकड़े हम पढ़ाते हैं लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में, और व्हाट वी हैव इज डिस्कनेक्टेड आइडियाज which are not illuminated with any spark of vitality. So what you need to be doing is, main ideas which are introduced into a child's education may be few and important, and let them be thrown in every combination possible. सो स्टूडेंट सही मानों में याद रखेगा, सही मानों में एनालाइज करेगा। इसमें 2 एग्जाम्पल और मैं आपको देती जाती हूँ। एक मेरा, मैं जब अमेरिका फुल ब्राइट फेलोशिप पे गई थी, बच्चों को भी ले गई थी, बेटा मेरा जूनियर हाई में था, तो मैं उसके स्कूल एक दिन गई, मुझे पता नहीं क्या काम था, तो मुझे पता चला फिजिक्स की क्लास हो रही है, तो मैं गई उसके क्लास में। तो मैं देखूं लड़के बच्चे बहुत सारे टीवी उनके सामने पड़े, मैं खोल के बैठे हुए, 2-2 करके एक एक टीवी का, और टीचर फिर रहा है कमरों में, क्लासों में, जिस तरह भी। तो मैंने पूछा ये क्लास हो रही है? कहता हाँ, इनको जितना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ मिलेंगे, टीवी खोलेंगे, इसके जितने सर्किट्स हैं, इसके जितने इंटीग्रेटेड, वो, मैं कहती हूँ मैं हैरान हो गई, ये भी तरीका है पढ़ाने का। कहता है इसी तरह सीखेंगे ये। मैंने कहा बहुत। इसी तरह एक और एग्जांपल है मोर रिसेंट, मेरी बेटी पोस्ट डॉक कर रही थी ओरेगन में, तो उसका जो प्रोफेसर जिसके साथ वो रिसर्च कर रही थी, बड़ा ही सीनियर प्रोफेसर, वेरी वेल रिस्पेक्टेड, लेकिन वो इतना सीनियर प्रोफेसर था, मस्ट बी इन हिज 80s, लेकिन वो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की जो अमेरिका में क्लास आती थी ना 101, उसको जरूर पढ़ाता था। तो मेरी बेटी चूंकि प्रोफेसर के साथ थी, उसको असिस्ट करती थी उस क्लास में। तो मुझे मेरी बेटी कहने लगी कि ये इसका बड़ा अनोखा तरीका है पढ़ाने का, ये बायोलॉजी 101 शुरू कैसे करता है? उसकी कलेक्शन थी पुराने टाइपराइटर्स की, उसको शौक था टाइपराइटर्स इकट्ठे करने का, वो ले आ। मुझे भी कहा कि उर्दू का टाइपराइटर मिले तो वो ले आना, खैर मुझे मिला नहीं, लेकिन वो टाइपराइटर ले जाता था पहले दिन क्लास में, और 2-2 स्टूडेंट को एक टाइपराइटर दे देता था कि इस पे काम करो। अब ये स्टूडेंट जो हिले हुए हैं आपकी पाम टॉप्स पे या स्मार्टफोन्स पे,
उनको जब ये टाइपराइटर या इनके लैपटॉप्स हैं, कैसे चलेगा भाई ये? ठुक ठुक करके कीज, कैसे कागज कैसे इसमें जाएगा, रोल कैसे किया जाएगा? फिर अगर एक लाइन खत्म हो जाती है वो आगे कैसे जाएगी? फिर अगर कागज डालना कैसे, निकालना कैसे? कहता है, मैं चुप करके, मैंने उससे फिर मिली, मैंने कहा ये मुझे बेटी बता रही थी कि तुम्हारा बड़ा इनोवेटिव तरीका है पढ़ाने का। कहता है ये मैं इनको थिंकिंग सिखाता हूँ कि जब तक आप ये इवॉल्व नहीं करते ना, तो बायोलॉजी क्या है? अगेन टू रीच आउट इनटू द सिस्टम्स एंड अंडरस्टैंड द सिस्टम। तो कहता है ये भी कोई हफ्ता लगे रहते हैं बच्चे, फिर उसके बाद उनको समझ आती है कि नहीं, ये इरेज का या ओमिट का वर्ड इस्तेमाल करने से नहीं ओमिट होगा, ये लिखा गया है, इसको किस तरह से करना है, फिर आगे कैसे चलना है, फिर लेटरिंग कैसे जानी, वगैरह वगैरह। कहते हैं it takes them about a week to get to know the old system and analyze how it works. मैं कहती कितना इनोवेटिव तरीका था बायोलॉजिकल सिस्टम्स पढ़ाने का, कि किस तरह से चीजें एक दूसरे से जुड़ती हैं, किस तरह से एक दूसरे से मिलकर चलती हैं, वगैरह। Now this is the kind of a critical thinker teacher. So Takhinton ये कहते हैं the child, and we are talking about our adolescents and young students at FAFSC, BABSC, the child should make them his own and understand their application here and now in the circumstances of his actual life. From the very beginning, वो कहता है, education should be the experience of joy of discovery. The discovery that he makes will give him ideas of an understanding of the stream of events that will come in his future life. यानी कि वो तरबियत और तालीम जो सोच की है वो वहां से शुरू होती है, ताकि सारी जिंदगी के लिए उसकी सोच उसको गाइड करती रहे अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, सो व्हाई शुड वी कंसर्न आवर्सेल्व्स विद थिंकिंग? वापस आते हैं, whenever we are dealing with human life, we are almost always thinking, and thinking is the way that your mind makes sense of the world. So whatever we are doing, almost always thinking, and we are always dealing with, so क्या क्या है हम, what is there, हमें थिंकिंग बताती, व्हाट इज हैपनिंग हम थिंकिंग बताती, व्हाट आर प्रॉब्लम्स आर, ये भी थिंकिंग से आता है, व्हाट थ्रेटन्स अस, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज अनइम्पॉर्टेंट, हु आवर फ्रेंड्स आर, हु आर एनिमीज, व्हाट आवर हिस्ट्री इज, व्हाट आवर ज्योग्राफी इज, हु वी आर, हु लव्स अस, हु हेट्स अस, वगैरह वगैरह, ये थिंकिंग से आता है। थिंकिंग डिटरमिन्स व्हाट वी लर्न, हाउ वी लर्न, एंड व्हाट वी थिंक इज important to learn, and how much effort should we expend on learning. What we think is true and what we think is false. How things should be viewed, whether also our thinking is learning is of high quality or low quality, or whether our learning is superficial or deep. अब thinking की तरफ आए, everything we know, believe, want, fear and hope are thinking tells us. So most of the world's problems are exacerbated by problems in human thinking. किसी को ले लीजिए, मुझे उसने ऐसा क्यों कहा, पॉवर्टी, होमलेसनेस, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी जो है, और इनके सॉल्यूशंस थिंकिंग ही में है। सो आप कभी सोचें, मैं आपको ये कहीं लिख लें कि कोई भी लोग बिहेवियर जिसमें प्रॉब्लम बिहेवियर जिसमें पीपल एंगेज हैं और वो कर रहे होते हैं, सी इफ यू कैन आइडेंटिफाई द थिंकिंग दैट लीड्स टू दैट बिहेवियर। सो मैं अब ये करूंगी नहीं, लेकिन बिकॉज टाइम हमारे पास थोड़ा है, आप मुझे सिर्फ आप कहीं लिख के रख लीजिएगा, और एंड में शायद हम आपसे बात करेंगे कि वो आप कैसे पढ़ाते हैं। रोट मेमोराइजेशन वो तो मुझे समझ आती है, आप कहते हैं कि रिजल्ट्स चाहिए होते हैं कॉलेज को, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग कहीं डालते हैं आप उसमें, सोचना कहीं सिखाते हैं उनमें, अगर है तो ये आई वुड लाइक टू हियर मोर अबाउट इट।
So when we place thinking at the center of teaching, we approach students as thinkers. We should, if we are not doing it, seek to connect the content we are teaching to the thinking of students, eliminating how and why the content is important to them as thinkers. कोर्स तो गिवन है आपको, लेकिन जिस तरह पढ़ाना है वो आपके पास है. So design your instructions and your teaching so that students have to think their way into their content. अब इसमें अगेन मैं एग्जांपल दूंगी, आप तो नहीं कर सकते, लेकिन यूनिवर्सिटी में इतना एटीट्यूड होता है. एक मेरी वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थी, वो पेपर ऐसा बनाती थी कि वो एक स्टोरी दे देती थी फाइनल एग्जाम में, एक पेज की स्टोरी होती थी, लेकिन उस पेज की स्टोरी के नीचे जो सवाल थे वो पूरे के पूरी इकोनॉमिक्स का जो कोर्स था जो उस सेमेस्टर में पढ़ाया उसके ऊपर बेस्ड था. इतना मुझे मजा आता था उनका पढ़ने का. लगता था कि स्टूडेंट्स को भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को क्रिटिकली सोचने का मौका मिलता था. अच्छा, अब आए क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ. क्रिएटिव थिंकिंग क्या, वॉल्ट डिज्नी कहता है कि क्रिएटिव थिंकिंग इज इमेजिनेशन. एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद अ विविड इमेजिनेशन. याद नहीं है बच्चे किस तरह से बात करते हैं कि ये, और आप उनको रोकते हो, नहीं ये ऐसा नहीं है, आप उसको आप यूज करने नहीं देते बच्चे को वो अपनी इमेजिनेशन को. What happens is बायोलॉजिकल प्रिंसिपल ये है, एट्रोफी विद डिसयूज. जो चीज इस्तेमाल नहीं होगी, जैसे मसल इस्तेमाल नहीं होगा तो वो खराब, वो फ्लैबी हो जाएगा. डिसयूज से उसका वो स्ट्रेंथ नहीं रहेगी. तो यही होता है बच्चे की इमेजिनेशन को. इसीलिए वो आप कार्टून वो बनाता था जो इमेजिनेशन बच्चे की यूज करते थे. दूसरे हम आते हैं लैटरल थिंकिंग पे. जैसे मैंने आपको पहले कहा, लैटरल थिंकिंग एक एडवर्ड डी बोनो था, उसने कहा कि दो तरह की सोचें होती हैं. एक तरीके से सोचते हैं वर्टिकल थिंकिंग. वर्टिकल थिंकिंग है लॉजिकल, ट्रेडिशनल, हिस्टोरिकल मेथड, और बिल्ड करते जाते हैं. यू बिल्ड ऑन इट, बिल्ड ऑन प्रीवियस हाइपोथेसिस एंड बिल्ड इट, एंड रिजल्ट्स के ऊपर बेस करते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ द फाउंडेशन आपकी सोच ऊपर चलती जाती है. लैटरल थिंकिंग वो कहता है वो थिंकिंग है जिसमें आप डिसरप्ट करते हो ये वर्टिकल थिंकिंग की प्रोसेस को और साइड से निकालते हो, सीक्वेंस को बिल्कुल ब्रेक करके, और सॉल्यूशन को डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश करते हो. एंड इट इज नॉट, इसने लैटरल थिंकिंग को, मेथड्स को बताया कि बड़ा सिस्टमैटिक तरीका है, लेकिन इट इज द वे दैट मोस्ट बिजनेसेस आर नाउ इन क्रिएटिविटी और इनोवेशन इस्तेमाल कर रहे. फॉर एग्जांपल इंजन्स, कारों की शेप, कारों की फॉर्म, आपके घर किचन में इस्तेमाल होने वाली मशीनें मोस्टली यूजिंग लैटरल थिंकिंग. एंड डी बोनो बहुत 80s और 90s में तो बहुत ज़्यादा ये जितनी आपकी ट्रेनिंग देता था टू इंटरनेशनल मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सक्सेसफुली. तो ये लैटरल थिंकिंग कुछ टेक्निक्स हैं, सारों पे नहीं हम जाएंगे कि ऑल्टरनेटिव्स कैसे यूज करना है, फोकस आपने कैसे चेंज करना है, चैलेंज कैसे अपने आप को करना है ट्रेडिशनल थिंकिंग की लिमिट्स को ब्रेक करने के लिए, प्रोवोकेशन, सोच को ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, स्टूडेंट को भी जब पढ़ाने के वक्त से. फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग के मतलब क्रिएटिंग, और क्रिएशन से जिस तरह हार्वेस्ट को आप पकने के बाद निकालते हो ना, व्हीट को भी और राइस को भी, इसी तरह से यू हार्वेस्ट योर आइडियाज एंड देन यू फाइनली develop ideas and take them onwards and forwards. क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ से थोड़ा सा मैं आगे आऊंगी और उसके बाद फिर थोड़ा करने के बाद वी विल जस्ट मूव ऑन. क्रिटिकल थिंकिंग इज अ सेल्फ डायरेक्टेड प्रोसेस इन विच वी टेक डिलिबरेट स्टेप्स. ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग ये नहीं कि ऑटोमेटिकली आएगी, यू हैव टू ब्रेक एंड यू हैव टू टेक deliberate steps to go into
the critical thinking. So critical thinking क्या करती है? It is an intellectually disciplined process. आपको actively, skillfully conceptualize करना होता है, apply करना होता है, analyze करना होता है, synthesize करना होता है, evaluate करना होता है, जो information आपको मिली होती है या generate होती है from observation, experience, reflection, reasoning, communication, कहीं से भी आ सकती है. What it does is guides your belief and action in its most exemplary form. It is based on universal intellectual values, which transcend all subject matters. और इसमें 4-5 ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये मैं आगे आपको बताती हूँ. Clarity, accuracy, precision, consistency, relevance, sound evidence, good reasons, depth and breadth, and fairness. Be fair. और क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है? पहले 2 कंपोनेंट्स हैं, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड बिलीफ गैदरिंग, जनरेटिंग, प्रोसेसिंग स्किल्स. दूसरा, हैबिट ऑफ इंटेलेक्चुअल कमिटमेंट, not just gathering information, not just possessing skills, but continual use of them and continually analyze. And जिस तरह आप मसल्स एक्सरसाइज करते हो ना, इसी तरह critical thinking की continuous skills की exercise. Don't accept results, analyze them, ask why. अच्छा, इसमें मैं आपको आगे जल्दी से, ये मैं आपको नहीं देती, लेकिन critical thinking is something that you add on to everything else that you do. It becomes the way you do everything that you do. अब critical thinking एक छोटा सा एक analysis. Critical thinking analyzes thinking. Critical thinking assesses your thinking. Critical thinking that combats negative egocentricity. मैंने जो कहा है वो सही है. No, no, no. आपने इसको आपने नहीं एक्सेप्ट करना. You are nothing. Thinking is supreme. Rationality is supreme. So thinking that develops, जो critical thinking है, develops within itself intellectual habits. So critical thinking is disciplined, self-guiding thinking that aims at living a rational life. छोटा सा एक मैं डायग्राम आपको दिखाना चाहती हूँ, वो ये है क्रिटिकल थिंकिंग की क्या आपकी वैल्यूज हैं और वर्च्यूज हैं. इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी, आप सोच को करेक्ट करें जहां आपको लगता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम है. बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड ट्रू टू रैशनैलिटी. इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, क्या बात है, मैंने जो कह दिया वो सच है, मैंने जो कहा वो ठीक है. नो नो नो, मैंने बड़े बड़े प्रोफेसरों को कहते हुए सुना है. अगर स्टूडेंट कहता है ना ये सवाल, कहते हैं अच्छा इसका जवाब तो मुझे नहीं आता, मैं पढ़ के तुम्हें बताऊंगा, ये मेरा रिसर्च एरिया नहीं है, लेकिन मैं आप. तो इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी. और अगर गलत है तो एक्सेप्ट दैट इट वाज इनकरेक्ट, नॉट बिकॉज आई एम अ टीचर आई विल से व्हाटएवर आई एम सेइंग इज राइट, तुमको मानना पड़ेगा. Confidence in reason. Reason and intellect go first. Intellectual perseverance. Believe, अगर आपने rationally arrive किया conclusion पे, you persevere and make a fair-minded judgment. And you should have the intellectual courage to stand and say, I was right. कौन था? Galileo? Socrates? Intellectual courage तो था ना. एंड इंटेलेक्चुअल एम्पैथी भी है कि दूसरे की बात समझने के लिए उसके गो इनटू हिज लाइन ऑफ थिंकिंग, क्या ये सही कह रहा है, तो एम्पैथाइज भी करें, लेकिन साथ ऑटोनॉमी भी हो कि आप अपनी सोच अपनी अलहदा रखें. इट इज योर सोच, इट इज नोबडी एल्सेस सोच. सो इवेल्युएट करने के लिए थिंकिंग को 4-5 चीजें करने की जरूरत है. क्लैरिटी, understanding what we mean, accuracy, free from errors, precision, accuracy, relevance, relevant to the matter at hand, depth, which analyzes complexities and multiple interrelationships, breadth, which means it encompasses a wide range of viewpoints,
लॉजिक ज़रूरी है इसमें होना, सिग्निफिकेंस कि जो हम इस वक्त बात कर रहे हैं उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं और जस्टिफाइबल है कि नहीं। सो आखिर में आपको मैं ये जो सोक्रेटिस द थिंकर, उसने ये कहा था, एन अनएग्जामिन्ड वर्थ लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि मैं देती होती हूँ, जब क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ाती हूँ वर्कशॉप्स में, तो मैं देती हूँ इस तरह के फिलोसफर्स की स्टेटमेंट्स, इसको पढ़े, इसको समझे क्या कह रहे हैं। एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, है ना। कि अगर आपने कभी अपने आप को, किसी और ने भी ये कहा है और बड़े लोगों ने ये कहा है, तो आपको जब तक अपने आप को नहीं समझोगे, अपनी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को नहीं समझोगे, उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट नहीं करोगे, तो फिर जिंदा रहने का फायदा। ये जिंदगी क्या है, सिर्फ रोटी खाने का तो नहीं, दिमाग अल्लाह ने दिया है, दिमाग सोचने के लिए दिया है, क्रिटिकली सोचने के लिए दिया है। तो ये सोक्रेटिस की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, an unexamined life is not worth living. Okay, Ji, now we have about 40 minutes. So we will spend that 40 minutes in the second part, which is social and emotional intelligences. तो critical thinker तो आपको आपके दिमाग में ये बीज बो दिया। अब आपने सोचना भी है, आपने अपने आप को एनालाइज भी करना है, आपने इस पे सोचते रहना है, सोचने पे सोचते रहना है कि मेरी सोच ठीक है कि नहीं, है ना जी। तो सोच सोच के सोचो कि सोच ठीक है कि नहीं, ये याद रखिएगा। अच्छा, सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस इस बिल्कुल एक डिफरेंट पैराडाइम में हम चले जा रहे हैं। इस वक्त हम इमोशंस के ऊपर जा रहे हैं, और ये भी सोचने की बात है, ये भी हमारे अफेक्ट करती है हमारी सोचों को। तो सोशल इंटेलिजेंस पे पहले आए। सोशल इंटेलिजेंस है क्या एक्चुअली? लेट मी जस्ट गो बैक एंड सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस की थोड़ी सी प्रियम्बल ये है कि एक्चुअली आईक्यू हम देखते हैं ना, आप कहते हो जी इसका आईक्यू ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बड़ा सुपर इंटेलिजेंट है, और इसका आईक्यू ज़रा लो है, हम साइकोलॉजिस्ट का नंबर दे देते हैं ना, टेस्ट करने के बाद निकला ये नंबर, ठीक है। तो इसी तरह से अब सोशल कहाँ पता चला कि सक्सेसफुल लोग जो हैं दुनिया में, ज़रूरी नहीं है कि ये ब्राइटेस्ट एंड द टॉप इंटेलिजेंसिया हो जो बिजनेसेस फाइंड करती हैं, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन। पता चला कि उसके अलावा जो सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव्स हैं उनमें दो और चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंसेस। अब साइकोलॉजिस्ट ने इसको भी मेजर कर लिया है कि सोशल इंटेलिजेंस और इंटेलेक्चुअल, इसको इमोशनल इंटेलिजेंस का ईक्यूज कहते हैं उसको, इमोशनल क्वोशंट। खैर, तो आई गो आगे जाके इस पे बात भी करूँगी। सोशल इंटेलिजेंस क्या है? द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड decode what's happening around you and respond to it appropriately. आपके इर्द गिर्द जो लोग बात कर रहे हैं उसको समझें और हर एक के पर्सपेक्टिव को देखें और रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। सो सोशल इंटेलिजेंस क्या है? इट इज द एबिलिटी टू एक्ट वाइजली while maintaining human relationships. और वाइज विजडम कहाँ से आती है? विजडम आती है कि आप दूसरे का पर्सपेक्टिव देखो, समझो, अल्फाज को देखो, अल्फाज के मायने देखो, बिहाइंड द वर्ड्स देखो क्या बात थी, और बॉडी लैंग्वेज को देखो, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें एक एनकैप्सुलेटेड सोशल इंटेलिजेंस में आती है। सो there are many exceptionally intelligent people who struggle to maintain a social life. और ये एक फिल्म थी रेन मैन, उसमें इसी तरह एक फॉरेस्ट गंप एक फिल्म थी,
रेन मैन था जो बहुत ब्राइट था, लेकिन वो साथ ही दूसरों को समझ नहीं सकता था। इंटेलेक्चुअली वो इतना सुपीरियर था कि उसको मैथमेटिकल फॉर्मूलेस आप दे दो, किधर किधर से किधर पहुंचा देते। लेकिन इवन एज अ मैच्योर एडल्ट उसकी एबिलिटी नहीं थी टू अंडरस्टैंड अदर पीपल। इसी तरह एक फिल्म थी फॉरेस्ट गम, और आजकल वो क्या है, वो आमिर खान ने एक फिल्म बनाई है उस पर, उसी की बॉलीवुड वर्जन। उसमें वो जो है इंटेलेक्चुअली सोशली वो मैच्योर इस तरह से नहीं है कि लोगों को समझता नहीं है, लेकिन ही इज सक्सेसफुल बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट है। और इसी तरह से अगर आपने कभी टीवी सीरीज एक आती थी बिग बैंग थ्योरी, उसमें एक शेल्डन है लड़का, और ही इज अ फिजिसिस्ट। 25 ईयर्स में हाई एनर्जी फिजिक्स में उसकी, थ्योरेटिकल फिजिक्स में उसके पीएचडी हो गई अमेरिका में, और वो प्रोफेसर है 25 साल की उम्र में। लेकिन उसको समझ नहीं आता कि लोगों को मेरी बातें क्यों, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे ये इस तरह ही पका हुआ खाना खाना है, या ये मेरे कमरे में इस तरह से चीज़ें पड़ी हुई हैं इनको हिलाना नहीं है, या जिसने जो बात की मैंने जो बात की है वो सही है, दूसरे की बात मुझे नहीं समझ आ रही है वो क्या कह रहे हैं, तो उसका देयर इज अ सीरियस इशू दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द सोशल क्या कहना चाहिए डोमेन्स। इधर एक्सेप्शनल इंटेलिजेंट ये नहीं प्रॉब्लम, इंटेलिजेंस का प्रॉब्लम नहीं है, सोशल इंटेलिजेंस का प्रॉब्लम। सोशल और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या है? इट इज one's ability to see and understand the difference between oneself and others. और अभी मैं एक और एग्जांपल में दूंगी आपको, कि आपको कई है ना लोग लगते हैं, वो कहते हैं यार तुम्हारे दोस्त बड़े हैं और तुम्हारे काम आ जाते हैं जब तुम बुलाते हो। क्यों? मैं किसी इतने लोगों से मिला हूं, मेरे से तो उस तरह की दोस्ती नहीं होती उन लोगों की। सो यू सी दैट पर्सन हैज हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस because he understands how to make a relationship, continue a relationship, and be available when these जो interpersonal relationship में जब demand आती है। So it is each in social interpersonal relation intelligence is unique. हर एक की यूनिक है, आपकी दूसरे के साथ exactly एक जैसे नहीं हो सकती। It is unique for each individual. Why? Because it's based on your differences in experiences, knowledge of different areas. Psychology वाले अलग हैं, biology वाले अलग हैं, philosophy, उर्दू, literature, इनकी अपनी एक totally different experience है। और कॉलेज स्कूल का और घर का और कम्युनिटी का एक्सपीरियंस डिफरेंट है। सो इट इज़ यूनिक, अंडरस्टैंडेबली इट इज़ यूनिक। तो उसके अलावा लेवल ऑफ सोशल इंटरेक्शंस बिटवीन पीपल, कि लोगों के साथ कितने आप डेवलप करते हो रिलेशनशिप्स। अच्छा, इसमें मैंने देखा है, ये कहते हैं ना कि जितना आप सफ़र करोगे उतना सीखोगे, और यही होता है। अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपको नई जगह नज़र आती हैं, नई ज़ुबानें सुनने को मिलती हैं, नए कल्चर्स देखने को मिलते हैं, नए सब कल्चर्स देखने को मिलते हैं। अब हम सब ने टीवी पे अब देखना शुरू किया है कि साउथ पंजाब का कल्चर क्या है, उनकी ज़ुबान क्या है। और कोई अगर आप में से ज़्यादातर लोग ट्रैवल करके गए हैं तो आपको पता होगा, या रहते हैं वहाँ पर तो आपको पता होगा। फिर आप सिंध का कल्चर देखिए, सिंध के भी डिफरेंट डाइवर्स कल्चर है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के भी, और इसी तरह आपके पंजाब के अंदर सेंट्रल पंजाब में भी वो जो पोटोहार का इलाका है उसके डिफरेंट कल्चर्स हैं, सब कल्चर्स हैं, वगैरह वगैरह। सो व्हाट आई एम सेइंग इज द मोर यू ट्रैवल, मैं गिलगित बल्तिस्तान गई हूँ, मुझे तो जुबान भी नहीं उनके आते थे जब मैं वाइस चांसलर बन के गई हूँ, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग स्टडी था ऑफ द कल्चर। एंड एकदम से जैसे सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं मार्जिनल मैन जब अंदर जाता है कल्चर में तो उसके लिए सब चीज़ें एकदम नई होती हैं, वो सीखता है। इसी तरह जब चाइना में गई हूँ तो मैं कहती हूँ जुबान नहीं आती थी, 92 की बात है, तब अंग्रेजी भी इतनी नहीं बोलते थे, तो फिर इशारों की जुबान से काम चलाते थे ना। इंटरेस्टिंग है ना दैट यू लर्न
from being in other cultures or visiting other cultures, और opening अपनी रखो, brain open रखो, अपनी skills open रखो, so you grow every day. Every day you come into contact with different people of different thoughts and different personalities. मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इवन जो माली काम कर रहे होते हैं, गार्ड्स हैं, या जो मासियाँ काम कर रही होती हैं, तो फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी में रोज़ सुबह वॉक पे निकलती थी, वहाँ जो जैनिटोरियल स्टाफ आते हैं, झाड़ू लगा रही, साथ बैठ के उनके साथ कहानी सुन ली उनकी. तो यू मीट विद डिफरेंट पीपल, लर्न फ्रॉम देम. मीटिंग पीपल इन डिफरेंट सोशल एंड साइकोलॉजिकल, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फर्क है. We experience the happiness, sorrow, misunderstanding, agreements, disagreements, and other wide range of emotions. जितना आप इससे गुजरते हो उतना आप बढ़ते हो, उतना एक्सपैंड करते हो, उतना आपकी डिक्शनरी बढ़ती है. लेट मी से पुट इट दिस वे, है ना, उतनी आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, उतना आपकी सोशल इंटेलिजेंस बढ़ती है. एंड यू देन नो हाउ टू, जितने डिफरेंट लोगों से मिलते हो, यू नो हाउ टू हैंडल योर फीलिंग्स. और कल ही मैं किसी को कह रही थी कि आप बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते, कहते हाँ मुझे भी लगता है कि मुझे हो जाता. मैंने कहा तो सिचुएशन में एक्सप्लोसिव हो जाती हैं आप. मेरे एक सीनियर कॉलीग थे, तो फिर लोग उनको कहते हैं अच्छा इनसे बात नहीं करते, ये उनको गुस्सा जल्दी चल जाता, या हम उनको नहीं मिलना चाहते जिनसे हम कहते हैं ओहो इनके साथ मिल के तो तबीयत खराब ही हो जाती है. नहीं, यू मीट देम एंड नो हाउ टू हैंडल योरसेल्फ. Otherwise, you'll keep avoiding them because you become unfriendly. Colleagues आपके कॉलेज में होते हैं ऐसे, सारों के साथ तो दोस्ती नहीं है, लेकिन मिलना चाहिए आपकी अपने आप को. सो सेल्फ अवेयरनेस इज द एबिलिटी, ये जरूरी है. तो इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी ऑफ इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस. पहली चीज है सेल्फ अवेयरनेस. अपने आप को जानो, अपनी एबिलिटी को जानो, अपने आप को जानो, और अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स एंड व्हाई यू रिएक्ट इमोशनली. तो ये भी समझो, सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि यू अंडरस्टैंड योर इमोशनल रिएक्शंस एंड हाउ दे विल अफेक्ट योर बिहेवियर. थोड़ा सा सोच लें कि अगर मैं नेगेटिव इमोशनल रिएक्शन इस वक्त करती हूँ तो क्या इसका असर होगा. बात बढ़ जाएगी तो आप रोक लेते हो, है ना. So that is self-awareness. A self-aware person knows own abilities and is mindful of his or her limitations. कि ऐसी सिचुएशन में मुझे स्ट्रेस आएगा तो मैं पहले से क्या सोचती हूँ, मुझे कहती हूँ अगर आता है तो this is what I'm going to be doing. Neutralize the other person. अगर वो अग्रेसिवली बात कर रहे हैं, कहते हैं हाँ आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन इसको अगर इस तरह से देख लें. वो कहेगा नहीं इसी तरह से देखें. हाँ जी बिल्कुल सही है, आप ठीक कहते हैं, लेकिन करना मैंने वही है जो मैं कहती हूँ. ठीक है. सो एन इमोशनली सोशली वेल अवेयर पर्सन विल हैंडल देयर इमोशंस, मैनेज एंड कंट्रोल देयर फीलिंग्स. जैसे मैंने कल किसी को कहा कि आप अपनी थोड़ा सा कंट्रोल कर लें. आपको जब पता चल रहा है कि मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, होल्ड इट. And then you train yourself to keep calm under tremendous emotional pressure. Of course, what it does is आपको गलत बात कहने उस वक्त जो मुंह से निकल जाती है बात, उसका डैमेज कंट्रोल करना. पियन आया खटखटा रहा है, आप इरिटेटेड बैठे हैं, कहते जाओ जी आपको प्रिंसिपल ने बुलाया, जब मैं कह दूँ मैं बिजी हूँ. या स्टूडेंट आया कहते मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है. बाद में आप, या कोई दोस्त आता है कि मैं यार बात करनी है, या आपके पास टाइम है तो मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है मेरे, आप कहते हैं छोड़ो मेरे अपने बड़े प्रॉब्लम्स हैं. ना देन यू रियलाइज जब ये आपका खत्म हो जाता है इरिटेबिलिटी, कहते हाँ हाँ पता नहीं उसका क्या प्रॉब्लम था, वो इतने मेरे दोस्त मेरे पास डिस्कस करने आई थी और मैंने उसको झाड़ के भेज दिया. बच्चों के साथ भी आप ये करते हो कि मुझे मत तंग करो, मैं थकी आई हूँ दफ्तर से, ये काम मेरा बहुत था आज दफ्तर में, मुझे मत तंग करो, जाओ किसी और से बात करो, है ना जी. तो हैंडल योर इमोशंस. तो पहली चीज है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरी चीज है हैंडलिंग इमोशंस, और तीसरी चीज है सेल्फ मोटिवेटेड. continuously motivating yourself in adversity.
देखो एडवर्सिटी किसको नहीं आती, मुश्किल हालात किसको नहीं आते, किसके लिए सारी जिंदगी सब हम कहते हैं जी हमारे लिए तो जिंदगी में इतनी मुश्किल आती, और किसी ने कहा ना मुश्किलें पड़ी इतनी क्या आसान हो गई, गालिब ने कहा था, गालिब ने कहा था। तो ये अपने आप को मोटिवेट करते रहो। और मैं इस पे आपको एग्जाम्पल लिख देती हूँ। ये मैं जब पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, हॉस्टल की वार्डन भी थी, तो डायरेक्टर भी थी सेंटर फॉर क्लिनिकल की, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी थी अप्लाइड साइकोलॉजी की, हॉस्टल की वार्डन भी थी। अब मैं कहती, और छोटे बच्चे भी मेरे दो, तीन, एक बड़ा तो 10-11 साल का था, बेटी 5-6 साल की थी। अब ये सारे घर में आती हूँ तो मसले, दफ्तर के मसले, हॉस्टल के मसले खत्म, नेवर एंडिंग। मैं एक दिन बैठ के कह रही थी अपने आप से, हॉस्टल के वार्डन हाउस के लॉन में, कि या अल्लाह ये मसले खत्म ही नहीं होते, कब खत्म होंगे ये मसले। तो मुझे खुद ही अपना जवाब मिल गया कि नजमा, कब्रिस्तान भरा पड़ा उन लोगों से जो सुकून से सोए, जिनके मसले खत्म हो गए। ये तो जिंदगी की निशानी है, मसाइल आना। और ये शुक्र करो अल्लाह का कि मसाइल आए हैं, क्योंकि आप उसको डील कर सकते हैं, या आप सीखेंगे व्हाइल यू डीलिंग विद इट। लो जी, ये बात दिमाग में आई, मैंने शुक्र अल्लाह के किया। और दफा आप जब कोई मसले आते ना, मैं कहती जी शुक्र अल्लाह का कोई मसले आए, बिकॉज दैट बिकम्स अ चैलेंज, है ना। सो ऑलवेज मोटिवेट योरसेल्फ इन एडवर्सिटी। और किसको नहीं आए, मेरे अगर आप कहीं गूगल करो आपको पता चल जाएगा कितने 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 मुश्किल हालात। अकेली को अगर गिलगित जाना पड़ता है बाय रोड, 24 घंटे का सफर करना, और वहाँ अकेले रहना, तो वहाँ वाइस चांसलर होना एक को एजुकेशनल यूनिवर्सिटी का, और वो सारे गिलगित के, स्कर्दू के और हुंजा वगैरह के लोग हैं, और मैं पंजाब से जाती हूँ, तो थोड़ा सा फर्क तो था ना, एडवर्सिटी थे, लेकिन है हैंडल करना। तो ये अभी भी मुझे फोन आते कि मैडम आपको हम याद करते हैं, आपका जमाना याद करते हैं, है ना। तो आपको कंटिन्यूअली मोटिवेट, मैं कहती मैं वहां बैठ के पहाड़ों में दरमियान में अकेली बैठ के सोचती थी, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे ऐसी जगह भेजा है। कितना मुझे रीइंफोर्स करता है ये चीजें। सो यू मोटिवेट योरसेल्फ इवन इन एडवर्सिटी एंड यू प्रिजर्व, डोंट गिव अप। ये तो आती है आपको क्या उड़ाने के लिए, है ना। तो ऊपर से ऊपर उड़ने के लिए इन मसाइल से तो लड़ना होगा, रोजाना के मसाइल से लड़ना होगा। और आपने और हमने आसान रास्ता नहीं चुना, हमने चुना है रास्ता जिसमें हमने करियर बनाने और पॉजिटिव रहे। पॉजिटिविटी इतनी अच्छी चीज है, ये आगे भी मैं आपको बताऊंगी। डू नॉट क्रिएट नेगेटिव इमोशंस। और मैं अब हर एक को कहती हूँ, जो नेगेटिविटी है ना, वो इस लाइक, ये नेगेटिविटी जहर की तरह है, वो उस एसिड की तरह है, उस तेजाब की तरह है, जो जिस बर्तन में डाला जाए उसको भी खा जाते, करोड़ कर देता है ना जी। वो आपको भी पता है, साइंस वालों को भी पता है। तो क्यों अपने अंदर तेजाब डालना, क्यों अपने आप को। अब कल मुझे मेरी बेटी बता रही थी किसी का अमेरिका में, कि वो इतना स्ट्रेस लिया कि उसको एसिड हो गया, वो हर्निया हो गया और अल्सर्स हो गए, तो सर्जरी करानी पड़ी उसकी। Now he has to change his lifestyle. मैंने कहा तुम बताओ फिर उसको how to change your lifestyle and remain positive. हर चीज में अल्लाह ने अच्छी बातें रखी हैं। So always see, मेरी फिलॉसफी है ग्लास हाफ फुल नॉट हाफ एम्प्टी। ये अल्लाह मियाँ ने जब बहुत ही नेमत दी है कि आप ये देखो कि कितनी अच्छी चीजें दी हैं उसने हमको, है ना। तो उसके साथ फिर अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है जो एक इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी में, पर्सन में होना चाहिए, इस एम्पथाइजिंग, दूसरे के मसलों को समझना, पुटिंग वन सेल्फ इन अदर पीपल्स शूज एंड नोइंग वेयर द शू पिंचेस, दूसरे की तकलीफ को समझना। ये इस तरह से है जिसका आप टाइम टेबल के इंचार्ज हैं, और आपको टाइम टेबल बनाना है, तो आपके पास एक आती है कोलीग जिसके छोटे बच्चे हैं, वो कहती है सुबह का टाइम टेबल, सुबह का टाइम आप मुझे
बेशक ना दें। अगर मैं स्कूल लेटर में आफ्टरनून में कंटिन्यू कर लूँगी, क्योंकि मैंने सुबह वो जो बच्चों के लिए कोई मैंने इंतज़ाम किया हुआ, वो मासी ज़रा देर से आती है, या बच्चों को कहीं मैंने अपने किसी अजीज़ के पास छोड़ना होता है तो ज़रा देर हो जाती है। तो समझने की बात है, आप एक्सचेंज कर लो टाइम टेबल, उसके मसले को हल करोगे तो आपकी आसानी होगी। आपने काम करवाना ना, टीचिंग अगर अच्छी है तो फिर ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं. सो अंडरस्टैंड अदर्स प्रॉब्लम्स, थिंकिंग देम एज योर ओन, and what it does is helps you earn their respect, also helps you understand and make a decision which is balanced. और उसके बाद है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अभी हम आप देख रहे हैं रोज टीवी पे रेजिलियंस का बेहतरीन एग्जाम्पल, वो लोग जिनकी जिंदगी, जिनके घर बार, जिनकी फैमिलीज डिसरप्ट हो गई हैं, लेकिन वो कंटिन्यू कर रहे हैं, रीबिल्ड कर रहे हैं अपने आप को भी, अपने घरों को भी, अपने इलाकों को भी. तो एक रिजिलियंस है, इसको कहते हैं. Resilience क्या क्वालिटी है? It is an important quality to have in spite of adversity, to be able to carry on. And this is a very important quality to have, which means you preserve against difficulties, continue against adversity, continue in a hostile environment, अपने आप को चार्ज रखना. और ये रिजल्ट्स आती है, सीखने से आती है, क्रिएट करने से आती है, तजुर्बे से आती है, आप उन हालात से गुजरते हो तो आती है. नहीं तो कई लोग होते हैं गिव अप करके कहते हैं हमसे नहीं होता, बहुत हो गया, अल्लाह तूने बहुत तकलीफें दे दी. भाई क्यों? उसने दी है बिकॉज ही नोज कि आप बर्डन उठा सकते हो. सो रेजिलियंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू अ चेंजिंग एनवायरनमेंट. आपकी किसी जगह पोस्टिंग होती है, एक ही शहर में तो नहीं आप रहते ना, तो आपकी किसी और जगह पोस्टिंग होती है तो आपको वहाँ अडेप्ट करना पड़ता है. कॉलेज का माहौल फ़र्क है, उनकी जो वे ऑफ वर्किंग फ़र्क है, यू अडेप्ट, है ना जी. और देन यू डेवलप द स्ट्रेंथ टू कंटिन्यू टू बी प्रोडक्टिव and remain a good person in spite of adverse circumstances. दूसरों के लिए भी भला करना और भला सोचना, ये है रेजिलियंस. और आप हैरान होंगे कि जितने पुअर नेशंस हैं और जितने नेशंस हैं जिनमें बैटल्स हो रही हैं बहुत ज़्यादा, और जितने वो नेशंस हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसानात नेचुरल और मैन मेड है, वो लोग रेजिलियंट हैं. They have the ability to still continue with their life, living for their children, living for themselves, and continuing. ये कैसे? अब हमारे आपको तो रोज ही नजर आता होगा ना, लेकिन इसको दिखाने के लिए ये तस्वीर है. इनके पास क्या है? बच्चों के पास आपने इतने देखे हैं, ये झुग्गियों में रहने वाले बच्चे. इसको देखें, बच्ची एम्पावर्ड है, गधा गाड़ी वो चला रही है, बहन भाई साथ हैं, और हम सब हंस रहे हैं. हम लोग को जरा सी गर्मी लगती है, उफ, जरा सी परेशानी होती है, लोड शेडिंग होती है, उफ, कितना मुश्किल हो गया जिंदगी गुजारना, है ना जी. और ये देखिए, ये इनकी रेजिलियंस, द मोस्ट रेजिलियंट ऑफ अस ऑल. जो कुछ भी मिल जाएगा खा लेंगे, कुछ भी जहाँ भी रहना होगा घर बना लेंगे, है ना. और ये एक यूनाइटेड नेशंस ने ये अब बनाए हैं, जिसमें इंडेक्स बनाई है. तो हैप्पीनेस इंडेक्स है, दोज पीपल हु आर मोस्ट पुअर नेशंस, दे आर द हैप्पीएस्ट ऑन द हैप्पीनेस इंडेक्स. और जो बहुत पैसे वाले मुल्क हैं वो इतने हैप्पी नहीं है. सो सारा कुछ पैसा नहीं है. अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस को थोड़ा सा और डिफाइन कर लें. इट इज़ द एबिलिटी ऑफ रिकग्नाइजिंग योर ओन फीलिंग्स, managing your emotions, as well as managing other relationships. EQ is critical because it manages your behavior,
and helps you move forward in social situations to make the best decision possible. अगर आपको इसको देखें तो EQ क्या है? EQ एक्चुअली इंटेलिजेंस क्वेश्चन अगर एक तरफ है, सारी जिंदगी में चेंज नहीं होता, स्टेबल है। दूसरी तरफ आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो फ्लेक्सिबल है बिकॉज वो चेंज होता है, एबिलिटी टू चेंज, एंड यू कैन ग्रो एंड यू कैन डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस एज यू ग्रो अलोंग। पर्सनैलिटी ज्यादा चेंज नहीं होती, इट इज फेयरली स्टेबल ओवर टाइम। सो EQ बढ़ सकता है, जैसे मैंने कहा, यस, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एंड योर ब्रेन इज हार्ड वायर्ड। वाई यू बिकम इमीडिएटली इमोशनल और नेगेटिव? क्योंकि ब्रेन इज हार्ड वायर्ड टू गिव इमोशंस एंड अपर हैंड, सर्वाइवल के लिए है। द लिम्बिक सिस्टम, द इमोशनल ब्रेन, रिएक्ट्स टू इवेंट्स फर्स्ट। किसी ने कोई मुझे बात की, मुझे गुस्सा चढ़ गया, इसने मुझे बात कैसे की, क्यों की, फौरन मेरा दिल करता जवाब दे दूं। Even before you have the ability to, even before you can engage the rational brain to hold it and say कि नहीं अभी जवाब नहीं देना। So what EQ requires is effective communication between the rational and emotional centers of the brain. अब इसको ब्रेन को देखिए, ये हर जगह आ जाती है, क्या करें? ये अगर ब्रेन को आप और से देखें तो एग्जीक्यूटिव स्टेट है, जो पहला फ्रंटल लोब है, प्री फ्रंटल, वो आपको रोकता है, वो जजमेंट करता है, वो डिसीजन मेकिंग करता है। और उसके नीचे फोर ब्रेन, और ये आपकी जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये डेवलप्ड ब्रेन है ना। तो जो आपकी बड़ी इमोशनल प्रिमिटिव ब्रेन है, वो है लिम्बिक सिस्टम, वो फौरन रिएक्ट करती है। और इसके नीचे भी एक सर्वाइवल स्टेट वाली है, जो कि और भी ज्यादा किसको करना चाहिए ना, शॉटगन अप्रोच वाली ब्रेन है कि फौरन ये रिएक्ट करो, अदरवाइज नुकसान हो जाएगा। तो उसके ऊपर है इमोशनल ब्रेन, और इमोशनल ब्रेन कहता है नहीं, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा। तो जो आपका एग्जीक्यूटिव ब्रेन है, वो कहता है होल्ड ऑन, इसका जवाब अभी नहीं देना, ठहर जाओ, मौका आएगा, अभी इसकी हाँ में हाँ मिला दो, बाद में इसको कहना कि तुम गलत थे, मैंने सोच भी तुमको मना समझाया था, लेकिन तुमने बड़ा जोर लगाया, तो मैंने, और तुमने मुझे बुरा भला कहा, मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। सो एग्जीक्यूटिव स्टेट, या दिल करता ना कि घुमा के लगाए इसको, इसने मेरे से बात कैसे की, तो आप कहते नहीं, कोई बात नहीं, देख लेंगे ठंडे होके। सो जो रैशनल ब्रेन है वो ठंडा ब्रेन है, लॉजिकल ब्रेन है, और वो है आपकी फ्रंटल लोब, प्री फ्रंटल लोब और एग्जीक्यूटिव ब्रेन। और नीचे इमोशनल ब्रेन आपको कहता है करो, इसका जवाब दो, है ना, इसने क्यों कहा मुझे ऐसा, तो वो मैनेज करना पड़ता है। सो जब आपका एग्जीक्यूटिव ब्रेन कंट्रोल में आ जाता है, यू बिकम एन इमोशनली स्टेबल पर्सन। अब ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि ये आज से 10-12 साल पहले की बात है। मैं पहली दफा जब बाबू सर टॉप से गुजरी हूँ, उस वक्त ऐसा था ये बाबू सर टॉप। आप कोहिस्तान के इलाके से जाते हैं ऊपर से, और रास्ते से होते हुए फिर आप नारायण कागान की तरफ उतरते हैं। बड़ा ही खौफनाक रास्ता था, और इतना सुनसान बेयाबान। तो यहाँ मैं खड़े होके मैं भी सोच रही थी कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने ऐसी जगह दिखाई मुझे। कोई और होता कहता लो अब जहाज से क्यों नहीं चली गई, मैं जहाज से इसलिए नहीं जा सकती थी उस दिन क्योंकि बादल देखे कितने, वहां पर फ्लाइट कैंसिल हो जाती। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि देयर आर अपॉर्चुनिटीज वेयर यू कैन जस्ट look at the positives and look at what has been given to you instead of worrying हाय मेरे साथ क्या हो गया। And recognizing, and then also being able to assert yourself and say okay, this is my stand, I will agree with you but listen to me, मेरे ये आइडियाज हैं। तो 2-3 चीजें, असर्टिवनेस होना, सॉरी अग्रेसिव होना तो इतना अच्छा नहीं है। So assertiveness is where you can say clearly कि this is what I think, there is a distinction between a fact and opinion, or
असर्टिव का मतलब है कि आप अपनी बात कह देते हैं और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे देते हैं, लेकिन ब्लेम नहीं करना। अग्रेसिव होता कि मुझे तो ये अच्छा नहीं लगा, वो फिर अग्रेसिव हो जाता। नॉन असर्टिव ये अच्छा जो आप कहते हो वो कर लेते हैं, आप गिव इन करते जाते हो, नहीं ये सही नहीं है। सो अगर इसको हम ऐसे देखें तो इमोशनल इंटेलिजेंस में वो आता है, आप एक तरफ सोशल कॉम्पिटेंस है, एक तरफ पर्सनल कॉम्पिटेंस है। व्हाट आई सी, व्हाट आई ऑब्जर्व, व्हाट आई डू। तो व्हाट आई ऑब्जर्व इसमें पर्सनल कॉम्पिटेंसीज में सेल्फ अवेयरनेस आती है, और सोशल कॉम्पिटेंसीज में सोशल अवेयरनेस आती है, हाउ पीपल आर थिंकिंग एंड डूइंग। और व्हाट आई डू इज पर्सनल कॉम्पिटेंस में सेल्फ मैनेजमेंट, इसमें एंगर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और सोशल कॉम्पिटेंस में रिलेशनशिप मैनेजमेंट आ जाती है कि मैंने अपनी रिलेशनशिप्स को किस तरह से मैनेज करना है। और हमारे बचपन से सिखाया जाता है कि दूसरों का ख्याल रखो, दूसरों के लिए काम आओ, वगैरह वगैरह, है ना। तो वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। सोशल इमोशनल इंटेलिजेंस में ये 5 डायमेंशंस हैं: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स। और इनके अंदर, हर एक के अंदर, ये मैंने कुछ आपको बता दी हुई हैं। जैसे सेल्फ अवेयरनेस में इमोशनल अवेयरनेस है, एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। सेल्फ मैनेजमेंट में सेल्फ कंट्रोल, ट्रस्टवर्दीनेस, लोग कहें कि हाँ जी ये इसको, ये इसकी बात सुनते हैं, ये बात सही करता है। कॉन्शियसनेस, आप जो काम दिया जाता है वक्त पे, टाइम पे कर देते हैं। अडेप्टेबिलिटी, बिगड़े हालात में भी आप काम करते रहते हैं, यू अडेप्ट, इनोवेट करते हैं। मोटिवेशन मीन्स यू विल कंटिन्यू टू अचीव, एंड यू हैव ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। और जो एम्पैथी है, विच इज, जैसे मैंने पहले कहा, अंडरस्टैंड अदर्स एंड हेल्प अदर्स डेवलप देमसेल्व्स। सोशल स्किल्स में कम्युनिकेशन है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, और इसके साथ इन्फ्लुएंस, दूसरों को आप कहते हो कि अच्छा मेरी मेरी बात मैनेजमेंट इसमें इतना ज़रूरी है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे होते हैं। हाउ डू यू मैनेज इट? अब कल ही एक मीटिंग थी जिसमें मुझे लग रहा था कि कॉन्फ्लिक्ट इरप्ट कर जाएगा, डीन्स की, सबके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़े हर एक अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे अड़ा हुआ था। तो फिर मैंने बड़ा निगोशिएट करके ऐसा किया कि वो डाइल्यूट हो गई सिचुएशन। स्टूडेंट्स के बारे में कुछ था कि हाउ टू प्रोटोकॉल्स क्या होने चाहिए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट रोज़ाना का काम होता है। और कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, अबिलिटी टू डेवलप अ टीम, ये भी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ रिगार्ड, अपने आप को भी तो कुछ समझे ना। अपने आप को कहते रहना कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं, ऐसे नहीं है। अपना भी रिगार्ड करें। आप इट्स ट्राई टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ। जितनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक, उसमें अच्छी चीज़ें निकालें कि मेरे में ये अच्छी चीज़ें भी तो है ना। लिख ले अपनी नेगेटिव एस्पेक्ट्स को, एक्सेप्ट करें कि इसके अंदर मैंने इम्प्रूव करना है। और उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, अगेन एडजस्टिंग योर इमोशंस एंड टू चेंजिंग सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस। एंड एक तस्वीर इस, अगेन मैं अपनी गिलगित की तस्वीर देती हूँ। ये जो ख्वातीन बैठी हुई हैं, हम सब 60 साल से ऊपर की हैं, और डॉक्टर कीला तो मेरे ख्याल है 78 ईयर्स की थी, माशाल्लाह। तो मैं ये कह रही हूँ कि इफ लाइफ गिव्स यू लेमन्स, मेक लेमनेड, कोई बात नहीं। तो वहाँ पर कहाँ जाना है, कोई मॉल तो है नहीं, तो जी खाना पकाओ, पिकनिक करो, और इतने अल्लाह ने खूबसूरत जगह दी हुई है, बैठ के उसको एंजॉय करो। सुभान तेरी कुदरत। तो मैं अब मेरा ख्याल है वी आर ऑलमोस्ट एट द टेल एंड, तो मैं आपको थोड़ी सी और आगे बता दूं। प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग हमेशा आपकी सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस में काम आती है। ability to identify and define problems and generate possible solutions and effective solutions. So in summary, identify possible solutions, weigh the pros and cons of each, and you will ultimately find the best option. And remember, each problem has multiple solutions. You have to find the one that works
बेस्ट एट दैट पॉइंट इन टाइम एंड फॉर द फ्यूचर। और ये देखिए ना, बाकी एग्जांपल मैं इसलिए नहीं दे सकती, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। ये देखिए एक एग्जांपल तस्वीर के तौर पे है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। वालिद साहब बूढ़े हो गए हैं और वालिद साहब को दफ्तर जाना है, बेटे नहीं होंगे तो बेटी जो है वो माशाल्लाह साइकिल चलाना जानती है, वालिद साहब को दफ्तर लेके जा रही है। क्या बात है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। और इसी से हम कितना ज़्यादा हमको नज़र आता है कि यस, एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। तो जब भी आप इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें, हमेशा याद रखें, मेरी पर्सनल एडवाइस है कि हर सिचुएशन में से डीपर्सनलाइज करें। अपने आप को हर सिचुएशन में डाल लोगे तो वो एंगर और वो बिल्ड होगा। डीपर्सनलाइज, लॉजिकली सोचे तो आपको क्लियर हो जाएगी सॉल्यूशंस भी और लोगों के साथ रिलेशनशिप भी। एम्पथाइज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हर एक का, सबका एक दिन ऐसा नहीं होता, किसी का दिन तो एम्पथाइज करें। सो यू accept the differences and build and strengthen your team, because that different team will take you towards the goals. So with these last slides, let me thank you and ask you if you have any comments or any suggestions. So thank you so much, ma'am, for such a comprehensive lecture. Dr. Najam, for a wonderful कौन बात session. करें, कौन बात करें? आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज करें so that we can conclude the session. जी, कौन बात करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much, ma'am. वालेकुम अस्सलाम। कौन बात करेंगे पहले, वन एट अ टाइम में? पहले बताइए कौन बात करें पहले? मैडम जी बात करें मैडम। जी फरजाना साहब बात कीजिए। देखिए, सर्वाइवल ब्रेन के बारे में जरा एक्सप्लेन कर दें कि इसका क्या फंक्शन था। सर्वाइवल ब्रेन आपने कहा। अरे सर्वाइवल ब्रेन जो है आपकी जितने बॉडीली फंक्शंस हैं जो इन्वॉल्व हैं इन कीपिंग योर बॉडी इंटैक्ट एंड कीपिंग योर बॉडी सेफ, और ये जानवरों के अंदर भी और हमारे भी सबके अंदर ये लिम्बिक सिस्टम इस तरह बना होता है। नीचे का जो हाइपोथैलेमस है वो आपके ग्लैंड्स और उनकी फंक्शनिंग, ये सब सर्वाइवल फंक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो वो सर्वाइवल पार्ट है द ब्रेन। थैंक यू, थैंक यू जी थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज मैडम। जी डॉक्टर जी शाजिया मैडम। फैसलाबाद से। डॉक्टर शाजिया। डॉक्टर साहब, मैं पूछना ये चाह रही हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है इसकी जो पहली स्लाइड है, काइंडली अगर वो शो कर सकती हैं या उसका ब्रीफली बता दें जरा, क्योंकि मेरी लाइट ऑफ हो गई थी। नहीं मुझे समझ नहीं आ रही पहली स्लाइड कौन सी। लेट मी सी कि आप कौन सी स्लाइड। इमोशनल इंटेलिजेंस। हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस की तो उसमें मैंने सिर्फ डिफाइन किया था कि ये कैपेसिटी है ऑफ इट कैन बी। ये वाली स्लाइड, ये वाली तो नहीं मैडम, अच्छा एम्पैथी से पहले। अच्छा ये है, इमोशन इज द कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज योर ओन फीलिंग्स, ये वाली। नहीं मैडम। अच्छा मुझे मालूम नहीं है, पता देखें ना, एम्पैथी से पहले, एम्पैथी से पहले वाली थी ये सेल्फ मोटिवेशन। ये एम्पैथी है ना मैडम, इससे पिछली। यस ये सेल्फ मोटिवेशन है ना, अपने आप को मोटिवेट करा और हैंडल योर इमोशंस, ये वाली बात। और इसके आगे थी रेजिलियंस। ठीक है जी, ये सारे। थैंक यू मैडम। ठीक, यू वेलकम। आप कोई और कुछ सवाल करना चाहेंगे? अच्छा मैडम शमीम, मैडम शमीम बात करना चाह रही हैं कुछ? मैडम अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम शमीम। मैडम बिल्कुल लाइट जी मैडम। है वो क्योंकि लाइट नहीं थी, मेरा उसमें ना टाइम नहीं हो रहा था, बिल्कुल स्टार्ट वाली जो है।
वो मैडम ऐसे करें ना, स्लाइड्स तो आपको यहाँ से शायद आपको रिकॉर्डिंग वर्बल ऑडिटरी रिकॉर्ड ये जो है ना ऑडिटरी रिकॉर्डिंग्स होंगी इनके पास, वो आप इनसे लेके तो उसको देख लीजिएगा। उसमें स्लाइड को मैंने रीड आउट किया हुआ है आपके लिए, क्योंकि उसमें आप क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रही होंगी कि उसमें बहुत इंटेंस मटेरियल था, तो वो आपको रिकॉर्डिंग से भी सुनने को मिलेगा। मिस नजीन कौसर, नाज़नीन कौसर, जी मिस अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैम। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम जी लेक्चर मैडम। आज का बहुत अच्छा, जबरदस्त, और अंदाज भी आपका इतना अच्छा था कि हर चीज हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई माशाल्लाह से। स्लाइड्स भी वेरी एक्सीलेंट आप वंडरफुल, लेक्चर। थैंक यू, थैंक यू, आपके लिए था, और दीज आर लेसन्स ऑफ लाइफ। थैंक यू थैंक यू। जी। मैडम आसमा, आप बात करना चाह रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? आई एम योर स्टूडेंट। जी वालेकुम, मैं ठीक ठाक, थैंक यू। अच्छा हाँ जी, थोड़ा मैं ये बताना चाह रही थी कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस अगर हम देते हैं तो उससे बच्चों की जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो उसका चेक हो सकता है, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रैक्टिकल। हाँ, गुड आइडिया, गुड 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 आइडिया, गुड आइडिया। वो साइकोलॉजी में तो इंशाल्लाह हो सकता है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में भी हो सकता है। लेकिन बता मैडम लीना, मैडम लीना खुरम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम जी मैम मैडम। आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि ये जो आपकी वर्टिकल और लेटरल थिंकिंग आपने हमें एक्सप्लेन की, इट वाज हाँ, वेरी गुड एज फार एज द सोशल साइंसेज आर कंसर्न। आई जस्ट वांटेड टू नो कि हाउ दिस lateral thinking can be helpful in the biological sciences or the sciences, pure sciences what we ओह talk, and how it is मैडम, helpful आपके तो in that. बायोलॉजिकल थिंकिंग साइंसेज में तो लैटरल थिंकिंग भरी हुई है। भरी हुई ओह माय नहीं, गॉड, हाँ, आप कोई इन्वेंशन, कोई ड्रग्स का, कोई किसी का देखें, वहां पर इतने एग्जांपल्स हैं कि वो जो चल रहा है ना सिस्टम, उससे हट के उन्होंने निकाल के एक्सपेरिमेंट्स करके देखे हैं, so एंड दे हैव how डिस्कवर्ड समथिंग the न्यू। experiments are, all the experiments would be included in वो the hypothesis and the दे experimentation and इवेंचुअली, the research, इवेंचुअली they all देखिए, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपको एक ड्रग है एलएसडी, रोशनी I डेवलप की can't थी hear you ma'am. 1940s, लाइसर्जिक एसिड डाइथलमाइड एलएसडी, और ये बनाई थी उन्होंने रोशनी 1940s में, और वो बनाने वाला स्विट्जरलैंड में वो ड्रग्स को टेस्ट कर रहा था लैब में, तो उससे ना उसकी एक जो भी ड्रग उसने बनाई थी उसका टूट गया, टेबल पे थोड़ी सी नुक्ता सा गिर गया वो सफेद पाउडर का, तो शायद उसने इनहेल कर लिया। वो कहता है कि वो ये सारी कहानी आप कहीं भी देख लें, इट इज एग्जैक्ट। उसने कहता है मुझे आई वेंट थ्रू सच डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस। मैंने कहा मुझे क्या हो गया? कहता मैं सोचते 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 आई अराइव्ड एट द कंक्लूजन कि वो, और तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वहां पर पाउडर गिर गया था और मैं खड़ा था, तो मैंने शायद इनहेल करे। उसके बाद उसकी सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एलएसडी हुआ, और देन इट बिकेम वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स, जो कि उस पर अभी रिसर्च वो भी है, और टॉर्चर के लिए भी इस्तेमाल होता है, उसके लिए प्लेजर के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं। एलएसडी इज वेरी पोटेंट। तो ये एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, और भी होंगे, लेकिन आपको व्हाट आई एम सेइंग इज लैटरल थिंकिंग होती है इवन इन दीस साइंसेस। तो मैं ये कह रही हूँ we will be including all this in the lateral sense of the critical Oh thinking. yes, oh yes, vertical नहीं था ये, it is हाँ जी, certainly not vertical नहीं है, vertical। it's always lateral more involved in the critical thinking. अच्छा But we are talking अच्छा, about ठीक the है, pure sciences. Thank you, thank you. जी सही है, थैंक यू वेरी मच। अब मेरे पास इसका किसी और ने कोई, अब टाइम खत्म हो गया है। मॉडरेटर kindly, thank you all very much for your comments, and thank you all very much for listening very patiently. All the best to you. Regarding the presentation skills, what are the practices, what are the tips to make the presentations more effective? So I am serving as associate professor in the Department of Mechanical Engineering, and as Zulkarnain said, we are together since last 2.5 years for different topics, for different trainings, for different presentations.
So to keep continuing, hopefully we will have some more interactions in the future. So this particular session is based on the presentation skills. So presentation is not only the PowerPoint presentation, but it also includes the participation in your class, the participation in meetings, or if you are talking to someone one-on-one, then obviously your presentation skills can make a lot of difference, and you can make an everlasting effect on the other person or on the other party. So let's move on. Uh, we will be starting with our session by highlighting the importance of this session. So why this session is important, why should we attend this session? So एक तो इसकी कंडीशन जो है वो आपकी प्रमोशन है. Hopefully everybody will get promoted to associate professor इंशाल्लाह. लेकिन प्रमोशन जो है वो उसके साथ साथ ऑब्वियसली अगर PHEC ने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है तो इसमें हमें बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा. और आज इस सेशन में हम देखेंगे कि प्रेजेंटेशन स्किल्स जो हैं वो हमारी, चाहे वो क्लास में लेक्चर है या मीटिंग में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं या हम वन ऑन वन किसी स्टूडेंट की काउंसलिंग कर रहे हैं या किसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो हमारी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं वो किस तरह से उस स्टफ को या उस कंटेंट को जो हम डिलीवर कर रहे हैं या जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो किस तरह से उसको इफेक्टिवली हम डिलीवर कर सकते हैं. So we will start our session with the question why this session is important. Why should you attend this question? Why should you attend this session? And then we need to analyze the audience before starting the presentation. So this is actually a flow, a rundown through which we should start our meeting, we should start our class, or we should start our talk, right? So after analysis of the audience, we will discuss what are the good presentations and what are their components, which are also known as presentation blueprints. So presentation blueprints में हम डिस्कस करेंगे कि उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और हर पार्ट की क्या इम्पोर्टेंस है और कौन सा पार्ट जो है वो किस तरह से प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाता है. So we will discuss after analysis of the audience. And then there is an integral part of every presentation. अगर आप क्लास की बात करें तो हर क्लास में, और अगर आप प्रेजेंटेशन की बात करें या आप मीटिंग की बात करें या आप अपनी टॉक की बात करें, तो हर मीटिंग, हर प्रेजेंटेशन, हर लेक्चर या हर क्लास के ख़त्म होने से पहले एक क्वेश्चन आंसर सेशन किया जाना चाहिए. So how to manage the question and answer session effectively, we will discuss in our session. And then what are the common mistakes we normally commit in our presentations, we will discuss. And we will discuss a list of the things that we need to check before we go our presentation venue, which is known as last minute checklist. And then finally, before concluding the session, I will share a link to evaluate your presentation skills. So that will be actually a self-analysis of your presentation skills. अगर आप उसको honestly, जो इस वक्त आपकी प्रैक्टिस है, उसको आप वहाँ पे रिफ्लेक्ट करें, then you will get some score. और वो स्कोर जो है वो उसकी हमने फिर आगे ग्रेडिंग की है. So अगर आपका स्कोर इस रेंज में है तो आप किस तरह के प्रेजेंटर हैं, और अगर आपका स्कोर जो है वो दूसरी रेंज में है तो फिर आप किस तरह के प्रेजेंटर हैं और आपको क्या क्या जो है वो स्टेप्स लेने चाहिए एक अच्छा प्रेजेंटर या एक अच्छी प्रेजेंटर बनने के लिए. So this is our overall rundown. So we will start our session with highlighting the importance of this session, and then we will move on towards the end of this workflow.
Okay, so why should we attend this session? Why this session is important? So normally, अगर हम class की बात करें, because we all are teachers, so if we start the class with a question, that is very effective. चाहे वो question जो है, obviously that question should be from the article that we are going to discuss. या वो बात जो आपने बतानी है उसके बारे में कुछ थोड़ा सा पहले पूछ लें तो उससे आपको काफ़ी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा. जिस तरह यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, why should we attend this session? Why this session is important? So this session is important if you want to be an effective presenter. If you want that your message is last for longer times, then this session is important. So this session is also important to attend if you want to learn how to present और जिनको presentation करनी है वो कौन है. Because अगर हम अपनी presentation बहुत अच्छी कर लें, बहुत अच्छी तैयारी कर लें, बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लें, स्लाइड्स अगर बनाई हैं तो ज़बरदस्त बना दी हैं, लेकिन अगर हमें ऑडियंस का नहीं पता, इफ़ यू डोंट बॉदर अबाउट द ऑडियंस, देन मे बी दिस इज अ half communicated message. So if you want to communicate the message fully and effectively, then besides your own preparation, this is very much important to know the audience. जिनको आप presentation कर रहे हैं वो कौन है, वो क्या है और वो क्या चाहते हैं, ठीक है, उनका बैकग्राउंड किस तरह का है. So we will this session is important if you want to know about the audience before you start the presentation. All right, so this session is also important to attend if you want to know the 3 ways in which whatever you share with the audience, how that information is processed. So आप जो भी बात कर रहे हैं, अभी भी मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, so इस बात को आप जो है वो किस तरह, किस अंदाज से इसको प्रोसेस कर रहे हैं, इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं. अगर मुझे इन चीज़ों का पता लगाना है तो फिर ये सेशन इम्पोर्टेंट है. And this session is important if you want to read the mind of the audience and you change your strategy to be more effective. So we will try to answer all these questions here, or we will try to highlight all of these importances, the significance of this session. So this session is important because of these 4 facts, and we will try to explain these 4 facts in our today's session. Can anybody confirm that everything is going fine? Because sometimes it happens कि presenter बोल रहा होता है लेकिन कुछ communication का issue आ जाता है. So can anybody from the audience please confirm if it is allowed to speak, or Zulkarnain? Can anybody please send a text in the chat box that everything is going fine? जी सर. Yes, sir. सब कुछ ठीक है. Yeah. All right. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Okay. All right. So आवाज ठीक है. Okay जी, बहुत शुक्रिया आपका. अच्छा जी, after answering this question, why this session is important, I will jump to the planning of my presentation or planning of the presentation of the presenter. हम basically मैं भी presentation ही दे रहा हूँ, लेकिन ये presentation दे रहा हूँ कि presentation देनी कैसे है. so थोड़ा सा interesting है. So इसको बाद में sum up करूँगा. वैसे अभी you take it as a presentation, so I will sum up sometime later during the presentation that what do we mean by each and every slide and its each and every word. ठीक है जी. So plan your presentation before you go to the presentation venue. So planning of the presentation also includes the analysis of the audience. So analysis of the audience does not include any calculations or some difficult performances or measurements. So it's just like you have to have a look on your audience.
सो एक दफ़ा आप नज़र ऐसे करेंगे तो you can read many of the information that the audience is giving to you. So इसमें से जो चीता मालूमात हैं जो आप एक नज़र दुराने से या कुछ थोड़ी सी इंटरेक्शन करने से ऑडियंस के साथ आप उनके बारे में कुछ जान जाएंगे, उसमें से सबसे पहले जो चीज़ है वो है expectations. So clear the expectations or just try to know the expectations why you people are here. या ये भी कह सकते हैं कि why I am here being the presenter, आप ये clear कर सकते हैं कि why I am here, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो सेशन है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है. ठीक है, तो there are different ways in which you can clear the expectations of the audience. Maybe you can just ask them, so what are your expectations from this particular session? या आप उनको ये भी बता सकते हैं कि why this session is important as I just explained, right? And why you are here, या why am I here, मैं यहाँ पे क्यों हूँ. सो आप अपने आने का मकसद या उनके आने का मकसद या फिर इस सेशन की ओवरऑल इंपॉर्टेंस को बता के आप इनकी एक्सपेक्टेशंस को क्लियर कर सकते हैं. And you can also ask about their needs. So if there is anybody or what are their basically expectations from this particular session, and then just by looking at the audience you may know the needs, the constraints of the audience. So by the constraints we mean many things. सो इसमें से एक चीज़ जो है वो ये है कि आप जिस ऑडियंस से बात करने जा रहे हैं या जिस ऑडियंस से बात करना शुरू करनी है आपने, उसका लेवल ऑफ नॉलेज क्या है. लेट्स से सो देयर माइट बी a big hindrance, a big obstacle if the knowledge of the audience is different from the knowledge level of your presentation. So maybe you can spend a few minutes to bring the audience to the same level for which the presentation is made. Kindly अपने माइक म्यूट कर लीजिएगा जी, क्योंकि आपकी आवाज़ जो है वो सारे सुन पा रहे हैं और डिस्टर्बेंस भी थोड़ी सी हो रही है. सो काइंडली म्यूट योर माइक्स इफ इट इज़ नॉट नेसेसरी टू स्पीक. थैंक यू. सो कंस्ट्रेंट में एक तो नॉलेज लेवल है ऑडियंस का, वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए. सो इफ यू स्टार्ट विद अ क्वेश्चन यू विल कम अप विद व्हाट इज द नॉलेज ऑफ द ऑडियंस रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक, या उस क्वेश्चन के तनाज़ुर में आप देख सकते हैं. सेकेंडली कंस्ट्रेंट्स में जो चीज़ इंक्लूड होती है वो ये भी है कि क्लास में कितने लोग बैठे हैं, या जो ऑडियंस है उसका स्प्रेड कैसा है, कहाँ तक लोग बैठे हुए हैं. आया कि फर्स्ट 2 रोज हैं, कुछ लोग बैठे हैं, या देयर आर 50+ पीपल इन द क्लास, या उस वेन्यू में जो नंबर ऑफ पीपल है वो कितने हैं आपको गिनने की जरूरत नहीं है. आप जस्ट एक नज़र घुमाएं और देख सकते हैं. एंड देन अकॉर्डिंगली यू नीड टू सेट योर वोकल्स. फिर आप अपना जो वॉल्यूम है वो इस तरह से सेट करें कि आपकी आवाज़ एंड तक जाए, क्योंकि अगर आपकी आवाज़ नहीं जा रही तो फिर मे बी पीपल आर नॉट बॉदरिंग अबाउट वट एवर यू आर शेयरिंग विद देम. और एक कंस्टेंट में ये भी चीज़ है कि आप जहाँ पे खड़े हैं या जहाँ पे बैठे हैं, क्या सारे लोग आपको देख पा रहे हैं, चाहे वो देख ना चाहते हो, लेकिन क्या आप सबको देख पा रहे हैं. सो ये सारी की सारी कंस्ट्रेंट्स हैं जो आपको विद इन अ फ्यू मिनट्स जस्ट बिफोर यू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन ये आपको क्लियर करनी होती है. और एक कंस्ट्रेंट की ये भी टाइप है कि यू कैन आस्क इफ देयर इज समबडी इन दैट वेन्यू, कि अगर किसी का कोई मसला हो, किसी को हेयरिंग एड का इशू हो या किसी को आई साइट का इशू हो, तो यू कैन चेंज देयर लोकेशन, देयर सीट. सो ये नॉर्मली फर्स्ट टाइम जब आप इंटरेक्ट करते हैं ऑडियंस के साथ उसके लिए है. लेकिन अगर रेपिटेटिव इंटरेक्शन है, आपकी क्लास जो है वो एक वीक में एक दफ़ा वीकली बेसिस पे है या ट्वाइस अ वीक है, देन यू नो ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इन द क्लास, और आपको पता है कि किसकी क्या कंस्ट्रेंट्स हैं.
तो ये प्रेजेंटेशन स्पेसिफिकली जब आप फर्स्ट टाइम क्लास में जा रहे हैं उसके लिए, या फिर जब आप कोई कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट कर रहे हैं या किसी मीटिंग में प्रेजेंटेशन है, या आप इवन विदाउट प्रेजेंटेशन आपने किसी से बात करनी है, तो इन चीज़ों का ख्याल जो है वो रख लें। हो सकता है आप अपनी सारी बात खत्म कर लें और वो बंदा को पता चले कि जो वो तो सुन ही नहीं पा रहा था। जैसे मैंने अभी पूछा है कि क्या अभी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैं ये कंफर्म कर लिया कि सबको आवाज़ आ रही है और स्क्रीन शेयर है, तो सो दैट द मैसेज इज नॉट लॉस्ट। थर्डली जो चीज़ है वो डेमोग्राफिक है। सो डेमोग्राफिक्स में आई थिंक आई मिक्स द कंस्ट्रेंट एंड द डेमोग्राफिक्स। सो डेमोग्राफिक्स में आप क्या करते हैं, आप क्लास जो ऑडियंस है उसका साइज और उसकी स्प्रेड चेक करते हैं। कंस्ट्रेंट में आप उनका नॉलेज चेक कर लिया, उनकी अगर कोई स्पेसिफिक पर्सनल कंस्ट्रेंट है, आईसाइट का इशू है या हेयरिंग एड का इशू है, तो उसको सॉल्व कर लिया। और डेमोग्राफिक्स में आप डेमोग्राफी ऑफ द क्लास को एक नज़र में देखते हैं कि क्या आपकी जो आवाज़ है वो सब तक पहुंच पाएगी जब आप बोलेंगे। पता चल जाता है जब आप क्लास में बोल रहे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको अपनी वोकल्स जो है वो सेट करने होते हैं। एंड यू नीड टू सेलेक्ट अ लोकेशन विच इज suitable to have a look on the audience। सारे लोग आपको देख पा रहे हो और आप सबको नजर आ रहे हो, ये जरूरी होता है for an effective presentation। Then before we go for our own presentation, we need to know the audience, the type of audience normally we have in our class। जिस तरह के भी लोग हों, जितने भी लोग हों, उनमें जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है वो 3 तरीकों से होती है। देयर आर 3 ways in which the audience process the information। या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको उन 3 मेथड्स का पता है जिसमें ऑडियंस अपनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रही है या उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, देन यू प्रिपेयर योर इंफॉर्मेशन, यू प्रिपेयर योर प्रेजेंटेशन इन दैट वे, then the presentation will become more effective as compared to कि आपने एक अपनी ही मर्जी से प्रेजेंटेशन बनाई और उसको जो है वो शेयर कर दिया। तो इस पसे मंजर में या इस बैकग्राउंड में हमें देखना है कि जो टाइप ऑफ ऑडियंस है उसमें से जो फर्स्ट टाइप है वो है लुकर टाइप ऑफ ऑडियंस। सो लुकर्स आर द मोस्ट डोमिनेंट पार्ट ऑफ द ऑडियंस। They are about 75% स्लाइड of शो the नहीं हो audience। रही, स्लाइड शो नहीं हो रही। अच्छा जी, स्लाइड शो किसी और का भी इशू है जी? नहीं हो हो रही रही है, है। नो सर, हमें नजर हो रही है सर। नहीं, वी कैन सी। आ रही है, स्लाइड शो हो रही है, उस पे बारी बारी आएगा। इट्स अ स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन आई थिंक। जी बिल्कुल, ये मेरे ख्याल में अगर आपको ये जो फोटो है ये नजर आ रही है तो फिर दैट्स फाइन। और जी अगर ये जी फोटो भी बिल्कुल नजर आ नहीं रही आ है, रही, आ रही है। यस सर। मैडम वो यही नुमाना, पढ़ा रहे हैं। जी 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 मैडम नुमाना, थैंक यू सो मच, आपने कंफर्म किया। मेरे ख्याल में ये कुछ लोगों का सम टाइम इशू हो जाता है कि इंटरनेट स्पीड अगर स्लो हो तो वो थोड़ा सा लैग आता है, टाइम लैग। तो जी। आप थोड़ा सा नहीं वेट सर, वो कीजिएगा। बाकी स्क्रीन ब्लैंक है ना, तो इस वजह से लोगों को कंफ्यूजन हुई है कि शायद ये स्लाइड शो नहीं हो रही। नहीं स्लाइड एटलीस्ट आपको लेफ्ट साइड इतनी नजर आ रही है तो फिर इट मींस के बिल्कुल स्क्रीन इज जी, शेयर्ड। ये स्लाइड है, ये स्लाइड है, चले ये नुमाना स्टाइल ऑफ मैडम, थैंक यू। प्रेजेंटेशन है जो ये आप बताएंगे अभी। चले थैंक यू सो मच। समटाइम्स ये भी है, और एक और इशू भी होता है कि कुछ लोगों का इंटरनेट समटाइम्स उसमें वो स्लो हो जाता है। सो टाइम लैग आ जाता है, जिस वजह से जो मैं बात कर रहा हूँ उनको वो थोड़ी देर बाद वो दिखाई देगी वो स्क्रीन, या मेरी आवाज में थोड़ा टाइम लैग आ जाएगा। तो these things happen when you are connected online। सो प्लीज अगर बिल्कुल ही सबके लिए बंद हो जाएगी तो फिर डेफिनेटली देयर इज सम टेक्निकल इशू। बट इफ सम पीपल आर okay with the presentation, with the screen shared, with the voice, with the video, then I think it's technically okay। all right जी, चलें जी, जो thank you for the interruption by the way। so looker type of audience are the most dominant type of people in any audience। so what are the requirements of the lookers?
ये जो सबसे बड़ी जिनकी तादाद होती है हमारी क्लास में या हमारी ऑडियंस में, उनकी पहचान क्या है या उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि अगर आप की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो आप सेटिस्फाइड हैं। सो अगर आप सेटिस्फाइड हैं देन यू प्रेजेंटेड देम वेल, या आपको प्रेजेंटेशन अच्छी लगी है तो ऑब्वियसली उसका मैसेज भी आपने ग्रैस्प किया है, उसका मैसेज जो है वो काफ़ी लंबे अरसे तक आपके जहन में रहेगा और आप उस पर ऑब्वियसली अमल भी करेंगे। सो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि जो ऑडियंस है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। सो 75% ऑफ द ऑडियंस दे आर मोर इंटरेस्टेड इन पिक्चर्स एंड इमेजेस। सो अगर हम पढ़ाने की ही बात करें, अगर हम टीचिंग की बात करें तो टीचिंग में हमने देखा है हम में से बहुत सारे लोग हैं जो लेट्स से अगर वो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स यूज कर रहे हैं तो टेक्स्ट रिच स्लाइड्स हैं, सारे का सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है स्लाइड के ऊपर, और फिर हमारा प्रेजेंटेशन का अंदाज भी सम टाइम ऐसा होता है कि वी रीड द स्लाइड्स वर्ड बाय वर्ड व्हिच इज नॉट इफेक्टिव। या अगर हम व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड यूज कर रहे हैं तो हम जो है वो लिखना शुरू कर देते हैं और लिख लिख के व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड को भर देते हैं, और जब हम कभी थोड़ा सा फुर्सत मिले और बोर्ड के पीछे देखें तो हर कोई अपना अपना काम कर रहा होता है। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन व्हाट एवर यू आर राइटिंग or when you are reading some books, so everything is you speak is being read by from the book or from the pages. So these things actually spoil the presentation. So we need to add something that the audience is demanding. So उसमें से जो एक चीज है वो है आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर पिक्चर्स और इमेजेस, ग्राफ्स, इंफोग्राफिक्स, स्कीमेटिक्स, प्लॉट्स, कोई फोटोज होनी चाहिए, रेलिवेंट फोटोज। ऐसा नहीं है कि आप बात फिजिक्स की कर रहे हैं और आपकी जो फोटोज हैं वो किसी विलेज की हैं, या बायोलॉजी की क्लास है और फोटोज जो है वो केमिस्ट्री की हो, या डिफरेंट, मतलब लिंक्ड होनी चाहिए, रेलिवेंट। तो यहाँ पे देखें लुकर्स की ये रिक्वायरमेंट है कि देयर शुड हैव सम पिक्चर्स एंड इमेजेस, ग्राफ्स, प्लॉट्स, स्कीमेटिक्स, इंफोग्राफिक्स, समथिंग दैट इज नॉट टेक्स्ट। ठीक है, ये उनकी रिक्वायरमेंट है। और अगर इस तरह की चीजें हैं तो आप कह सकते हैं आपकी प्रेजेंटेशन में 75% ऑफ द ऑडियंस विल बी टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट प्रेजेंटेशन। नाउ हाउ विल वी identify that which type of audience or which are the people who have this nature? They are interested in images, pictures and graphs, plots, schematics, infographics, non-textual stuff. कैसे पता चलेगा उनकी क्या पहचान है? So उनकी पहचान जो है वो कुछ आइडेंटिफिकेशंस हैं जो यहाँ पे एनलिस्ट की हुई हैं। So अगर वो खड़े हैं तो वो बिल्कुल स्टैंड अप टॉल, ठीक है, उनका झुक कर खड़े होने का या टेक लगा के खड़े होने का उनका स्टाइल नहीं है। ये थोड़ी सी कह सकते हैं कि एक मिक्स एंड मैच है। लेकिन एक और उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है, दे गुड अ गुड बॉडी पोस्चर, दे आर ड्रेस्ड अप वेल बिकॉज अपीयरेंस इज इम्पोर्टेंट टू देम। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल जैसे उठे थे वैसे ही आ गए हैं, बल्कि उन्होंने उनकी जो ड्रेसिंग स्टाइल होगा, यू विल फील ऑब्वियसली जब हम डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे क्लास में जा रहे हैं तो हमें पता होता है कि कौन जो है वो किस तरह की ड्रेसिंग कर रहा है। सो दैट ड्रेसिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट जस्ट टू लुक एट द ऑडियंस दैट विच टाइप ऑफ ऑडियंस इट इज। सो एक तो ये है। दूसरा ये है कि दे हैव स्ट्रेस्ड शोल्डर्स, उनके कंधे जो हैं, जो शोल्डर्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेस्ड हैं। ठीक है, ये भी शायद कोई इतनी ज्यादा काम की बात नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि whenever they are looking at you, whenever they are listening to you, they have wrinkles in their forehead, उनके माथे पे बल पड़ेगा। आप देखें कभी गौर करें तो कुछ लोग हैं जिनके माथे पे बल पड़ते हैं जब वो आपसे मुखातब हैं, जब वो आपकी बात सुन रहे हैं या वो आपको देख रहे हैं। तो दिस इज an identification that this type of person is a looker type of person. So इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो इमेजेस, फोटोज और इस तरह की चीजें हैं।
एक और आइडेंटिफिकेशन ये है कि दे वांट टू हैव अ लॉट ऑफ आई कांटेक्ट, आपकी आंखों में देखेंगे वो, और ये इतना ज्यादा डोमिनेंट आइडेंटिफिकेशन है कि जब भी आप बात कर रहे हैं तो वो आपकी तरफ देख रहे हैं। अगर आप फ्रंट जो आपकी क्लास है, स्टेज है या जो भी है, उसमें आप मूव करके बात कर रहे हैं तो उनकी नजर भी आपके ऊपर लगी हुई है, ठीक है। और अगर आप उनकी बैक पे चले जाते हैं तो वो मुड़ के आपको देख रहे हैं, चाहे आपका ध्यान जो है वो दूसरी तरफ ही क्यों ना हो, ठीक है। तो दे वांट टू हैव अ लॉट ऑफ आई कांटेक्ट, वो हमेशा आपको देखते रहेंगे, जैसे ही जो आप कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, जो आप दिखा रहे हैं। समटाइम आप दिखा रहे हैं, वो देख उधर रहे हैं, और जैसे ही आप वहां से हटते हैं तो फौरन वो आपकी तरफ देखते हैं, या आप जो दिखा रहे हैं वो भी कम देखते हैं, बल्कि आपको वो ज्यादा देख रहे हैं। सो आई कांटेक्ट जो है वो चाहते भी हैं और वो मेंटेन भी करते हैं, तो ये उनकी आइडेंटिफिकेशन है। अब जब आपने इनको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वाले जो लोग हैं ये लुकर्स हैं, या आप कह सकते हैं कि इनकी जो पहचान हो गई है, अब इनके साथ हमने कन्वर्सेशन कैसे करनी है, हाउ टू डील विद देम, हाउ टू प्रेजेंट टू देम। सो इसके लिए सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि गिव देम अ लॉट ऑफ आई कांटेक्ट। जो आई कांटेक्ट करना चाहते हैं उनको आप आई कांटेक्ट दें, उनकी तरफ देखें, आप उनकी नजरों में नजरें डाल के बात करें, बिकॉज नो आई कांटेक्ट मीन्स अ सिग्नल ऑफ इग्नोरिंग, यू आर नॉट ट्रस्टिंग टू देम, आप जो है वो उनको वेटेज ही नहीं दे रहे। सो अगर 75% ऑफ द ऑडियंस इज ignored just because of reading the slides, reading from the book, or writing on the whiteboard or blackboard, then at least your message is not communicated to 75% of the audience. So you need to give them a lot of eye contact. So whenever you are talking to them, you are looking at them, आप उनको देख रहे हैं, ठीक है। सो देखना उनकी तरफ जो है ये एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, बजाय इसके कि आप बुक रीड करें या आप स्लाइड रीड करें या आप जो है वो ऑल द टाइम लिखते रहें व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे। सो गिविंग देम अ लॉट ऑफ आई कांटेक्ट means satisfaction of 75% of the audience. And second tip for the presentation to this type of audience is use the words that have visual components. So words, चूंकि वर्ड्स की भी है, तो वर्ड्स में अगर वो वाले हम वर्ड्स यूज करते हैं जिसमें देखने से ताल्लुक है, लाइक लुक एट दिस, सी, लेट अस ड्रॉ द पिक्चर, लेट अस ड्रॉ द सिचुएशन, लेट अस पिक्चर द सिचुएशन। सो ये जो इस तरह की चीजें हैं, जो पिक्चर है, फोटो है, सी, लुक, देखें, इस तरफ देखें। सो देखना जो है ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो उनकी अटेंशन को ट्रिगर करते हैं टुवर्ड्स यू। सो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ ऑडियंस। द सेकंड टाइप ऑफ ऑडियंस आर द लिसनर्स। सो दीज आर 20% ऑफ द ऑडियंस, ऑलमोस्ट 20%। अब इनकी क्या पहचान है या इनकी क्या रिक्वायरमेंट है? इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि दे आर मोर इंटरेस्टेड इन वर्ड्स एंड साउंड्स। आप जो बात कर रहे हैं या जो आपकी स्लाइड पे लिखा हुआ है वो उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है, बजाय इसके कि आप फोटोज, इमेजेस, वीडियोस वगैरह दिखाएं। लेकिन आप देखें कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो इनका प्रोपोर्शन है ओवरऑल ऑडियंस में, वो रिलेटिवली कम है, 20% है। अब इनकी क्या आइडेंटिफिकेशन होगी, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन लिसनर है और कौन लुकर? तो इसके लिए कुछ आइडेंटिफिकेशंस हैं। पहली बात तो ड्रेसिंग पे आ गई, अपीयरेंस से कोई वो बहुत ज्यादा जो है वो उसको वेटेज नहीं देते। उनकी ड्रेसिंग जो है वो नॉर्मली इट्स नॉट रेलिवेंट टू द सिचुएशन, ठीक है। सेकेंडली एक बड़ी डोमिनेंट फीचर आप कह सकते हैं लिसनर्स का, वो ये है कि दे लुक डाउन इनटू द लेफ्ट, नीचे देखेंगे और लेफ्ट की तरफ, वो नीचे देख के लेफ्ट की तरफ देख रहे हैं, लेकिन उनके कान जो है वो आपकी तरफ है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। दे आर लिसनिंग टू यू, दे आर कैचिंग योर वर्ड्स बाय लुकिंग डाउन टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है जी। और फिर दे हैव टेलीफोन पोस्चर, इस तरह बैठे होंगे क्लास में,
बहुत सारे लोग जो हैं वो, बहुत सारे तो खैर नहीं, लेकिन कुछ लोग आप देखेंगे ऐसे बैठे हैं, या वो ऐसे बैठे हैं, या वो ऐसे बैठे हैं। तो चाहे उनका ये स्टाइल है, उनके कान जो है वो आपको सुन रहे हैं। ये स्टाइल है, उनका कान आपकी तरफ है, या ये स्टाइल है, उनका कान जो है वो आपकी तरफ है। ठीक है, तो टेलीफोन पोस्चर है, या हैंड अंडर द हेड है, या हैंड अंडर द चिन है, तो ये वाला स्टाइल है कुछ लोगों का। नॉर्मली हम देखेंगे, अगर आज तक ऑब्जर्व नहीं किया तो आप देखिएगा, इवन व्हेन यू आर एट होम, when you are in the meeting, when you are in the class, you will see some people behaving like this. So it means they are listeners and their requirements is words and sounds. जो आपकी वर्ड्स की चॉइस है वो ऑब्वियसली मैटर करेगी इन 20% लोगों के लिए। Then there is another identification of listener type of audience. They have the habit of self-talking. अपने ही आपसे वो बात कर रहे होंगे। हम में से भी कुछ लोग हैं जो मम्बलिंग करते हैं, जो खुद से बातें करते हैं। सो लेट्स से अगर कहीं जाना हो तो हम कहते हैं कि जी अच्छा मैंने ये भी कर लिया है, मैंने बैग रेडी कर लिया है, मैंने पानी की बोतल ले ली है, और मैंने अपना जो है वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी पकड़ लिया। सो जो भी ज़हन में आ रहा है वो हम साथ साथ बोल भी रहे हैं। तो क्लास में भी कुछ लोग ऐसे हैं, वो बोल रहे होते हैं, वो किसी के साथ बात नहीं कर रहे, हो सकता है वो आपको आवाज भी ना आ रही हो, लेकिन they are basically moving their lips, means they are talking to themselves. So ये भी एक उनकी आइडेंटिफिकेशन है। पेन क्लिकिंग जो है ये बड़ी कॉमन है हमारे सोसाइटी में। तो जो हैबिचुअल पेन क्लिकर्स हैं, आप कह सकते हैं कि वो नॉर्मली लिसनर्स हैं। वो पेन क्लिकिंग कर तो रहे हैं, पेन क्लिकिंग हो रही है, लेकिन उनका जो कान है वो आपकी तरफ है। ठीक है जी। सो पेन क्लिकर्स आर नॉर्मली लिसनर्स। एंड देन अनदर dominating feature of the listeners is they do not want to have a lot of eye contact. अगर आप उनकी तरफ देखेंगे तो वो नजरें झुका लेंगे या घुमा लेंगे, या वो आपकी तरफ देखेंगे नहीं। आप देखिएगा तो क्लास में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ आप देखेंगे तो वो नजरें फेर लेंगे। सो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन है। अदर देन दीज सिम्टम्स और दीज सिग्नल्स के वो आपकी तरफ देखेंगे नहीं। सो जो आपकी तरफ नहीं देखता, आप भी उसकी तरफ बहुत ज्यादा स्टेयर ना करें, घूरे नहीं। ठीक है, लेकिन जो आपकी तरफ देख रहे हैं, जो आपको देखना चाह रहे हैं, जो नजरों में नजर डाल के बात करना चाहते हैं, आप उनके साथ फिर वैसे ही बात करें। आप वो पिछले पार्ट देख चुके हैं हम कि वो 75% ऑफ द ऑडियंस है जो आई साइट या आई कनेक्शन चाहती है, और ये 20% लोग हैं जो आई कांटेक्ट नहीं चाहते। ठीक है, ये जो लोग आपकी तरफ नहीं देख रहे, या जिनको आप बार बार कहते हैं कि लुक एट मी, इस तरफ देखें, और वो थोड़ी देर देखते हैं और फिर नजर झुका लेते हैं, या ऊपर वाले जो सिम्टम्स हैं वो ऐसे कर लेते हैं, या वो नीचे देखना शुरू हो जाते हैं, या वो पेन क्लिकिंग या कोई और अपनी मसरूफियत वो तलाश कर लेते हैं। तो इट मीन्स के दे आर नॉट लुकिंग एट यू बट दे आर लिसनिंग टू यू, राइट। सो अब इनके साथ हमने प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, इनके साथ बातचीत कैसे करनी है, इसमें से एक जो चीज यही है कि डू नॉट गिव देम अ लॉट ऑफ आई कांटेक्ट। आप उनकी तरफ ना देखें ज्यादा, या आप उनको बहुत ज्यादा आई कांटेक्ट ना दें, या उनको मजबूर ना करें कि वो आपकी तरफ देख के बात करें या आपकी तरफ देख के सुने। सो इफ दे आर लिसनिंग टू यू, दिस इज मोर देन इनफ, बिकॉज they are capturing your message by the words that you are speaking, or by the text that is written on the slides or on the whiteboard or blackboard. So do not give them a lot of eye contact. अगर आप बहुत ज्यादा उनको मजबूर करेंगे या उनकी तरफ देखते रहेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा, और वो कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। सो कोशिश करें कि आप उनकी तरफ ज्यादा ना देखें। जस्ट लुक एट देम एंड लुक अवे, look at them and look away, and look at those people who are basically looking at you. And the second tip for the listener type of audience is use the words that have auditory components. So वो वाले words use करें जिसमें सुनने से ज्यादा
जो है वो सुनने वाले कंपोनेंट की ज़्यादा उसमें डोमिनेंस है, लाइक लिसन टू मी, प्लीज़ बात सुने, सुने मैं क्या कह रहा हूँ या क्या कह रही हूँ, दैट साउंड्स गुड, लेट्स टॉक अबाउट, सो जो बोलना है, चले हम बात कर लेते हैं, चले हम बात करते हैं। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो उनके अटेंशन को ट्रिगर करेंगे टूवर्ड्स यू। Now, the third way in which the audience process the information, or you can say the third type of audience are touchers. So these are the least number of people in the audience, about 5%. So they are more interested in feelings, in होल्डिंग द थिंग्स इन देयर हैंड्स। वो अगर लेट्स से आप कहते हैं कि जी मैं फॉर एग्जांपल यू आर टॉकिंग अबाउट अ रिमोट, सो आप घंटों बात कर लें, उनको बता दें रिमोट क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, तो शायद उनको समझ ना आए। अगर आप उनको जस्ट दिखा दें तो वो पकड़ के इसको देख के बड़ी जल्दी समझ जाएंगे कि ये क्या चीज है। ठीक है, सो टचर्स आर दोज पीपल, आर दोज टाइप ऑफ ऑडियंस, they are more interested in some physical model, in holding the things in their hands, and they can feel, they can touch, they can learn from them very very easily as compared to क्या आप उनको theoretically बहुत ज़्यादा पढ़ा दें। लेकिन ऐसे बहुत चंद लोग होते हैं। तो इनकी क्या आइडेंटिफिकेशन है, इनको हम कैसे पहचानेंगे? They want to have a lot of body contact. सो ये पिछले कोरोना का एक पूरा टाइम गुजरा है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर 2019, सो 2019 से लेकर ऑनवर्ड, सो उसमें बड़ी सख्त जो है वो हदायत भी थी गवर्नमेंट की तरफ से भी, और ओवरऑल हम भी इसको ऑब्जर्व कर रहे थे कि कीप सोशल डिस्टेंसिंग। तो सोशल डिस्टेंस में एक ये थी कि डू नॉट शेक हैंड, लेकिन इसके बावजूद उस कोरोना के दौर में भी कुछ लोग ऐसे थे कि वो कहते हैं वो छड्डो जी कोरोना शरोना कोई नहीं है, तुसी हाथ मिलाओ। ठीक है, तो इस तरह के लोग जो हैं वो बेसिकली टचर्स हैं। दे वांट टू हैव बॉडी कांटेक्ट, दे वांट टू टच समथिंग टू लर्न एंड टू एब्जॉर्ब द थिंग्स। सो ये एक उनकी पहचान है। और देन दे आर ड्रेस्ड फॉर द कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। आप देखेंगे कि कुछ लोग हैं वो मीटिंग फॉर्मल है लेकिन वहां पे इनफॉर्मल वे में आ जाएंगे, या इनफॉर्मल ड्रेसिंग हो जाएगी, या वो बहुत ज्यादा स्टाइल के कंसर्न नहीं है, वो अपना ही एक रंग जुमा लेते हैं। तो ये भी एक उनकी पहचान है। और एक और उनकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि व्हेन दे आर टॉकिंग दे लीन इन, वो थोड़ा सा आगे होके बात करेंगे जैसा कि वो फिजिकल स्पेस को कम कर रहे हैं। तो कुछ लोग होते हैं वो मुंह बहुत आपके पास ले आते हैं, सम टाइम तो लोग कान में आगे बात करते हैं ना, तो उसे हमको फिर कहना पड़ता है कि भाई थोड़ा सा पीछे होके बात करें। सो वी नीड टू मेंटेन अ डिस्टेंस। लेकिन बेसिकली वो 5% लोग होते हैं, दे आर टचर्स, दे वांट टू reduce the physical space between them and the presenter। और अगर उनकी जो है वो लर्निंग टाइप कोई रिक्वायरमेंट है तो उनको कोई फिजिकल मॉडल या उसकी कोई जो है वो फिजिकल कोई उनका कोई उनको दिखा दिया जाए, वो उसको पकड़ लें, उसको देख लें, तो दे आर मोर कंफर्टेबल एज कंपेयर टू फोटोज, इन्फोग्राफिक्स या टेक्स्ट या जो वर्ड्स हैं आपके। अच्छा जी, एक और उनकी पहचान ये है कि दे लुक डाउन स्ट्रेट, नीचे बिल्कुल नीचे देख रहे होंगे, ये भी उनकी एक पहचान है। तो अब इनके साथ जो है वो हमने कन्वर्सेशन कैसे करनी है, हाउ टू डील विद देम, हाउ टू प्रेजेंट टू देम। सो वी नीड टू यूज द वर्ड्स दैट हैव फीलिंग कंपोनेंट। आप उनको एहसास दिलाएंगे। लेट्स से हाउ डू यू फील अबाउट, हाउ डू यू फील इफ यू आर सपोज्ड इन दैट सिचुएशन, हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगेगा कि अगर आप जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, या आप उनको थोड़ा सा इस एहसास में लेके जाएंगे
या उसको उन सिचुएशन में उनका जो है वो फीलिंग्स आप उनकी डेवलप करने की कोशिश करेंगे, तो देन दे आर मोर देन हैप्पी टू लिसन टू यू, टू इंटरेक्ट विद यू एंड टू लर्न फ्रॉम यू। सो किसी भी ऑडियंस में या किसी भी सीटिंग में, किसी भी क्लास में किसी एक तरह के लोग नहीं होते। जस्ट टू सम अप दीज 3 स्लाइड्स और these 3 styles of people used to absorb the information. So we have mix and match. We have lookers, we have listeners, and we have touchers. So it means our presentation should be prepared to address these 3 type of people. So we need to fulfill their requirement so that we can convey our message, and when the message is conveyed, the presentation is fine. So हमें अपने presentation में, let's say अगर वो PowerPoint presentations हैं, then we need to include the photos, we need to include some text as well. So बिल्कुल भी text free slides ही जो हैं वो भी basically वो जो 20% लोग हैं जो कि listeners हैं, they are more interested in words and sounds. So we will be ignoring to them. So we need to make the slides balanced in photos, in text, and then with the words we use. हम इनको मिक्स एंड मैच करके यूज करें। कभी हम ये कह सकते हैं कि देखें, कभी हम कह सकते हैं कि सुन लें, कभी हम कह सकते हैं कि प्लीज लिसन टू मी, लुक एट द डायग्राम, ठीक है। कभी हम उनको जस्ट फील का वर्ड यूज करके हम जो सारे के सारे पीपल हैं उनके अकॉर्डिंगली हम उनकी जो है वो अटेंशन को अपनी तरफ डाइवर्ट करके रख सकते हैं। So when the attention is towards you, then your message is basically taken care of, and the message is conveyed successfully. The presentation is fine. Then no, the next thing that we want to discuss is what are the components of a good presentation. Obviously जो हमने चीजें डिस्कस की हैं ये तो ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ऑडियंस जो है उसके बारे में हमें पता हो कि जो सेकंड पार्टी है। अब हमें अपने बारे में देखना है कि जो हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं उसमें हमें किन किन चीज़ों का ख्याल करना है। उसमें सबसे पहले जो प्राइम इम्पोर्टेंस है वो तो जो कंटेंट आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जो भी आपने बात करनी है उसकी प्रेपरेशन है और उसके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस और आपकी ग्रिप है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि फिर बाकी 3 चीज़ें बचती हैं जिनको हमने ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाना है। उसमें से एक चीज़ तो प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर है कि हम जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो उसको अरेंज किस तरह से कर रहे हैं, उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, कैसे शुरू करते हैं, फिर क्लाइमेक्स पे जाते हैं और फिर कंक्लूजन तक उसको कैसे लेके जाएंगे। सो अरेंजमेंट क्या है, उसका स्ट्रक्चर एक चीज़ है। फिर उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी प्रेजेंटर की बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या वो सिंगल स्टाइल है, सेम वर्ड्स यूज कर रहे हैं, कोई टून में अप एंड डाउन नहीं है, आप जो है वो एक सिंगल वे में बोलते हैं, यूनी स्टाइल है आप, या आप मल्टी स्टाइल है, वैरायटी ऑफ स्टाइल है। कभी आप यूज करते हैं वर्ड्स जिसमें ऑडिटरी कंपोनेंट डोमिनेंट है, कभी आप वो वाले वर्ड्स यूज करते हैं जिसमें विजुअल कंपोनेंट है, कभी वो वाले वर्ड्स यूज करते हैं जिसमें फीलिंग का कंपोनेंट है, कभी आप अपनी जो है वो हैंड्स को मूव करते हैं, कभी अपनी आप जगह को चेंज करके, कभी चलते चलते रुक के और कभी रुकते हुए चल के आप बात को करते हैं, कभी आवाज को ज्यादा करके कम करके करते हैं। तो ये सारी की सारी बॉडी लैंग्वेज और आपकी वर्बल डिलीवरी है दैट क्रिएट सम इंटरेस्ट इन योर प्रेजेंटेशन। So at the heart, at the center, it's the preparation of the topic, then how these contents are arranged, and then your body language and your verbal delivery makes the presentation good or bad. So in structure, we need to have a clear introduction, the main body of the message that you want to convey, and then finally the conclusion
This is very important. So the conclusion also includes a question and answer session. We will discuss it later. So in the body language, you should be confident, you should be comfortable, you should become comfort. I mean, you should not be reluctant to speak, hesitant नहीं होना चाहिए, confidence आपका हो, आप gestures use करें, आप eye contact रखें, और आप विजुअल एड्स जो है, लेट्स से अगर आपने ग्लासेस पहनी हुई हैं तो वो ग्लासेस जो हैं वो रिफ्लेक्टिव ना हो, कि उन पे रोशनी पड़ के तो आपकी जो नज़र है, जो आंखें हैं, वो नज़र ही ना आए। ठीक है, तो आई डोंट नो अभी मेरा क्या सूरत हाल है। आंख जो है वो आंख तक नज़र जानी चाहिए। सो आई कांटेक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई कांटेक्ट में लेट्स से कोई हिंड्रेंस आ रही है, इस तरफ ऑडियंस है और इस तरफ प्रेजेंटर है, और इनका आपस में आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो जस्ट इमेजिन 75% of the information is lost, or 75% of the audience is lost. So just imagine how badly it affects the presentation when you are not looking at the audience, or when the audience cannot look at you. And then the verbal delivery, you need to set the speed of your speaking, and you need to speak with pauses. You need to optimize your volume and the vocal range so that everybody is listening to your words, और हर कोई जो है वो आपको देख भी सकता है और सुन भी सकता है। तो इसमें हम बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर जो इंट्रोडक्शन है उसमें क्या होना चाहिए, जो बॉडी लैंग्वेज, जो बॉडी है मेन बॉडी मैसेज की, उसमें क्या होना चाहिए, और कंक्लूजन जो है उसमें क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं टू मेक द स्ट्रक्चर गुड। व्हेन द प्रेपरेशन इज फाइन, when the structure is when the contents are arranged in a good manner, and then you keep your using your body language and the verbal delivery is optimized, then definitely the presentation will be good. So what are included in the structure, specifically in the introduction? So the introduction includes the introduction of the presenter. Who am I? सबसे पहले आप इसका जवाब देंगे कि who am I? Specifically, this is for that class or for that presentation in which this is first time interaction. So first time interaction में तो बताना बहुत ही ज़रूरी होता है कि प्रेजेंटर कौन है। So अगर आप प्रेजेंटर हैं तो आप अपने बारे में बताएं। जैसा कि जब क्लास शुरू हुई थी, ये जो हमारा सेशन शुरू हुआ था, तो जुल्फरनैन ने इंट्रोड्यूस किया, फिर मैंने खुद भी बताया कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। तो उसके बाद व्हाई एम आई हियर एंड व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। सो ये भी बताएं आपके आने का मकसद या इस सेशन का मकसद क्या है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, ये हर क्लास के अंदर इसको मेरे ख्याल में चले। ये तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन नाम बताने से कोई मसला नहीं होना चाहिए कि आई एम, let's say I'm Dr. Nomana Masood, or I am Aisha Sayyed, or I am Bushra Yasmin, or I am Dr. Fariha Javed. So we will have a session on chemistry, physics, Urdu, Islamiyat, or whatever. So इस तरह से आप अपने आप को जो है वो you can give a start. And then you need to identify some important information, some important points of your presentation. Why this session is important. जिस तरह अभी हमने भी शुरू में किया था कि why should you attend this session. So इसकी importance को highlight करने हैं as a part of the introduction, and then how will you accomplish. उसका एक रोड मैप देना है, जिससे हम कह सकते हैं कि contents क्या हैं, पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, और by the end we will discuss what. So this is an overall introduction of your presentation. So you will start introducing yourself, the purpose you are here and why you are here, what are the important things that you are going to discuss in your session, and then how will you accomplish your session. So this makes the introduction okay for every presentation, for every class. It should be like that. उसके बाद जो चीज़ है इंट्रोडक्शन में वो है बॉडी। जो मेन आइडिया है आपने जो प्रेजेंट करना है
उसको आप डिलीवर करेंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट बाय एनालाइजिंग द ऑडियंस, और एनालिसिस ऑफ द ऑडियंस आपने इंट्रोडक्शन में भी कर लिया, एंड यू विल कीप एन आई ऑन योर ऑडियंस, and then you will move from the point of start to the climax of your message, right? And you need to transit well in way between your parts of the main body, the main idea, जो भी आपका टॉपिक है उसमें लेट्स से स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो कोशिश करें कि सारे स्टेप्स को इंक्लूड करें, उसको डिस्कस करें। ऐसा नहीं है कि एक स्टेप आपने बताया और उसके बाद आपने छठा स्टेप जाके बता दिया, तो उसके दरमियान जो मिसिंग लिंक्स हैं उसकी वजह से इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो गई, या इंटरेस्ट जो ऑडियंस का इंटरेस्ट है वो लॉस्ट हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि यू नीड टू गो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आप आइडिया ऑब्वियसली स्ट्रक्चर है उसका जो आपका मैसेज है, सो उसको लेवल बाय लेवल या स्टेप बाय स्टेप लेके ऊपर चलें, और अगर कुछ स्टेप्स आप स्किप कर रहे हैं तो उसके बारे में बता दें, ठीक है, ताकि जो ऑडियंस है उसको पता चल जाए कि ये स्टेप जो है वो अभी फॉर द टाइम बीइंग स्किप किया है, तो इसका एंड रिजल्ट जो है वो ये आ गया। When you are discussing the main idea, you need to be flexible. Flexible in the sense that you should allow the audience to interact. अगर क्लास में कोई क्वेश्चन आता है या आपकी क्वेश्चन आंसर प्रेफरेंसेस जो है वो शुरू में अगर क्लियर हो गई हैं कि जी जब भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो दे ही और शी में जस्ट रेज हैंड एंड स्टार्ट टॉकिंग। सो ऐसा नहीं है कि क्लास में आप बिल्कुल जो है वो यूनी डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन फ्लो है कि आप ही बोलेंगे और किसी को बोलने की इजाज़त नहीं है। सो अगर फ्लेक्सिबल है, अगर ऑडियंस जो है वो आपके साथ इजी टू टॉक है, कंफर्टेबल है, देन द मैसेज इज इजीली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रेजेंटर टू द ऑडियंस। लेकिन अगर ये सख्ती से मना किया हुआ है कि किसी ने ना तो बोलना है, ना बाहर जाना है, ना अंदर आना है, ना किसी ने हिलना है, और ना ही किसी ने जो है वो बात करनी है, ना क्वेश्चन करने हैं, तो इस तरह की जो स्ट्रिक्टनेस है इससे लगता है कि लोगों को जो है वो यरगमाल लोग यरगमाल बने हुए हैं, दे फील देमसेल्व्स एज हाईजैक पीपल। सो फिर जब इस तरह की फीलिंग आएगी तो डेफिनेटली जो प्रेजेंटेशन है वो लीस्ट इफेक्टिव होगी, और आपका मैसेज जो है वो बहुत ज़्यादा लोग नहीं सुन रहे होंगे, बल्कि वो आपकी सख्ती को बर्दाश्त कर रहे होंगे। सो वो जो बर्दाश्त है वो सख्ती होगी, वो आपके मैसेज नहीं होगा फिर। और इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं हो जाना कि आप अपने मैसेज से हट जाएं, बात जो है वो कहाँ से निकली थी और कहाँ तक चली जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ट्राई टू बी फ्लेक्सिबल, बात करें, आंसर करें और वापस अपने कंटेंट पे आ जाएं, ठीक है। और इस सारे के सारे प्रोसेस में ट्राई टू रीस्टेट एंड रिव्यू द मेन बेनिफिट्स एंड द मेन आइडिया। जो आपका मेन मैसेज है उसको बार बार रीस्टेट करते रहें, उसको हाईलाइट करते रहें, और जो भी स्टेप कर रहे हैं टूवर्ड्स दैट कंक्लूजन, टूवर्ड्स दैट मेन आइडिया, उसको लिंक करते रहें, सो दैट विल मेक द ऑडियंस live and connected with you. Then in the structure, the last thing is the conclusion. So in the conclusion, you need to, obviously, when you have delivered your main idea, now you need to restate or review the main idea again. आप उसके बारे में बताएंगे कि हमने जो अभी तक काम किया है ये क्यों किया है, या जो हमने काम किए हैं उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। और उसके बाद आप जो है वो लेट से अगर नेक्स्ट स्टेप जो मे बी इस क्लास में ना करना हो, नेक्स्ट टाइम करना हो, या नेक्स्ट क्लास में करना हो, या आपने कोई असाइनमेंट देनी हो क्लास में, या आपने कोई होमवर्क देना हो, तो उसके बारे में बता दें। एंड देन यू नीड टू हैव अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, and you need to have a closure statement of your session. So these are the conclusion parts. So you need to review the main idea, the main things that you have discussed. You need to highlight the interesting points, क्योंकि interesting points अगर आप highlight नहीं करेंगे
अगर आप ये ऑडियंस पे छोड़ देंगे कि वो बताएं कि इसमें क्या इंटरेस्टिंग था, तो फिर मेरे ख्याल में ऑडियंस को जो है वो इसका शायद आइडिया ना हो, बिकॉज यू आर द प्रेजेंटर, सो यू नीड टू आइडेंटिफाई द इंटरेस्टिंग पॉइंट्स and tell the audience that these are the important things, these are the interesting things, and then you basically giving your message by stressing in an effective way. So after the structure, we discuss the body language. Body language and movement has a lot of impact on the audience when you are delivering the presentation. So in the body language, you need to have an open style. So बहुत सारे लोग मैंने भी लाइफ में ऑब्जर्व किए हैं जो कि लेट्स से अगर बैठे हैं तो टेबल के ऊपर ऐसे बैठ जाएंगे और फिर सारा लेक्चर पढ़ के सुना देंगे, या हाथ जो है वो ऐसे रख देंगे, ठीक है, या वो हाथ पीछे बांध लेंगे, या अगर वो मेल है तो पॉकेट्स में हाथ डाल के वो सारे का सारा लेक्चर, मतलब घुटा हुआ स्टाइल नहीं होना चाहिए आपका। बॉडी जो है वो हैंड्स की मूवमेंट ओपन स्टाइल होना चाहिए। ये इसका इसका एक डेफिनेट इफेक्ट है आपके मैसेज की डिलीवरी में। Then you need to have an eye contact. We have already discussed that about 75% of the audience needs eye contact. So अगर आप पढ़ने में सारा टाइम गुजार रहे हैं या आप जो है वो लिखने में सारा टाइम लगा रहे हैं और उसके बाद आई कांटेक्ट जो है वो बिल्कुल है ही नहीं, लिख के आप कहते हैं कि हाँ पढ़ लिया है, नोट कर लिया है, तो ये मैसेज बेसिकली कन्वे नहीं होता। सो यू नीड टू look at the audience when you are talking, you need to talk to them, and then you need to ask them if there is any further information that they want. And then the third thing is the facial expression. So facial expressions भी तभी काम आएंगे जब आप audience की तरफ देखेंगे। So when you are when let's say when you are highlighting the interesting points, or if anybody identify the interesting or important point, then you need to give appreciation or discourage accordingly if the information is in favor of the article that you are discussing or it is against. So facial expression में smile है या गुस्सा है थोड़ा सा करना दिखाना, so ये ज़रूरी होता है। So ये भी part of the body language है। Then give some gestures if anybody answers the question interestingly and rightly, then gestures से उनको स्माइल पास करना जो है ये लाइवली थिंग है जो आपकी प्रेजेंटेशन को अच्छा बना सकता है। देन बॉडी पोस्चर जो है आपका, आप किस तरह से क्लास में खड़े हैं या कैसे बैठे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका जो मैसेज है उसको कन्वे करने के लिए। और जो स्पेस है आपकी, जो आप कहाँ पे खड़े हैं, समटाइम्स वी द प्रेजेंटर स्टैंड बिटवीन the projector and the screen. So इससे क्या होता है कि हमारा जो प्रोजेक्शन है वो स्क्रीन पे जा रहा होता है, हमारा प्रोजेक्शन, ना कि वो चीज़ जो हम दिखाना चाह रहे हैं। So इस चीज़ को भी जो है वो हमें ज़हन में रखना चाहिए। So अदर दैन बॉडी लैंग्वेज, हम जो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, इसके साथ साथ वी नीड टू कीप रीडिंग द ऑडियंस। जो ऑडियंस है, जो क्लास है, वो हमें कोई ना कोई मैसेज कन्वे कर रही होती है, इधर बाय लुकिंग एट अस, या वो अपना सर हिला के, या वो ऐसे ऐसे करके, या वो किसी भी तरह से। सो इफ यू आर नॉट bothering the non-verbal message from the audience, then it means this is a one-way communication. So one-way communication is not as effective as the two-way communication is. जब आप कुछ बता रहे हैं और वो ऑडियंस सुन रही है, और जब ऑडियंस को भी वो भी बताएगी और आप सुनेंगे और इस तरह से इंटरेक्टिव सेशन होगा, डिस्कशन होगी, तो डेफिनेटली जो प्रेजेंटेशन होगी वो अच्छी होगी। ठीक है, तो यू नीड टू कीप रीडिंग द इंफॉर्मेशन, द नॉन वर्बल मैसेज फ्रॉम द ऑडियंस। सो ये जो नॉन वर्बल मैसेज है ये ऑडियंस का इंटरेस्ट भी शो कर सकते हैं कि इफ दे आर टेकिंग इंटरेस्ट और दे आर गेटिंग बोर्ड, योर ओपननेस इन द क्लास, इधर द क्लास इज होस्टाइल, वो ये रुमाल बनी हुई है,
या वो क्लास या जो ऑडियंस है वो आपकी बात से इत्तेफाक कर रहे हैं या उसको डिसअप्रूव कर रहे हैं। सो अगर ये चीज़ें आप जो है वो रीड नहीं कर पा रहे तो फिर इट मीन्स के आप आंखें बंद करके चलते जा रहे हैं। सो बाकी लोगों का कोई पता नहीं है कि वो पीछे रह गए हैं, वो आपके साथ आ रहे हैं या वो आपको सुन रहे हैं या नहीं। सो व्हेन वी कीप एन आई on the behavior of the audience, in the gestures, in the non-verbal message of the audience, then we can understand them and we can change our strategy. अगर हमने उनको देखा ही नहीं है या उनकी जो नॉन वर्बल मैसेज को हमने डी कोड ही नहीं किया, अंडरस्टैंड ही नहीं किया और हम अपने ही पेस पे और अपने ही स्टाइल में पढ़ाते चले जा रहे हैं या प्रेजेंटेशन करते चले जा रहे हैं, then the message is lost somewhere. It is not delivered to the audience. So we need to have a look on the audience and whatever the audience is communicating to us without speaking a single word, we need to understand them and we need to change the strategy so that everybody is engaged. इसमें वर्बल डिलीवरी जो थर्ड पार्ट है हमारा, उसकी काफ़ी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। सो एक्सप्लिसिटली 5 चीज़ें हैं, उसमें से वॉल्यूम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ द ऑडियंस इज़ नॉट एबल टू लिसन टू यू in addition to the eye contact, then obviously the message is lost. If you are speaking too quietly या अगर आप बहुत ज़्यादा शाउट कर रहे हैं तो भी जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। सो ऑप्टिमाइजेशन जो एक दरमियानी राह है वो अख्तियार करें कि बहुत ज़्यादा शाउट भी ना करें, बहुत ज़्यादा ऊंचा भी ना बोलें, क्योंकि ऊंचा बोलने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो इससे जो है वो एक तो एग्जॉस्टिवनेस हो जाएगी डेफिनेटली, और जो आगे बैठे हुए लोग वो अपनी कानों पे उंगलियां देने के जो है वो देने पे मजबूर हो जाएंगे। सो वॉल्यूम शुड बी ऑप्टिमाइज्ड सो दैट एवरीबॉडी इज लिसनिंग एंड एवरीबॉडी कैन लिसन। द सेकंड थिंग इन वर्बल डिलीवरी इज योर स्पीड। आप जो है बहुत तेज तेज बोलेंगे तो people will try to feel it difficult to comprehend, so उनको समझ नहीं आएगी। so try to speak with pauses, थोड़ा सा गैप दे के बात करेंगे ताकि ऑडियंस जो है वो उस इंफॉर्मेशन को कंप्रीहेंड कर पाए, उसको एब्जॉर्ब कर पाए, उसको समझ सके जो मैसेज आप दे रहे हैं। थोड़ा सा गैप, मुसलसल बोलते चले नहीं जाना बहुत तेज भी नहीं बोलना और बहुत स्लो भी नहीं बोलना कि लोग जो है वो सो ही जाए। सोना भी नहीं है और इतना तेज भी नहीं बोलना कि समझ भी ना आए। Third thing is you need to bring some variety in your presentation, in your style. If you are monotone, अगर एक ही स्टाइल है, lack of expressions हैं और एक सिंगल वे है, जो आपका जो इवन जो समटाइम होता है कि जो टीचर्स के जो एक्सप्रेशंस हैं वो सेम होते हैं हर सिचुएशन में, या जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो बड़ी लिमिटेड है, बार बार वही वर्ड्स बोलेंगे, या आपका एक पर्टिकुलर स्टाइल है तो फिर वो आपकी पहचान बन जाता है, इधर गुड और बैड। ठीक है, सो मोनोटोन न हो आप, एक वेराइटी ऑफ स्टाइल हो आपके पास। कभी आप आवाज, अगर कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है तो आप उसको ऊंचा बोल के उसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट कर सकते हैं। समटाइम्स द इम्पोर्टेंट थिंग्स आर conveyed by speaking slowly, right? So facial expression और आपकी जो movement of hands है, आपका walk है during the class, या बैठने में भी आप जो है वो डिफरेंट स्टाइल यूज कर सकते हैं, कभी बैठ जाएं, कभी उठ जाएं, कभी खड़े होके बात कर लें। सो ये जो डिफरेंट वैरायटी है दैट मेक्स द ऑडियंस इंगेज्ड। एक ही तरह का स्टाइल वो कहते हैं कि मनोसलवा जो है वो जब दिया गया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को, तो वो मनोसलवा से भी तंग आ गए थे, क्योंकि वो सेम चीज एक रोजाना की बुनियाद पे। तो अगर जन्नत के खानों से या मनोसलवा से लोग तंग आ सकते हैं, तो आप जो हमारा एक सिंगल स्टाइल है वो तो बड़ी जल्दी लोगों को उकताहट का शिकार कर देगा। सो वी नीड टू ब्रिंग अ वैरायटी in our style, in our words, in our
slides in our presentation. So variety, the only constant thing in word is the change. वो कहते हैं ना सबात एक तगैयर को है ज़माने में. So अगर आपने इंटरेस्टिंग बनाना है प्रेजेंटेशन को, या आप कहते हैं कि जो आप बात कर रहे हैं वो सारे लोग सुने, then you need to have a change in your style. Variety of information or variety of style, variety of words और variety of ways होने चाहिए. एक सिंगल स्टाइल जो है वो हर तरह हर जगह पे काम नहीं करता. उसके बाद नंबर 4 जो चीज़ है वो फिलर्स हैं. फिलर्स अननेसेसरी पॉजेज हैं बेसिकली. बहुत ज़्यादा अगर आप रुक रुक के बात कर रहे हैं या आप जो है वो बोल ही नहीं पा रहे, तो ये काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं. ये हेजिटेशन भी हो सकती है, आपकी तैयारी जब नहीं होती, जब आप एक्टिव नहीं होते, तो इस सिचुएशन में आप एक्सेसिव फिलर यूज़ करते हैं जो कि नॉर्मली नहीं करने चाहिए. दैट विल इफेक्ट योर वर्बल डिलीवरी. And then the fifth and the last thing is the emphasis at the wrong place. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको आपने एज यूजुअल ही प्रेजेंट कर दिया, उसको बताया नहीं है, उसकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट ही नहीं किया. सो आपने जो स्ट्रेस दिया है वो गैर ज़रूरी बातों पे दिया है, या बहुत ज़्यादा टाइम गैर ज़रूरी बातों पे चला गया. जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो कहीं पीछे ही पसे पुश डाल दी. तो स्ट्रेस at right time with the right style. This is when you convey the message successfully, right? So unimportant चीज़ों पे या गैर ज़रूरी अल्फाज से important चीज़ों को आप highlight करेंगे, कोशिश करेंगे, then your verbal delivery will be adversely affected. So you need to stress the important things, and you can communicate ordinary things in an ordinary way. लेकिन जब जो चीज़ important है उसको आप हाईलाइट करें, उसको स्ट्रेस करें, उस पे एम्फसिस करें, राइट? अच्छा, ये तो वर्बल डिलीवरी हो गई. अब जो इस सारी सिचुएशन के बाद क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दिस इज द बैकबोन ऑफ योर प्रेजेंटेशन नॉर्मली. अभी हम देखते हैं कि पॉलिटिकल सिचुएशन में भी जब हमारा कोई मिनिस्टर या कोई पॉलिटिकल लीडर जो है वो कोई बात करता है, तो फिर उसके बाद ही और शी अलाउज द ऑडियंस टू हैव सम क्वेश्चंस, चाहे वो 1, 2 या 3 क्वेश्चंस हो, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम. सो इसी तरह हमारे पास जो ऑडियंस है, जब हम क्लास में जाते हैं, तो देयर मस्ट बी सम टाइम टू हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन. सो क्वेश्चन आंसर सेशन को इफेक्टिवली मैनेज कैसे करना है और उसकी प्रेफरेंसेस क्या होनी चाहिए, इसके लिए हमने 2-3 केस स्टडीज जो हैं वो गो थ्रू की हैं और उसका कंक्लूजन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं. सो एक केस 1 जो है वो ये है कि लेट्स से इफ स्पॉन्टेनियस क्वेश्चंस आर नॉट एप्रिशिएटेड. लेट्स से इफ सम ऑफ अस व्हाइल प्रेजेंटेशन अचानक कोई क्वेश्चन होता है और बड़ी बदमज़गी हो जाती है, हमें गुस्सा आ जाता है, या हम भूल जाते हैं जो हम बताना चाह रहे हैं, या हम अपने पॉइंट से हट जाते हैं. तो जो स्पॉन्टेनियस अचानक क्वेश्चन है, इसको आप किस तरह से मैनेज करेंगे? आप क्लास के शुरू में ही कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर लें, ताकि अचानक कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो बिल्कुल आपके वहमो गुमान में भी ना हो. ये नॉर्मली ऐसा होता नहीं, लेकिन जो पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, ताकि आपको इस सिचुएशन से जो है वो का सामना ना करना पड़े. और सेकेंडली, स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी मैनेज कर सकते हैं कि यू कैन टेल द ऑडियंस राइट एट द बिगिनिंग ऑफ योर प्रेजेंटेशन दैट दिस इज माई स्टाइल ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. कि एक स्टाइल तो ये है कि जब किसी का कोई क्वेश्चन हो वो हाथ खड़ा करके अपना क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर मेरा स्टाइल ये है कि आप जो है वो क्वेश्चंस अपने नोट डाउन कर लें और फिर हम उसको एट द एंड ऑफ द सेशन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में उसको डिस्कस कर लेंगे. तो इस तरह से आप स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन से बच सकते हैं. एक सेकंड केस है जिसमें इफ द प्रेजेंटर फील्स अनईजी नॉट नोइंग हिज लिसनर्स. लेट्स से कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, पता ही नहीं चला कि किसने पूछा है,
ठीक है, तो उससे जो है वो एम्बैरेसमेंट या जो कंफ्यूजन हो जाती है, तो उससे बचने के लिए ये है कि जब लोग आ रहे हों या जब आप आए तो क्लास के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लें, या जाओ लेट्स से अब आपकी क्लास शुरू हो गई है तो जो लोग आ रहे हैं उनको थोड़ा सा आप नोट करें, जस्ट नोट देम दैट यू आर लुकिंग एट देम। उनको जो है वो उनसे बातचीत करने से पता चल जाता है। सम टाइम हम इतने यूज्ड टू हो जाते हैं अपनी क्लास के साथ कि आवाज से ही पहचान लेते हैं कि ये इस बंदे का काम होगा या इस बंदी का काम होगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। सेकेंडली वी कैन गिव द इंस्ट्रक्शंस के जिसने भी क्वेश्चन पूछने हैं वो पहले हाथ खड़ा करेगा। तो आप पता है कि लेट्स से मल्टीपल हैंड्स आर अप, देन यू कैन जस्ट टेल somebody you can please you can ask your question। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि कौन बोल रहा है और किसने क्वेश्चन किया। एक और केस ये है कि जिसमें लेट्स से इफ द प्रेजेंटर इज डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम हिज सेंट्रल पॉइंट, क्वेश्चन अचानक हुआ और ना सिर्फ गुस्सा आया बल्कि आपका जो असल जो मैसेज था वो कहीं बैक फुट पे चला गया। तो इसके लिए एक दो टिप्स हैं, वो ये हैं कि यू कैन आस्क द लिसनर्स टू होल्ड द क्वेश्चंस फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। जब क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा इस टॉक के बाद या मेरी बात खत्म होने के बाद, तो फिर हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि आपका अगर लेट से एक टॉपिक है उसके स्टेप्स हैं या उसके पार्ट्स हैं, तो हर पार्ट के बाद आप क्वेश्चन इनवाइट कर सकते हैं एंड यू कैन आंसर दोज क्वेश्चंस। और एक सिचुएशन ये आ जाती है कि कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है, लेट्स से समटाइम्स relevant difficult question and sometimes irrelevant question। So if you don't know the answer, then in this situation you need to manage the situation in such that that has a least negative effect to the audience। So let's say अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो स्ट्रेट फॉरवर्डली आप कह देंगे जी आई डोंट नो द आंसर राइट नाउ, but we can discuss sometime later maybe in the next class। या आप ये भी कह सकते हैं कि आप मुझे अपना ईमेल आईडी दे दें। लेट्स से इफ यू आर इन कॉन्फ्रेंस, इफ यू आर समवेयर दैट इज नॉट अ रेपिटेटिव इंटरेक्शन, तो आप उनको कह सकते हैं कि जी यू कैन जस्ट नोट डाउन माय ईमेल और यू कैन जस्ट गिव मी योर ईमेल आईडी सो वी कैन डिस्कस इट सम टाइम लेटर। या आप ये भी कह सकते हैं कि आई विल कंसल्ट एंड देन वी कैन डिस्कस आई विल आंसर दिस क्वेश्चन लेटर। सो इस तरह से आप जो है वो डिफिकल्ट क्वेश्चन को मैनेज कर सकते हैं। बट simply saying no, this is not the right question or this is wrong question and this is not a logical question, we should avoid these sort of answers for the irrelevant and somewhat difficult questions in our question and answer session। Okay ji, so the last thing, the second last thing is what are the common mistakes that we normally commit in our presentations। so इसमें से काफी चीजें हमने डिस्कस करनी है, आप कह सकते हैं उसको जरा रिकैप कर लेते हैं। so talking too fast is a common mistake। so normally अगर लोग जो हैं वो अपनी रूटीन में तेज बोलते हैं विदाउट पॉजेज विदाउट स्टॉप्स, बोलते चले जा रहे हैं, तो ये उनका वैसे तो इशू है उनकी पर्सनैलिटी का, लेकिन हम ये प्रेजेंटेशन पे भी इसका ऑब्वियसली नेगेटिव इफेक्ट आता है। देन इफ यू आर रीडिंग द स्लाइड्स कंटेंट, अगर आप बिल्कुल स्लाइड रीडिंग कर रहे हैं, आप बुक रीडिंग कर रहे हैं, या आपका इंटरेक्शन जो है वो ऑडियंस के साथ नहीं हो रहा, इफ यू आर नॉट गिविंग द ऑडियंस आई कॉन्टेक्ट but you are busy in reading the slides or in reading the books or in writing your content on the whiteboard or blackboard, then this is a common mistake and it leaves a serious effect on the audience। and then your standing position sometimes make a lot of problem for the audience। so if you are standing between the projector and the screen, this is something that is considered as a mistake
in the presentation. So we should stand somewhere which is not affecting the projection of the slides that we are giving to the audience. Then speaking during the transition, let's say if I am moving from one slide to the other slide, if I am not connecting the slides or the contents and the different parts of our speech or parts of our presentation, then that may be a problem for the audience. So we need to connect different parts of our presentation. Maybe we need to prepare the audience mentally before we go to the next slide, or we need to connect the current slide with the next slide and the previous slide. So ये जो connection है, अगर ये absent हो रहा है तो फिर भी problematic है. और इसी तरह if you want to respond to a question and you shuffle through a pile of slides, let's say अभी हम जो है वो इस वक्त slide number let's say 20 पे हैं और जो question पूछा गया है उसका आंसर हम रेफर कर रहे हैं स्लाइड नंबर 5 में. सो 20 स्लाइड से स्लाइड नंबर 5 पे हम कैसे जाएंगे? We will go to 19, then 18, then 17, 16, and then we will jump to 5. So ये जो shuffling of the slides है, this is not taken as good. So इसका एक best method ये है कि right click करें, show all slides, see all slides करें और फिर इसके बाद जो है वो आप उस particular slide पे चले जाएं. ठीक है, तो ये इसका एक छोटा सा टिप है. Now we are moving towards the end of the session, so we need to have a look on the last minute checklist. So just before we go for the presentation, we need to check certain things. उसमें से सबसे पहली जो चीज़ है, that is the room ready? So in addition to your own presentation preparation, जो जहाँ पे presentation देनी है वो room भी ready होना चाहिए. लास्ट वीक में एक बैच था, आई थिंक बैच 3. जब हमारा सेशन शुरू होने लगा तो पता चला कि जी मेरी आवाज़ नहीं जा रही. सो ऑडियंस कैन नॉट लिसन टू मी. चाहे मैं यहाँ पे गला फाड़ के बोल भी रहा था लेकिन फिर भी नहीं आवाज़ आ रही थी. तो पता चला कि कोई माइक का इशू है. तो अगर मुझे पता होता तो ये मैं माइक को पहले क्लियर कर चुका होता. अब चूंकि लास्ट एक्सपीरियंस था, मुझे पता था कि मेरे लैपटॉप में माइक का इशू है, तो आज के सेशन शुरू होने से पहले मैंने उसको दोबारा चेक किया है कॉल करके कि इज एवरीथिंग फाइन, सो दैट वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन. जब आपके पास कोई 50 प्लस लोग ऑलरेडी आपकी मीटिंग में हो और आपका माइक ना चल रहा हो या आपकी जो है वो स्लाइड्स ना शेयर हो रही हो तो फ्रस्ट्रेशन होती है. तो उससे बचने के लिए थोड़ा सा पहले हमें प्रोएक्टिवली इसको मैनेज कर लेना चाहिए. देन वी नीड टू चेक द विजुअल एड्स, द सप्लाईज, कनेक्टर. सम टाइम हमारे पास जो लैपटॉप है उसमें कोई और पोर्ट है और जो वहाँ प्रोजेक्टर या मल्टीमीडिया है उसकी पोर्ट डिफरेंट है, तो वो हमें पहले चेक कर लेनी चाहिए. तो ओपनिंग वर्ड्स क्या हमने रेडी किए हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हाउ विल यू ओपन द सेशन. आप किस लेट्स से क्वेश्चन से शुरू करना है तो क्या वो क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है, या इम्पोर्टेंट चीज़ें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो की पॉइंट्स हैं, जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं वो आपने हाईलाइट किए हुए हैं. अगर कोई नोट्स देने हैं, आपकी रेफरेंस मटेरियल देना है तो क्या वो रेडी है. एंड डू यू नो हाउ टू क्लोज द सेशन. आपका जो जो समरी है, जो क्लोजिंग वर्ड्स हैं, जो क्लोजिंग स्टेटमेंट्स हैं, क्या वो रेडी हैं. So if everything is fine, then the presentation will be good without any problem. Now, just before we jump to the conclusion slide, we need to have a small self-assessment of our presentation skills. So इसके लिए मैं एक लिंक जो है वो पेस्ट करना चाह रहा हूँ आपके चैट बॉक्स में. So just let me paste that link. And then you can just confirm me that you got that link. खत्म होने के बाद देखना है, आपका थोड़ा सा टाइम ब्रेक का लगेगा, but this will worth
सो ये एक सेल्फ एनालिसिस है आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स का। सो इसमें 14 क्वेश्चंस हैं टोटल। So you got 14 questions and each question has 5 marks। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि 5 ऑप्शंस हैं और हर ऑप्शन के मार्क्स हैं 1 2 3 4 5। सो 14 क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स हैं हर किसी के, तो दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 70 मार्क्स। सो 70 मार्क्स में से आपकी जो है वो ये मार्किंग होगी। सो जब आप इसको कर लेंगे तो आपको स्कोर शो करेगा। उस स्कोर की जो प्रेजेंट जो कह सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन है थोड़ी सी, वो हम यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं, और कंक्लूजन के बाद जब सेशन खत्म हो जाएगा तो आप इस लिंक को क्लिक करके आप अपनी जो इस वक्त प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं उनका आप एक असेसमेंट कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट। नॉर्मली हम ये वाला जो एनालिसिस है ये शुरू में करते हैं, लेकिन टाइम चूंकि शॉर्ट होता है तो वी लीव दिस सेल्फ एनालिसिस टू द ऑडियंस, वो खुद अपना कर लें। और उसमें से स्कोर लेट से आउट ऑफ 70 अगर आपका स्कोर जो है वो 14 to 32 है, then your presentation skills are probably weak। so you आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बोरिंग है, और आपका जो मैसेज है वो लोग उधर ही झाड़ झूठ के उठ जाते हैं। आपका मैसेज जो है वो कैरी नहीं करते, वो जो है वो आपका मैसेज, आपका जो बातें हैं वो जल्दी भूल जाते हैं या लोगों को समझ ही नहीं आती। ठीक है, तो इट मीन्स कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल जो है वो काफ़ी वीक है। सो यू नीड टू add more excitement to your presentation। आप अपना स्टाइल चेंज करें। वो जो हमने देखा है लुकर्स देखे हैं, फिर हमने देखा है लिसनर्स, और फिर हमने टचर्स देखे हैं। सो इन पर्सपेक्टिव में आप अपनी जो प्रेजेंटेशन कंटेंट्स हैं या जो स्लाइड्स हैं उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करें। फिर आई कांटेक्ट अगर नहीं है तो उसको आप मेंटेन करने की कोशिश करें। वैरायटी लेके आए स्टाइल में, आवाज का जो है वो रेंज देखें। ठीक है, इसी तरह ये जो हमने चीजें डिस्कस की हैं उनको प्रैक्टिस करके यू कैन अगेन हैव द सेम एनालिसिस एंड सी इफ देयर इज सम इम्प्रूवमेंट। सो अगर तो स्कोर इसमें इस रेंज में है तो यू नीड टू वर्क हार्ड टू मेक योर प्रेजेंटेशन स्किल्स बेटर। आई डोंट थिंक सो कि किसी भी पार्टिसिपेंट का स्कोर जो है वो इस रेंज में आएगा, बिकॉज you guys are all teachers and teachers are basically very good presenters। so hopefully all of you will have good scores right after this session, because हमने सेशन में भी बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं जो कि इस एनालिसिस की बेस पे हैं। तो और इसको ऑब्वियसली जो असल चीज है वो है आपको अच्छी चीजें जो लगी हैं उनको आप प्रैक्टिस करेंगे, सो द प्रेजेंटेशन स्किल्स विल डेफिनेटली improve। And then the second category is in this range, जब आपकी स्कोर जो है वो 33 to 51 है, तो your presentation skills are just okay but you can make them more effective। आप उसमें जो है वो जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस की हैं उसमें से काफ़ी चीज़ों को प्रैक्टिस करके आप इसको फर्दर इन्हांस कर सकते हैं। और अगर आपका स्कोर जो है वो 50 प्लस है, 52 प्लस है, then your presentation skills are excellent। so you engage your audience during the presentation and just keep practicing and make them more learner person in your sessions। so now we are moving towards the end of our session। so this is the overall sum up of the content we discussed in this presentation, in this session। so we started with the highlighting of the importance of the session, and then we discussed the 3 types of audience, the 3 ways in which the audience process the information, and then we moved to the presentation blueprints। जो पार्ट्स ऑफ अ गुड प्रेजेंटेशन है वो उसका स्ट्रक्चर है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऑफ द प्रेजेंटर है, और वर्बल डिलीवरी ऑफ द प्रेजेंटर है। सो वी नीड टू वर्क ऑन दीज 3 थिंग्स टू मेक द प्रेजेंटेशंस मोर इफेक्टिव। Then we discuss how to manage the question and answer session and the common mistakes in our presentation, and finally we have a last minute checklist and
a simple description of the scores of the self-analysis of presentation skills that you will have after this session is over. So this is all about our presentation skills. Thank you so much for your active listening. Now, if you have some comments, some observations, some suggestions, you are more than welcome. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम सर, ये चेक लिस्ट वाली जो स्लाइड दोबारा शो कर दें, चेक लिस्ट वाली। जी मैडम, मैं अभी करता हूँ। मैडम रजिया तबस्सुम, अभी चेक लिस्ट वाली स्लाइड जो है वो आ जाती है। ये देखें, ये इसको ऐसे करना है कि आप इसको स्लाइड आल्सो कर लें। आई डोंट नो कि भी आपको पूरी स्क्रीन नजर आ रही है या नहीं, लेकिन इसको मैं डायरेक्टली उस स्लाइड पे लेके जाऊंगा। लास्ट मिनट चेक लिस्ट ये आ गई। इसमें रूम की रेडीनेस को देखना है, ऑडियो विजुअल एड्स या जो सप्लाईज कनेक्शंस हैं वो देखने हैं, ओपनिंग वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, की पॉइंट्स ऑफ द प्रेजेंटेशन, जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है, वो पहले आइडेंटिफाई करके रखें। अगर कोई नोट्स या कोई चीज़ शेयर करनी है क्लास में जो जिसको आप रेफर करेंगे, वो देखने की ज़रूरत है पहले। और फिर आपने क्लोजिंग कैसे करनी है ये पता होना चाहिए। क्लोजिंग स्टेटमेंट्स समटाइम्स आप जो है वो लिख के भी रख सकते हैं कि आप इसको किस तरह से क्लोज अप करेंगे। सर काइंडली लिस्ट वो लिंक पेस्ट कर दे, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, मेरा लिंक भी वो चला गया। नो प्रॉब्लम मैडम, लिंक दोबारा पेस्ट हो गया है। So link is back into your chat box. Thank you so much. Is there any other comment or any other observation before we finish? Sir, वो common mistakes वाली slide दोबारा show कर दो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम एक चैट मिनट, बॉक्स जो है वो मेरे सिस्टम पे चल नहीं रहा, आप उसको व्हाट्सएप पे भेज दें लिंक को। डॉक्टर हुमैरा, आई विल रिक्वेस्ट एनी ऑफ द ऑडियंस, अगर आपका ग्रुप बना हुआ है तो जिनको वो लिंक आ गया है वो काइंडली उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी पेश कर दें, ताकि जिनका चैट बॉक्स इनेबल नहीं है वो भी उसको देखें। राइट सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर था। इट्स शमाइला नूर बाय द वे, और बहुत अच्छा लगा। और सर एक जो ये टेबल्स वाली आपका है, मेरा भी थोड़ी देर इंटरनेट डिस्कनेक्टिविटी हो गई थी। एक तो सर स्टार्ट से अभी जो आप शो कर रहे हैं, द फोर्थ वन, स्लाइड नंबर 16, मुझे उसका कंटेंट थोड़ा सा बताइएगा। अभी आपकी स्लाइड्स में वो 16 नंबर स्लाइड है। 16 नंबर मेरे पे यहाँ पे शो हो रही है वर्बल डिलीवरी के हवाले से। दिस वन और एक जो टेबल है नीचे वो इसके बाद है, आई थिंक इसके तीसरी चौथी स्लाइड है। काइंडली वो दोनों शो कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलो नो प्रॉब्लम जी, थैंक यू सो मच मैडम। ये मैं टेबल प्रीवियस मैं देख रही थी वो आप ये वाला नो सर नॉट दिस वन। डॉक्टर शुमाइला, आप मुझे बता देंगे थोड़ा सा उसका कंटेंट बता देंगे तो दैट विल बी मच इजियर फॉर मी टू लोकेट। सर दिस इज समथिंग जो सर एनीवे डॉक्टर शुमाइला, ये आपके पास इसकी प्रेजेंटेशन की ना स्लाइड्स आ जाएंगी। सो इफ समथिंग इज मिस्ड देन द स्लाइड्स विल बी देयर। ओके सर, वो जो आपने 16 शो की थी वो आपने बहुत जल्दी से उसको दोबारा घुमा दिया। दोबारा शो कर। जी थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। आई थिंक देयर इज वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम तहमीना अशरफ। जी मैडम। जी सर, सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव लेक्चर था। और सर मैंने दूसरी बात पूछी थी कि ट्रांजिशन मीन द मूवमेंट ऑफ वन स्लाइड टू अनदर। यस, जब आप मूवमेंट कर रहे हैं एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में तो उसकी कनेक्शन जो है, लेट्स से इफ समथिंग इज ऑन द प्रीवियस स्लाइड देन यू नीड टू लिंक द स्लाइड्स टुगेदर। और अगर आप स्लाइड्स यूज नहीं कर रहे, अगर आप लेट्स से टॉपिक वाइज चल रहे हैं, उसके जो डिफरेंट स्टेप्स हैं तो स्टेप्स को कंटिन्यू करें। और ट्रांजिशन वेल का मतलब यही है कि जो चीजें हैं वो कनेक्ट होती जाएं। ऐसा नहीं है कि ऑल टुगेदर एक नई चीज आ गई जिसका हमें पता नहीं है, जिसका ना आगे का पता है ना उसके पीछे का पता, एकदम आई है और फिर एकदम गायब हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो द ट्रांजिशन बिटवीन द स्टेप्स एंड द स्लाइड्स शुड बी कनेक्टेड एंड लिंक्ड।
Thank you, sir. Thank you, sir. Sure. Thank you so much, Madam Tahmina Ashraf. I think there is one more question from Lina Khurram. या ये पहले का ही हैंड रेज्ड है, आई थिंक सो. टॉपिक कंटेंट के बाद वाली स्लाइड की मैं बात कर रही थी. टॉपिक कंटेंट वाली है, उसके बाद थोड़ी देर के लिए इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था. टॉपिक कंटेंट. अच्छा चलिए ठीक है. टॉपिक कंटेंट जो है उसके बाद हमने बेसिकली जो चीज डिस्कस की है, मैडम ऐसे स्लाइड्स मिल जाएंगी इंशाल्लाह, लेकिन टॉपिक कंटेंट जो है वो ये है, ये टॉपिक कंटेंट है. फिर इसके बाद हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया. स्ट्रक्चर में हमने इंट्रोडक्शन को देखा है, उसकी बॉडी क्या है और इसका कंक्लूजन क्या है. ये हमने 3 स्लाइड्स पे इसको डिस्कस किया था. चलिए ये हमारा देख लें. अभी मैं आपको इसकी नेक्स्ट स्लाइड भी दिखा देता हूँ. स्ट्रक्चर में इंट्रोडक्शन जो है उसके अंदर ये चीज़ें हैं कि हु एम आई, आप अपने बारे में बताएं, आप अपने आने का मकसद बताएं, एंड देन यू नीड टू highlight the importance of this session, why this session is important to attend, and then how will you accomplish your session. This is introduction, and then you have the body. So body mein you need to deliver the main idea. You need to transit well between the steps and the slides. You need to be flexible, and you need to be on course. You should not be. Thank you, sir. It was covered. Thank you. All right. Thank you so much, Madam Shumaila. Thank you. If there is no more question, then I will hand over the floor to PHEC. Zulkarnain, are you there? Dear participant, welcome back after the break. So we are here into our third and final session of the day. Our resource person for the session is Professor Dr. Fahad Noor. Professor Dr. Fahad Noor is a professor at University of Engineering and Technology, Lahore. He has been associated with the Punjab Higher Education Commission for a long time as a resource person. He is a very well experienced teacher and trainer. So he will be delivering you the lecture on communication barriers. So over to you, Professor Dr. Fahad Noor. You may please start the session. Thank you very much. Just confirm कि मेरी आवाज आ रही है और slides भी share Yes, है. sir. And your slides are also visible. चलें ठीक हो गया. Thank you very much. Dear participants, Assalamu alaikum. I am Dr. Fahad Noor and I'll be conducting the session number 3, which is about the communication barriers and how they can impact on learning process in the classroom and in general as well, and their remedial strategies. We will discuss the remedial strategies in the end. So without wasting time, let's move towards the outline. इस सेशन के अंदर हम 3 चीजें जो हैं वो आज देखेंगे. एक बेसिक्स से हम स्टार्ट करेंगे कि कम्युनिकेशन बैरियर्स जो हैं वो है क्या, और फिर एक एक्सरसाइज है लिसनिंग स्किल्स की, कि लिसनिंग के ऊपर कम तवज्जो दी जाती है. आमतौर पे कम्युनिकेशन का मतलब यही समझा जाता है कि कितना अच्छा बोल सकता है, कितना अच्छा सुन सकता है. ये कम आमतौर पर डिस्कस किया जाता है. सो आज हम इसके ऊपर एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे कि लिसनिंग स्किल्स हमारे कैसे हैं, और फिर एट द एंड वेज टू ओवरकम दोज कम्युनिकेशन बैरियर्स जो पहले सेशन में हम कर चुके होंगे. तो अभी हम बिल्कुल बेसिक से, जिस तरह मैंने कहा कि स्टार्ट करते हैं. कम्युनिकेशन प्रोसेस है क्या, बेसिकली कम्युनिकेशन क्या चीज क्या है जी, प्रोसेस क्या है ओवरऑल. सो इसके अंदर जो एजेंट्स हैं वो 2 एजेंट्स इंपॉर्टेंट है. एक है सेंडर और दूसरा है रिसीवर. फिर सेंडर के पास कोई आइडिया, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई थॉट है जो कि वो रिसीवर को चाह रहा है कि मैं उसको ट्रांसफर करूं या उसको मैं यानी उसके पास पहुंचा दूं. तो क्या होगा, वो इसको कोड करेगा. यानी समझ लें कि स्पोकन की एग्जांपल हम ले लेते हैं. जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरे ज़हन में कोई आइडिया है, उसको मैं
लैंग्वेज के अंदर कोड करना, और फिर चैनल यूज करते हुए वो आपके पास पहुंच रही है चीज, यानी रिसीवर तक वो चीज जो है वो पहुंच रही है। तो उसके बाद क्या होगा कि रिसीवर जो है उसके साथ एक रेपो क्रिएट हो जाएगी, एक लिंक जो है वो क्रिएट हो जाएगा, और फिर फीडबैक जाएगा, यानी रिसीवर जो है वो फीडबैक देगा कि जी यस आई एम लिसन, क्या आपका क्या मतलब है, मुझे पता चल गया। कोई भी इस तरह से ही रिटर्न में भी यही चीज है। बोलने में जरा बड़ी सादा और सिंपल एग्जांपल थी इसलिए हमने ये दी। यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, कोई भी आइडिया, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, थॉट, वो जो हम एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना चाह रहे हैं उसकी एनकोडिंग होगी। लैंग्वेज के अंदर एनकोडिंग, जिस तरह से उर्दू बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, अपनी अपनी जुबान जो है वो बोलेंगे, और चैनल यूज करते हुए फिर रिसीवर के पास वो आएगी। सो रिसीवर इसको डी कोड करेगा, और डी कोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आमतौर पे समझा जाता है कि शायद कम्युनिकेशन इधर ही खत्म हो गई है बोलने पे। सो डी कोडिंग जो है इसमें 2 चीजें, एक तो अगले जो बात आ रही है उसका मीनिंग क्या है, कंटेंट क्या है, और दूसरी जो सटल चीज है, क्वालिटी, इसको हम कहते हैं इंटेंट क्या है। सो कंटेंट एंड इंटेंट दोनों चीजें। समटाइम्स इस तरह से हो सकता है कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है जी, लेकिन जो नुआंसेस हैं वो मुझे समझ नहीं आते। लैंग्वेज के छोटी छोटी चीजें हैं जिससे इंटेंट की मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं ये क्या कहना क्या चाह रहा है, अल्फाज का पता चल रहा है। सो कोडिंग एंड डीकोडिंग के अंदर मीनिंग यानी कंटेंट एंड इंटेंट, ये दोनों चीजें जो है वो समझ आनी चाहिए। दोनों चीजों को डिकोड करना पड़ेगा, और फिर यानी फीडबैक जाएगा कि यस मुझे अब पता चल गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो फिर जाके ये पूरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। कोई भी चीज इसमें रह जाएगी तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। अब जिस तरह से भी हमने जिक्र किया कि कम्युनिकेशन जो है उसको किस तरह से हम लिंक कर सकते हैं क्लासरूम के साथ, जेनेरिक भी है कई चीजें, लेकिन हम कोशिश करेंगे क्लासरूम में किस तरह से इसको अप्लाई करें। सो ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स जो है, ग्रेजुएट एट्रीब्यूट से मुराद यही है कि एक स्टूडेंट जब किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आता है, सो वहां से जब ग्रेजुएट करता है तो उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स जो हैं वो पॉलिश हो चुके होते हैं, या उसके अंदर कौन से एट्रीब्यूट्स आ चुके होते हैं। यानी एक मेडिकल स्टूडेंट है, उसके अंदर डॉक्टर क्या कौन से वो एट्रीब्यूट्स हैं जो एक आम बंदे को डॉक्टर बना देते हैं, वो कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो एक आम बंदे को इंजीनियर बना देते हैं, मैथमेटिशियंस बना देते हैं, लॉयर बना देते हैं। सो उनको हम कहेंगे कि जी ये ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स हैं। तो हमें पता है काफ़ी ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं, उसमें हम देख रहे होते हैं कि नॉलेज इस बंदे के पास कितना है, इस बंदे के पास थिंकिंग स्किल्स इसके कैसे रहे, तीनों डोमेन्स के अंदर ये कैसा, इसने बिहेवियर इसका कैसा रहा, आम स्किल जो थे वो कैसे रहे। सो उसके अंदर इसका यानी टीम वर्क में कैसा था, ये एथिक्स में कैसा था, ये सस्टेनेबल आइडियाज थे इसके या नहीं। सो ये सारे ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स हैं जो कि एक डिग्री दे सकते हैं। अब उसके अंदर कम्युनिकेशन भी एक यानी एट्रीब्यूट है कि इसकी कम्युनिकेशन कितनी स्ट्रांग थी। सो जब एक सर्वे किया गया जिसके अंदर मुख्तलिफ कंपनियां जो थी, उन्होंने उनसे पूछा गया कि जनाब आप ग्रेजुएट्स के अंदर कौन से एट्रीब्यूट्स तलाश कर रहे होते हैं, कि आप कहते हैं कि जनाब ये अगर एट्रीब्यूट होगा तो ग्रेजुएट जो है वो मैं एम्प्लॉय कर लूंगा। तो उसके अंदर कम्युनिकेशन जो थी वो पहले नंबर, यानी जो सर्वे है उसमें समझ लें कि 5 आउट ऑफ 5 कहा गया कि रेटिंग करनी है, तो 6.49 मार्क्स जो है वो कम्युनिकेशन को मिले। सर ह्यूज नंबर, और चाहे वो रिटन और वर्बल दोनों ही थे। और बाकी बाद में आती है इंटरपर्सनल स्किल्स, टीम वर्क, ऑनेस्टी, एनालिटिकल स्किल्स, और सीजीपीए जो था वो 17th नंबर पे था, यानी 17th नंबर के ऊपर
और इसका टोटल स्कोर आया 3.68। सो एक जो एम्प्लॉयर है वो इस तरह से ग्रेजुएट्स को देख रहा होता है कि जनाब हमने वो वाला ग्रेजुएट हायर करना है जिसकी कम्युनिकेशन बड़ी स्ट्रांग होगी। तो समझ सकते हैं हम कि कम्युनिकेशन की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि हम अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ थिंकिंग स्टाइल ना सिखाएं सिर्फ, या अच्छा बिहेवियर ना उनका हो। कई बच्चों का बड़ा अच्छा बिहेवियर होता है लेकिन वो बड़े ही पैसिव होते हैं। सो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ रिटन एंड, यानी रिटन भी है इसमें, ये नहीं है क्योंकि समटाइम्स हमें लिखनी पड़ती हैं रिपोर्ट्स, और जब भी किसी भी जगह पे हम जॉब कर रहे होंगे तो कम्युनिकेशन है जिससे पता चलता है एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, तो कम्युनिकेशन से आनी है। सो बाकी सारी चीज़ें पीछे रह जानी है। सबसे बड़ा जो एट्रीब्यूट है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट है वो कम्युनिकेशन। और अक्सर हमें एम्प्लॉयर यही कहता है कि जनाब आपके जो ग्रेजुएट्स हैं वो आते हैं, बड़ा अच्छा नॉलेज होता है लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपने आइडियाज़ को। सो इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद यानी एक और सर्वे करवाया गया कि सॉफ्ट स्किल्स के अंदर ज़रा प्रायोरिटाइज कर दें, तो उसके अंदर भी कम्युनिकेशन जो था वो पहले नंबर पे था। मतलब टीम वर्क, क्रिटिकल थिंकिंग, अडेप्टेबिलिटी, यानी फ्रेंडली पर्सनालिटी, ये सारी चीज़ें बाद में, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको मिली? कम्युनिकेशन। सो इसलिए कम्युनिकेशन की जो है वो ग्रेजुएट के साथ बड़ी। अब लर्निंग आउटकम्स जितने भी हैं, यानी तीनों डोमेन्स के अंदर जो आप आई बिलीव कवर कर चुके हैं, उसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वगैरह आपने पढ़ ली होगी। सो लर्निंग कोर्स लर्निंग आउटकम्स जो तीनों डोमेन में, नॉलेज डोमेन में, अफेक्टिव डोमेन में और साइकोमोटर डोमेन में, तीनों डोमेन्स के अंदर ये बेसिकली कम्युनिकेशन ही है जिसकी वजह से हम नॉलेज ट्रांसफर कर रहे होते हैं। सो कॉग्निटिव स्किल्स जो बच्चा जब इंक्रीज इन नॉलेज उसका हो रहा होता है, सो वो भी थ्रू कम्युनिकेशन ही होना। यानी अब लेक्चरिंग, अगर लेक्चरिंग हो रही है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा है, तो उसके अंदर क्या चल रहा है? कम्युनिकेशन ही बेसिकली चल रहा है। इसी तरह से किसी का बिहेवियर, अगर हम एटीट्यूड के ऊपर काम कर रहे हैं कि किसी तरह से जी इसका एटीट्यूड ज़बरदस्त हो जाए, बिहेवियर इसका पॉजिटिव हो जाए बड़ा, सो वो भी किससे होगा? वो भी कम्युनिकेशन से है। इसी तरह से जो लैब वर्क है, साइकोमोटर स्किल्स जो है, कोई चीज़ उन्होंने एग्जिबिट करनी है, शो ऑफ करनी है, परफॉर्म करनी है, तो वो भी बेसिकली कम्युनिकेशन से आएगा। सो एक्वायरिंग न्यू स्किल्स, चाहे वो थिंकिंग स्किल्स हैं, हाउ टू थिंक, चाहे वो हाउ टू बिहेव के हैं या हाउ टू मूव के हैं, सो ये सारे जो स्किल्स हैं ये कम्युनिकेशन से ही ग्रेजुएट के अंदर आएंगे। क्योंकि अभी हमने कहा कि जी हम बेसिक्स के ऊपर आ रहे हैं, तो देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ फैक्टर्स हमें या कुछ टाइप्स जो हैं वो हम इधर कर रहे हैं कॉपी जस्ट फॉर डिस्कशन। उसमें सबसे पहला जो टाइप हमने इधर कॉपी किया, दैट इज डायडैक्टिक मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। सो डायडैक्टिक मेथड क्या है? डायडैक्टिक मेथड एक्चुअली वन वे कम्युनिकेशन को कहते हैं। जिस तरह भी हो रही है वन वे कम्युनिकेशन, जैसे टीवी चला हुआ है वन वे कम्युनिकेशन, रेडियो है वन वे कम्युनिकेशन। इसी तरह ही अगर क्लासरूम के अंदर हो, सो क्लासरूम के अंदर वन वे अगर चीज़ें चल रही हो, टीचर जो है वो अथॉरिटी है और वो बड़ा ज़बरदस्त पढ़ा रहा है और जनाब लेकिन बात कोई नहीं सुन रहा, ना ही उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ना ही उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सो क्या होगा? कम्युनिकेशन तो खत्म हो गई। हमने अभी कहा कि ये टू वे प्रोसेस, लूप क्लोज होगा, अब लूप तो क्लोज नहीं हुआ, सो क्या होगा जनाब? वन वे कम्युनिकेशन है। सेंडर का, उसके पास आइडिया है, वो जा रहा है, दैट्स इट, कोई पता नहीं वो किधर जा रहा है। सो ये इस तरह की कम्युनिकेशन को हम कहेंगे कि डायडैक्टिक है, और इस तरह की टीचिंग को हम कहेंगे डायडैक्टिक मेथड ऑफ टीचिंग। इसके बाद जो अगला हमने मोड इधर कॉपी किया, दैट इज सोक्रेटिक मेथड। सो सोक्रेटिस जो था वो ये कहता था कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये है कि मैं आपसे क्वेश्चन करूं और
आपको खुद ही पता चलता जाए कि चीजें किधर खड़ी हैं और आपको कितना नॉलेज है, यानी क्वेश्चनिंग एंड क्वेश्चनिंग। सो सोक्रेटिक मेथड से मुराद ये ऊपर 2-वे प्रोसेस है जिसके अंदर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड एंड बीइंग आंसर्ड। एज अ टीचर मैं क्लास में आऊं तो ऐसा नहीं है कि बस मैं पढ़ाई जा रहा हूं, नो, मैं इंटरेक्टिव हूं, मैं स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं। सो वो जो 2-वे कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो चल रहा है और वो कंप्लीट हो रहा है। सो सोक्रेटिक मेथड जो है वो ही होना चाहिए क्लासेस के अंदर, कि हम कुछ क्वेश्चन भी पूछें, कुछ वो क्वेश्चन भी पूछें और क्वेश्चन से फिर आगे चीजें चलती जाएं और जो भी हमारा लेक्चर है वो हम डिलीवर करें। सो ये सोक्रेटिस का फलसफा था। फिर वर्बल कम्युनिकेशन है, हमें पता है सब मोस्ट पॉपुलर टर्म जो है वो दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। बोल के, लिख के, जो हमें थ्रू वर्ड्स कोई भी कम्युनिकेशन है, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। लॉट्स ऑफ टाइप्स इसके भी हैं, लेकिन आज हम उधर नहीं जाएंगे, बल्कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है इसको हम दोबारा से देखेंगे कि विदाउट वर्ड्स हम किस तरह से अपनी पूरी कम्युनिकेशन का इंटेंट बदल सकते हैं। जो जिस्ट है वही चेंज हो जाएगी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसको दोबारा हम देखते हैं। फिर फॉर्मल एंड विजुअल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, एज वी नो, फॉर्मल कम्युनिकेशन बड़ी एक अथॉरिटी से आ रही है, एक लाइन है, पूरी हायरार्की में बात करनी है कहीं ऊपर अपने बॉस से, तो हमें पता है कि बड़े सोच समझ के हम लेटर्स लिखते हैं, ये ना वर्ड यूज करना है, कौन सा वर्ड यूज करना। सो फॉर्मल एटिकेट्स के साथ हम चल रहे होते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल जिसको हम कहते हैं। सो इतनी आसान कम्युनिकेशन वो नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम इंटेंट जो है उसको कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं। सो कंटेंट तो आमतौर पर रह जाता है, तो कंटेंट और इंटेंट दोनों को मिला रहे होते हैं, ये ना हो कि मेरे मतलब मेरे अल्फाज का ये मतलब निकल आए और ये मतलब निकल आए। तो जो मैं लिख रहा हूँ उसका यही मतलब हो। सो इसलिए बड़े ध्यान से हम वर्ड्स को चूज कर रहे हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑन द अदर हैंड, उसमें कोई ऐसा नहीं है। उसमें पता है कि मैंने बात की है, जैसे स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूँ, सो वो इनफॉर्मल भी हो सकती है, फॉर्मल भी हो सकती है। अब हो गया क्या, स्टूडेंट आम तौर पे ये समझते हैं कि अगर मैं उनसे बात कर रहा हूँ, कोई मैंने कह दिया कि जनाब ये वाला पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है या इसमें से पेपर आएगा, कोई इस तरह की बात करती है, तो स्टूडेंट उसको फॉर्मल समझते हुए पॉलिसी समझना शुरू कर दें, हालांकि मैं तो वैसी बात कर रहा था। सो ये बड़ा एक इनमें बैलेंस होना चाहिए कि मैं, और इनफॉर्मल भी कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फॉर्मल ही रहूंगा तो मैं अटैच नहीं हो सकता अपने स्टूडेंट्स के साथ। सो वो डिटैच रहेंगे, मैं कुछ और पेज पे हूँ, वो कुछ और पेज पे। सो इन दोनों का एक बैलेंस होना चाहिए, यानी मैं कभी कुछ कपियां भी लगाऊं, उनसे पूछूं भी, लेकिन एक खास ज्यादा एक यानी थ्रेशोल्ड से ज्यादा ना जाऊं। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन हमें पता है कि बड़ी टाइम टेकिंग है। इनफॉर्मल ऑन दी अदर हैंड वो खुद ब खुद ही चलती जा रही है, खुद ब खुद चलती जा रही है। और हमें पता है कि एक ही जगह पे रहते हुए कोई इंफॉर्मेशन ऊपर से आई है, सो एक कैडर उसको किसी और तरीके से समझ रहा है, ऊपर वाला कैडर किसी और तरीके से समझ रहा है, नीचे वाला किसी और तरीके से। सो इसी तरह जिधर भी जॉब कर रहे होते हैं या आम सोसाइटी में भी, सो मतलब डिफरेंट होते जाते हैं इनफॉर्मल में, अपनी अपनी परसेप्शंस। फिर इसके बाद है विजुअल कम्युनिकेशन। सो विजुअल कम्युनिकेशन जैसे अभी हो रही है, जैसे आपके पास स्लाइड्स आपको नजर आ रही है, सो ये कम्युनिकेशन जो है दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन। इसमें फॉर एग्जांपल मैप्स हैं, कुछ तस्वीरें हैं, पिक्टोग्राम्स हैं, इस तरह की चीजें हैं। सो उससे चीजें, ग्राफ से चीजें ज्यादा समझ आती हैं जी हमें। ट्रेंड समझ नहीं आ रहा, टेबल की फॉर्म में टेबलर है तो कोई समझ नहीं आ रहा, एक जनाब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से चीजें बड़ी आसानी से समझ आती। सो दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन। जिस तरह वो कहते हैं जी, 1 पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। सो ये इसीलिए कहते हैं कि एक पिक्चर के अंदर वो विजुअली इतनी चीजें उसके अंदर डिस्कस हम कर सकते हैं कि कई, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मोनालिसा की जो
तस्वीर है उसके ऊपर कितनी ज़्यादा किताबें लिखी जा सके, कितनी मूवीज बन चुकी। सो ये सारी विजुअल कम्युनिकेशन। फिर टेली कम्युनिकेशन है द मोस्ट पॉपुलर वन, कम्युनिकेशन एट अ डिस्टेंस, यानी दूर से जो कम्युनिकेशन हो रही है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो अभी वेव्स के थ्रू हमारी कम्युनिकेशन हो रही है, इधर से हम बोल रहे हैं उधर आपको चीज़ें पहुंच रही हैं। सो ये टेली कम्युनिकेशन है। रेडियो है, टीवी है, इधर क्रिकेट मैच जो है वो दुबई में चल रहा है और हमें पता चल रहा है कि जनाब लाहौर में बैठे हैं। सो दैट इज टेली कम्युनिकेशन। सो ये एक नटशेल के अंदर कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की हैं कि जनाब ये मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर अब हम चलते हैं वापस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है बेसिकली वो कम्युनिकेशन है जिसके अंदर हम वर्ड्स यूज नहीं कर सकते। सो वर्ड्स यूज नहीं हम कर रहे, बल्कि कुछ और चीजें हैं जिसके जरिए से हम कम्युनिकेशन और इंटेंट को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी कंटेंट वही आ जाएगा लेकिन इंटेंट से चीजें डिफरेंट हो जाएंगी। सो अब बॉडी कांटेक्ट जो है दिस इज वन वे ऑफ द कम्युनिकेशन। अभी कोविड था तो जब तक हम सलाम ना करें तब तक हमें वो तसल्ली नहीं होती कि यार पता नहीं कोई नहीं कम्युनिकेशन नहीं हो रही। सिर्फ एक सेकंड दीजिएगा। सो अभी कोरोना की मैं एग्जांपल दे रहा था कि उसमें हमें पता है कि हैंडशेक नहीं हुआ तो लगता है कि जनाब अभी तक वो चीज़ रह गई है। किसी जगह पे हमें पता है स्पोर्ट्समैन जो है वो जब खेल के आता है तो उसको थप्पी मिलती है, सर पे हाथ रखा जाता है कि जनाब। सो इसका एक ख़ास मतलब है। सो वो जो हम जो एक्सप्रेस नहीं ना कर सकते वर्ड्स से, हम इन चीज़ों से फिर वो एक्सप्रेस कर देते हैं और अपना क्लियर मतलब जो है वो, यानी साथ ही इमोशंस भी आ जाते हैं, उससे फिर पता चलता है कि यार मेरे कहने का क्या मसला है। इस तरह ओल्फैक्टिक्स है। फिर ओल्फैक्टिक्स से मुराद सेंस जो है वो नोज की सेंस ऑफ स्मेल। सो उसमें क्या है, ओडर्स एंड सेंट्स, ये भी हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं जानते हुए या ना जानते। यानी अगर मेरे कमरे में कोई आ रहा है और मीटिंग थी, मेरे कमरे में से बड़ी जबरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, तो अभी क्या होगा, मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई तो उससे पहले ये एक बन जाता है ज़हन के जनाब ये कैसा बंदा है, या इसके उल्ट अगर स्मेल आ रही हो तो काम और ही ख़राब है। और कम्युनिकेशन जो है वो मैं एक आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ यूके की। जब हम घर ढूंढ रहे थे, जब गए तो घर ढूंढ रहे तो हर जगह के ऊपर जो चाइनीज थे उनकी अलग से स्मेल थी, इंडियंस की अलग, इस तरह पाकिस्तानी जो है उनकी अलग। सो घर लेते हुए बड़ी परेशानी होती है, इसी तरह बाकियों को भी होती है। सो पाकिस्तानी जो है पाकिस्तानी के घरों में जाएंगे, इंडियंस इंडियन के घरों में जाएंगे, चाइनीज चाइनीज के घरों में जाएंगे। क्या है, खास किस्म की स्मेल आ रही होती है। सो अभी कुछ भी नहीं हुआ लेकिन वो पूरे का पूरा कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कि जनाब ये घर कैसा है। इसी तरह से हमें पता है कि अगर यानी स्मेल जो है वो बॉडी स्मेल अगर आ रही हो तो वो भी कम्युनिकेट हम कर रहे होते हैं इन अ बैड वे। सो ये चीज़ें जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाती हैं एक जब हम सोशल फैब्रिक में अपने आप को देख रहे होते हैं। फिर फिजिकल अपीयरेंस है। फिजिकल अपीयरेंस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। फेस जो है वो कैसा है, अडॉर्नमेंट को मैंने क्या पहनना हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल कल्चर की बात है ना, इधर हमारे कल्चर में औरतें ही बुंदे पहनती हैं लेकिन वेस्ट में बंदे भी पहनते हैं, कोई उधर मसला नहीं है। इधर अगर बालियां पहनना शुरू करते बंदे या कड़े पहनते हैं कुछ, सो वो हम डिफरेंट उनको लेना शुरू कर देते हैं थोड़ा सा, यानी समटाइम्स कल्चर के अंदर चीजें हैं लेकिन वो डिफरेंट होना शुरू हो जाती है। या मेरी फिजिक जो है या ड्रेसेस मेरे जो है धुले हुए नहीं है, टाइडी नहीं है, हेयर जो है वो टाइडी नहीं है, तो इससे बेसिकली हम अभी कम्युनिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ।
सो अगले बंदे का पहले से ही आइडिया कुछ वो लगा रहा है कि पता नहीं यार ये किस तरह का है, पता नहीं मुंह भी धो के आया या नहीं आया। सो ये चीज़ें जो है फिजिकल अपीयरेंस कम्युनिकेशन के अंदर, स्टार्ट के अंदर या ड्यूरिंग कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी हो। विजुअल सेटिंग्स जो है वो इंपॉर्टेंट है कि फोकस मेरा किधर है। हम बात कर रहे हो, मैं ना मोबाइल के ऊपर ही लगा हूँ, कभी टाइम देख रहा हूँ, कभी क्लॉक की तरफ देख रहा हूँ, मेरा फोकस ही कोई नहीं। सो क्या होगा, वो कम्युनिकेशन फेल हो चुकी है, आधी हो गई। इसी तरह से मैं बोलते ही जा रहा हूँ, बोलते ही जा रहा हूँ, सो ड्यूरेशन ज्यादा हो गई है बोलने की, मैं सुन नहीं रहा, अगले को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा। टू वे कम्युनिकेशन है तो अगले का भी मौका मिलना चाहिए, वो भी बात कर सुने। सो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कितनी ड्यूरेशन के लिए मैं बोलता ही जा रहा हूँ, बोलता ही जा रहा हूँ। फिर डायरेक्शन मेरी कैसी है, अगर बंदा सामने बैठा हुआ है, सो मैं इधर को मुझे मिलने आया तो मैं डायरेक्शन ऐसी कर लूँ, इधर मुँह कर लूँ या उधर मुँह कर लूँ। सो फिर क्या होगा, वो रेपो जनरेट, जो लिंक है वही नहीं जनरेट हो सका। फिर आई कॉन्टैक्ट जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, वन ऑन वन कम्युनिकेशन में आई कॉन्टैक्ट। अगर मैं आई कॉन्टैक्ट नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये है कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट इन द प्रोसेस, यानी मैं इधर देख रहा हूँ उधर देख रहा हूँ। सो मेरे दिल में कुछ ना कुछ जो है वो परेशानी है जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। आई कांटेक्ट अगर मैं नहीं दे रहा तो बड़ा, हाँ, या आई कांटेक्ट बहुत ज्यादा हो गया, मैंने स्टेयरिंग शुरू कर दी है, सो वो भी बड़ा नेगेटिव है कि हम किसी को स्टेयरिंग शुरू कर दें, घूरना ही शुरू कर दें। यानी इतना इंपॉर्टेंट है कि एक ना जानने वाले बंदे को किसी पार्क में जाते हुए, किसी गली में जाते हुए अगर मैं गौर से देखूं तो वो बंदा परेशान हो जाएगा, मुझे क्यों देख रहा है, पता नहीं ये कौन है, मुझे जानता है नहीं जानता है, इसने मुझे ऐसे क्यों देखा। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है आई कांटेक्ट। और अगर पॉजिटिव देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है कि आप आई कांटेक्ट कितना दे रहे हो। जितना ज्यादा वो आमतौर पर कहते हैं फियर है या झूठ है, वो पता चल जाता है इससे। आप ऊपर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, आई कांटेक्ट नहीं कर। सो विजुअल सेटिंग के अंदर एक बैलेंस्ड आई कांटेक्ट जो है वो होना चाहिए। फिर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैरा लैंग्वेज, बियॉन्ड लैंग्वेज को मीनिंग हम दे रहे हैं। टोन जो जैसे हम बोल रहे हैं उसके साथ अपने यानी फीलिंग्स को जो हम अटैच कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड टोन। थॉट्स एंड फीलिंग्स अगर अटैच हो रही हैं तो उसको हम कहते हैं टोन। जैसे मैं कहूँ यार बड़ी सिंपथेटिक टोन थी उस बंदे की ना, तो मैंने इसलिए बात उसकी सुन ली। या बड़ी हार्श टोन थी, बड़ी लाउड था यार, बड़ी हार्श टोन थी, मुझे नहीं पसंद। बड़ी थ्रेटनिंग टोन थी उसकी, बात करते हुए बड़ी थ्रेटनिंग थी, मैं तो ये काम ही नहीं से। सो अगर एक सादा सी मैं जिस तरह से एग्जांपल एक बना देता हूँ कि टोन से चीजें कैसे बदल जाती हैं। अगर मैं किसी से पूछूं कि जनाब आपने रोटी खाई है, तो इसका मतलब सीधा सा बात पूछ रहा हूँ रोटी। अगर मैं यही अपनी टोन जरा सख्त करूँ, रोटी खाई है, अल्फाज वही है मेरे, लेकिन टोन चेंज होगी, अगला बंदा थ्रेटन फील करेगा कि पता नहीं क्या हो गया। और अगर मैं कहूँ रोटी खाई है, इसका मतलब हो जाएगा कि समथिंग इज फिशी, को ऐसी इंफॉर्मेशन पता नहीं पता चल गई है कि जो मैं नहीं देना चाह रहा था। सो कंटेंट समटाइम्स सेम होते हैं, लेकिन उसके पीछे जो नॉन वर्बल उसका पार्ट है वो बिल्कुल मॉडिफाई कर देता है मीनिंग्स को। इसी तरह से टेम्पो है कि मैं कितनी पेस से बोलता जा रहा हूँ, कहते नहीं भी टेम्पो ही टूट गया, या पता नहीं बिजली चली जाए या बात करते हुए वो टेम्पो ही टूट गया, कोई और आइडिया आ जाए जहन में। सो वो एक पेस से जिससे हम बात, एक रवानी फरावानी जो होती है आइडियाज की जो आ रही होती है, सो वो बेसिकली टेम्पो से के साथ आ रही है। इस तरह लाउडनेस है, क्लासरूम के अंदर भी समटाइम बड़ा ही लाउड बोलना पड़ता है, या फीबल सी आवाज है,
उसका भी खास मतलब है। जब बोलते हुए एक बंदा बड़ी स्लो बोल रहा हो तो उसका मतलब भी यही है कि पता नहीं मसला है, क्या हुआ इसको, इज नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, या कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, या लाउडनेस बड़ी ज्यादा हो जाए, मैं बोलते हुए ज्यादा ही ऊंचा बोलना शुरू कर, कहते हैं आस्ता बोलो यार मैं समझा नहीं, तो थ्रेटन ना करो। इसी तरह से पॉजेज हैं। सो कम्युनिकेशन के अंदर पॉजेज बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलते जा रहे हैं सो वो जो रैपो है वो बेसिकली कम हो जाती है, अटैचमेंट कम हो जाती है। जैसे ही मैं बोलना बंद करूंगा तो दिमाग जो है ना वो इधर उधर की जो सोच रहा होता है ना, वो कहता है हो ये क्या हो गया, हर चीज चुप हो गई है, जरा पता करें कि क्यों चुप हो गई है, तो उसकी अटेंशन बढ़ जाती है। सो पॉजेज जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं जब वो बोल रहे होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता से, बड़े आराम से, सोच समझ के और पॉजेज ले लेके बोल रहे होते हैं, बड़े ध्यान से, अगला फिर बंदा जिसको कहते हैं जिस सुन रहा है। फिर पिच या टाइमिंग है कि किस वक्त मैंने सॉरी क्या बोलना है, सेम अल्फाज किसी और टाइम पे बोले तो काम खराब हो जाता है। इस तरह से पिच है, श्रिल मेरी कितनी आवाज है, कितनी ऊंची मैं बोल रहा हूँ, तो ये सारी चीजें जो हैं पैरा लैंग्वेज की हैं, जिससे यानी बियॉन्ड लैंग्वेज की हैं, जिससे हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपने मतलब को जो हम कहना चाह रहे हैं। फिर फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फेशियल एक्सप्रेशंस, कि बोलते हुए ये वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं नक मुंह बड़ा चढ़ा रहे हैं, सो नाक मुंह चढ़ा रहा है जी, ऊपर जा रही है ये इसकी, ये ऊपर जा रही है। सो नोज की पोजीशन जो है वो बड़ी, हमें पता चल जाता है कि जनाब इस बंदे ने मेरी बात को कैसा लिया, एक मैसेज जा रहा बोलने के बगैर, या मैं बोल रहा हूँ और मैं नाक को ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो अगला बंदा कहता है एक नेगेटिव कोनोटेशन है बाहर हमारे कल्चर। इसी तरह से माउथ है या स्किन टोन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी, मतलब जिस तरह मैंने पहले ही कहा कि टोन बड़ी जो है एक तो एक चले एग्जांपल लेते हैं, टोन से मुराद ये है कि बात करते हो लाल पीला हो गया, तो या बात उसने सुनी है तो गुस्से से जनाब उसका कलर लाल, या उसका रंग जो है वो उड़ गया, दोनों चीजें ही हम देख सकते हैं। सो स्किन टोन ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन या ड्यूरिंग कम्युनिकेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या, और वो बॉडीली रिएक्शन हो रहे होते हैं, फिजियोकेमिकल जो बायोलॉजिकल बायोकेमिकल जो रिएक्शंस हैं वो हो रहे होते हैं, जो हम परसीव कर रहे हैं समझ रहे हैं, वही हमारी स्किन जो है वो उसकी टोन हो जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट। इस तरह से आई है, आई कांटेक्ट की बात हो रही थी, और ये आई रोल तो नहीं मैं कर रहा, सो ये इस तरह से। इसी तरह से आईब्रोज, सो आईब्रोज जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है कि बात करते हुए किस तरह से हम ऊपर या नीचे मैं कर रहा हूं अपने आईब्रोज को। सो अगर इस तरह से किसी को हम देख रहे हैं तो उसका खास मतलब, अच्छा अभी ये क्या है कि कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं, अल्फाज जो है वो हो सकता है सेम हो, लेकिन पता चल जाता है कि क्या ये बंदा जो है क्या बात करना चाह रहा है। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फेशियल एक्सप्रेशंस ओवरऑल जो है वो कम्युनिकेशन में हर चीज चेंज कर देते हैं। फिर ये स्पेस जो है ये आम तौर पे इसको निगलेक्ट किया जा रहा है हमारे कल्चर के अंदर। कम्युनिकेशन स्पेस जो है इतनी इंपॉर्टेंट है। चले मैं एक आपको अपना वाकया छोटा सा सुनाता हूँ कि इसी कल्चर से है, हमें पता है बंदे खड़े हैं एक दूसरे के साथ और जैसे जुड़ जुड़ के खड़े होते हैं, कोई मसला नहीं। सो लेकिन फॉरेन में ऐसा कल्चर नहीं है जनाब, ऐसे खड़े हुए तो मैं बात करते हुए जनाब करीब आ गया तो वो गोरा जनाब ऐसे पीछे उसने रिएक्शन मुझे दिया, मैं परेशान हो गया, पता नहीं मैंने क्या कह दिया इसको, मैं तो बोला भी नहीं हूँ। सो वो ऐसे उसने डरा हुआ एक्सप्रेशन दिया, ऐसे ही मतलब एग्जेजरेट किया कि जनाब आप मेरी स्पेस में क्यों आ रहे हो। सो मेरी स्पेस में ना हो, आपकी अपनी स्पेस है उसके अंदर रह के। सो हमें पता होना चाहिए कि डिस्टेंस जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंस
इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। यानी इंटीमेट डिस्टेंस में तो नहीं मैं आ गया, या मैं सोशल डिस्टेंस के अंदर हूँ, या एक आम जो फ्रेंडशिप सर्कल का जो डिस्टेंस है, तो वो हर कल्चर के अंदर डिफरेंट है। तो इसका ख्याल रखना चाहिए कि जनाब हम किधर खड़े हैं, जेंडर के हिसाब से भी रखना चाहिए, और फिर मुल्कों के हिसाब से तो हमने सीख लिया कि बिल्कुल रखना चाहिए। सो डिस्टेंस जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। इसी तरह से क्लासरूम के अंदर भी वो डिस्टेंस को एक मेंटेन हमें रखना चाहिए कि किस जगह के ऊपर हम खड़े हो, क्लास किधर हो, कितना डिस्टेंस होना चाहिए। कहीं अगर ज्यादा ही हो जाए तो फिर भी मसला है, और अगर बिल्कुल ही कम हो जाए तो फिर भी मसला। इसी तरह से पोजीशन है, मेरी पोजीशन वही जो मैं कह रहा हूँ, लेक्चर लेते हुए अगर मैं नुक्कड़ में खड़ा हूँ, सो मेरी पोजीशन ऐसी ऑकवर्ड है कि बिल्कुल कांटेक्ट ही नहीं हो रहा बच्चों के साथ। सो मैं हिलजुल ही नहीं रहा, एक जगह के ऊपर स्टक हो गया, सो उससे भी फिर मसला आएगा। सो स्पेस का ख्याल रखना जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे हमारे कल्चर में कम इसको समझा जाता है, कम प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर काइनेसिक्स जो है वो हमारे बॉडी जेस्चर्स हैं, किस तरह से बोलते हुए अक्सर मूवमेंट्स अगर हाथ किया तो फिर भी मसला है, और अगर बिल्कुल ही हाथ जो है वो बिल्कुल ही जमे हुए हैं और कोई बात नहीं हो रही तो वो भी मसला है। तो बॉडी जो है वो उससे पूरी की पूरी वो जो स्ट्रेंथ आ रही होती है कि हम क्या बोल रहे हैं। सो इसी तरह से पोस्चर है, एक स्ट्रेट पोस्चर के अंदर मैं बात कर रहा हूँ या मैं लीन हूँ, और पोस्चर जो है वो लीन का मतलब यही है जब हम किसी को बात कर रहे हो ना, तो ऐसे बात कर रहे हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन हम कहते हैं जरा करीब आके मेरी जरा बात सुनो, तो वो इतना करीब आके बात सुनना उसका एक खास जो है ना वो मैसेज आता है कि बड़ी कोई इंपॉर्टेंट और बड़ी कोई जनाब ना आपस की बात है जो ये हो रही है। सो पोस्चर से ये चीजें सामने आ रही होती है। ऐसे ही बॉडी मूवमेंट है कि जनाब कितनी जो है वो बॉडी मूवमेंट हमने करनी है, या फेस मूवमेंट की बात हो चुकी है पहले। बॉडी मूवमेंट यही है कि एक जगह के ऊपर ही मैं खड़ा हूँ और लेक्चर पूरे का पूरा उधर ही खड़े हुए दे दिया, या मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। कई बच्चे जो है वो कहते हैं हमें नजर ही नहीं आते टीचर, तो हमें समझ नहीं आती जब तक कि टीचर को ना देख ले। सो थोड़ा बहुत जो है वो हमें चेंज करना चाहिए। 15 मिनट एक जगह पे अगर खड़े हैं, मिडल में आ जाए, साइड पे आ जाए। सो और इसी तरह से सोशल लाइफ के अंदर भी ऐसा ही है कि मूवमेंट अगर होती जाएगी तो हमारे जो इंटेंट है, जो हम बोलना चाह रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से अगले बंदे को समझ आएगी कि यार ये क्या कहना चाह रहा है। सो दीज वर द नॉन, इसके अलावा और भी काफी टाइप्स हैं इसकी, लेकिन हमने सिर्फ ये चीजें जो है कॉपी की है फॉर द डिस्कशन। नॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वर्ड से बियॉन्ड हम देख रहे हैं चीजों को। सो एक है मेहराबियन प्रिंसिपल, परहैप्स यू नो, चले अगर पता है तो हम दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि 735-55 कम्युनिकेशन मॉडल इसको कहते हैं, मेहराबियन प्रिंसिपल। फेस टू फेस कम्युनिकेशन के अंदर जो वर्ड्स हैं लिटरल मीनिंग के साथ, दे काउंट फॉर 7% ऑनली। सो सिर्फ 7% जो है वो वर्ड्स काउंट होते हैं। 38% टोन है कि मेरी टोन कैसी थी, बोलते हुए सिंपैथेटिक टोन थी, अग्रेसिव टोन थी, किस तरह से बोल रहा था, फ्रेंडली टोन थी, तो वो पता चल जाता है कि यार इसने। और अक्सर लड़ाइयाँ जो है इसी बात पे होती है कि जनाब मुझे इसकी टोन नहीं पसंद आई, इसके बात करते वक्त इसकी टोन देखिए आपने, कितनी हार्श टोन में ये बोल रहा है। मुझे तो अल्फाज जो है वो इसका मतलब ये है कि आम लफ्ज था, लेकिन टोन ने उसको बड़े ही हार्श बना दिया। अल्फाज वही है, और फिर बॉडी लैंग्वेज या ओवरऑल मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरी जेस्चर्स हैं जो अभी हमने चीजें डिस्कस की हैं, दैट इज 55%। सो कम्युनिकेशन के अंदर ओनली 7% अल्फाज, इसका मतलब है जो काउंट हो रहे होते हैं। और दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला, वो जो मेराबियन थे प्रोफेसर, उन्होंने ये एम्पिरिकली फाइंड आउट किया, इन एक्सपेरिमेंटल तरीके से ये नंबर्स उनके पास आए। वेरी इंपॉर्टेंट ये हमें पता होता। फिर अभी जिस तरह से हमने कहा कि वर्बल कम्युनिकेशन आम तौर पे समझी जाती है कि मैं बोल कैसा,
हालांकि कम्युनिकेशन जो है वो लिसनिंग के बगैर मुमकिन ही नहीं है, मतलब मुकम्मल नहीं है। बोलते जा रहे हैं, अगला बंदा सुन ही नहीं रहा, तो फिर वो कम्युनिकेशन कैसे होगी? सो लिसनिंग और हेयरिंग में बड़ा फर्क है। हेयरिंग जो है वो अनअटेंटिवली कोई चीज एक कान से आ रही है और दूसरे में निकल रही है, पता नहीं किधर जा रही है। लिसनिंग जो है वो मेरा कॉन्शियस डिसीजन है कि मैंने सुननी है इसकी बात, मैंने मैसेज को अंडरस्टैंड करने के लिए कोशिश करनी है। इट इज नॉट जस्ट थिंग जस्ट हैपनिंग, नो। लिसनिंग जो है वो एक्टिव प्रोसेस है जिसमें मैं कॉन्शियस तरीके से आपकी बात सुनने समझने के लिए बैठा हूं, तो इसको हम कहते हैं लिसनिंग। हेयरिंग जो है वो बिल्कुल उल्टा है कि जनाब मैं बात सुन ली है आपकी, कोई मैसेज का पता नहीं है, ना कोई इंटेंट की समझ आई है इस बंदे की क्या, ना कोई कंटेंट की समझ आई, चीजें चल रही हैं। सो आज हमने इसी को सामने रखते हुए एक छोटी सी एक्सरसाइज जो है वो आपके लिए रखी है। वेबसाइट आपके पास इधर है, मैं कॉपी भी कर देता हूँ चैट बॉक्स में। तो इधर जाके तो आपने एक छोटी सी खुद से एक्सरसाइज करनी है। कोई 14 क्वेश्चंस हैं, उनको आपने करना है, एमसीक्यूज हैं, आराम से 10 मिनट आप इस एक्टिविटी के लिए हमने रखे हैं। सो 10 मिनट्स आपने ये आराम से करना है और फिर देखिए आपका स्कोर क्या है, फिर हम इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। तो मैं एक दफ़ा ये अनशेयर कर रहा हूँ जो प्रेजेंटेशन है, और इधर कॉपी कर रहा हूँ मैं। चैट बॉक्स में ना फिर प्लीज इसे व्हाट्सएप भी कर दें। ये दो कंप्यूटर्स करीब है इसलिए ये हो रहा है मसला। तो ये मैंने अभी एक सर अभी चैट बॉक्स में नहीं आई है। अभी मैंने कर दिया, जरा और दोबारा चैट बॉक्स देखें। जी सबमिट करके जरा देखें आपके कितना स्कोर आया है, वो बस बताने की जरूरत नहीं है, बस आपके पास ही हो कि इतना स्कोर है मेरा। सर 46 आया है। चलें ठीक हो गया। चलिए आई थिंक मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स दे हैव ऑलरेडी डन दिस, सो वी शुड मूव फॉरवर्ड। अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज थी, इससे पता चला होगा आपको कि लिसनिंग जो है सर मेरा 50 आया है स्कोर। चलें जबरदस्त है। मेरा 60 आया है। चलें ठीक हो गया, ठीक हो गया। सो वेयर आई स्टैंड, जितना भी आपका स्कोर है वो वही डिस्कस करने के लिए हमने, यानी इसी वेबसाइट के ऊपर एक छोटा सा लेजर भी है कि स्कोर का क्या मतलब क्या है। सो अगर 35 से कम आया है तो इसका मतलब है कि सीवियर डेफिशिएंसीज हैं हमारी लिसनिंग के ऊपर। सो वी डू नॉट पे एनी टेंशन एंड वी डू नॉट अंडरस्टैंड एनी मीनिंग। बस चुप करके बात हो सकता है सुन रहे हो, लेकिन हम वी आर नॉट लिसनिंग टू इट। फिर अगर 49 तक आया स्कोर 35 से, दैट इज जस्ट ओके, बट देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट। अगर 50 से ऊपर आया आपका, सो इसका मतलब ये है कि लोग जो है वो ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर, क्योंकि आपने उन पे ट्रस्ट किया होगा। जब बोल रहे हैं तो बड़े आराम से बात सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि लोग समझते हैं कि आप ट्रस्ट कर रहे हैं और आप उनको स्पेस दे रहे हैं। सो 50 से 70 जो है बड़ा अच्छा स्कोर है, लेकिन इसको मेंटेन रखें। अगर आपका 50 से 70 आया स्कोर तो बड़ा अच्छा स्कोर है, और इसको मेंटेन रखें। अक्सर प्रॉब्लम्स जो है वो कहते हैं सॉल्व हो जाती हैं जब हम किसी की बात को सुनते हैं। वो कहते हैं बात तो सुन लो यार मेरी, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसी वक्त वी आर प्रिपेयरिंग द आंसर, उसी वक्त हमने जवाब देना है, बस टाइम कोई नहीं हमारे पास। वो अगला अभी पूरी नहीं कर रहा होगा तो मुझे पता चल जाएगा, मुझे समझ आ गया तो मैंने जवाब दे देना इसको, या उसके बात सुनने की बजाय हमारी प्रायोरिटी होती है कि मैं जवाब दूं इसको। होता क्यों है साइंटिफिकली, बेसिकली जो माइंड है हमारा वो हमें पता है, जैसे हार्ट काम करता जा रहा है, माइंड काम करता जा रहा है, इस तरह सुनने की हिस्स भी काम करती जा रही है। लेकिन कॉन्शियस उसको लेके आना
ये असल में ये है वो लिसनिंग। माइंड जो है वो तकरीबन 600 वर्ड्स तक प्रोसेस कर सकता है, और जो हम एक बंदा बोल सकता है वो तकरीबन 150 वर्ड्स से 200 वर्ड्स बोल सकता है। सो 1/3 ऑफ द टाइम समझ लें कि 25% बोल सुन रहा है दिमाग, कान सुन रहे हैं, 75% आइडल है। तो जब 75% ऑफ द टाइम वो आइडल है, कोई काम नहीं कर रहा, तो फिर माइंड ने तो सोचना है, वो कहीं और सोचना शुरू कर देता है। जैसे हार्ट है ना, अपना काम कर रहा है, इस तरह माइंड भी अपना काम कर रहा है, बाकी चीजें भी अपना काम कर रही है, पैरासिम्पथेटिक जिसको कहते हैं, खुद ही कर रही है। तो इसी तरह इसने भी खुद ही काम करते जाना है। तो 75% टाइम वैसे ही मिल गया उसको, तो लिहाजा वी आर नॉट कीन टू लिसनिंग। तो ये कॉन्शियसली हमें चीजें रोक के रखनी पड़ती हैं कि इसका मतलब जो है वो मुझे पता चले। और जब हम किसी की बात सुनते हैं तो अगला बंदा वैसे ही उसकी आधा मसला हल हो जाता है, जो भी प्रॉब्लम आधा समझे हल हो गया। तो जो आपके बड़े अच्छे फ्रेंड्स होंगे वो इसलिए होंगे कि आप उनकी बात सुनते हैं, सुनाते भी हैं, ये ऐसा नहीं, लेकिन बात सुनते हैं। और जो बंदे के पास ये सुनने का स्किल है उसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा होंगे, या लोग उसके साथ अटैच हो जाएंगे। सो ये हैक भी है जिंदगी का कि हमारे पास जो है वो लिसनिंग स्किल्स हमारे बेहतर। अब हम चलते हैं जी कम्युनिकेशन बैरियर्स की तरफ, कि किस तरह से लैडर के ऊपर हम नहीं जा सकते ड्यू टू बैड कम्युनिकेशन स्किल्स। वही जो अभी हमने स्टार्ट से शुरू किया था बेसिक से, कि सेंडर है, रिसीवर है, आइडिया है, कोड अनकोड डिकोड हो रही हैं चीजें। सो किसी इस पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी, यानी सेंडर के दिमाग से लेकर चैनल यूज करने तक, सिमेंटिक यानी लैंग्वेज के मसले, सुनने के मसले, फिर इंटेंट के मसले, रिसीविंग के मसले, फीडबैक, तो ये कहीं पे भी कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी वजह से बैरियर क्रिएट हो जाएगा। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक परफेक्ट ऑर्डर में होंगे तो कम्युनिकेशन अच्छी होगी, अदरवाइज नॉइस जिसको हम कहते हैं। सो नॉइस क्या है? एनी कंडीशन और एस्पेक्ट दैट इंटरफियर्स विद द इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। वो जो इफेक्टिव एक्सचेंज नहीं होगा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो नहीं मैं कह पा रहा, सो नॉइस आ गया। सेंडर और रिसीवर के दरमियान कोई भी ऑब्स्टेकल है उसको हम कहेंगे कि जी नॉइस। सो ईज ऑफ कम्युनिकेशन जो है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, वो डिसरप्ट अगर हो रही है तो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन बैरियर। सो उसकी देयर आर वेरियस टाइप्स, कुछ हमने इधर कॉपी किए हैं जस्ट फॉर द डिस्कशन। उसमें साइको फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं, सिमेंटिक बैरियर्स हैं, फिजिकल बैरियर्स हैं, लैंग्वेज के बैरियर्स हैं, मैसेज के अपने बैरियर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की के बैरियर्स और सोशियो कल्चरल बैरियर्स हैं। इनको हम वन बाय वन जरा देखने की कोशिश करते हैं। सो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स बेसिकली बॉडी की जो लिमिटेशंस हैं, फिजिकल लिमिटेशंस की वजह से मैं पूरी इंफॉर्मेशन नहीं ले रहा, आई एम नॉट गेटिंग द होल इंफॉर्मेशन ड्यू टू फिजियोलॉजिकल बैरियर, मेरी बॉडी की लिमिटेशंस है उसकी वजह से। तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ा है वो, अगर हेडेक हो रहा है, मुझे टीचर को हेडेक हो रहा है या स्टूडेंट को हेडेक हो रहा है, तो फिर क्या होगा, बात नहीं समझ आएगी। मैं आप जितना मर्जी अच्छा बोल लें, जितना मर्जी आप प्रिपेयर होके आए, अगर स्टूडेंट मेरे सर में दर्द हो रहा है तो कुछ नहीं, इसी तरह बोलने वाला जो है वो अच्छा नहीं बोल सकता, उस तरह से एनकोड नहीं कर सकता। फिर पुअर आईसाइट है, अगर स्टूडेंट्स जो हैं उनसे पूछना चाहिए हमें कि किसी की अगर आईसाइट वीक है तो वो आगे आ जाए। कई जो है वो पीछे, उनको नजर ही नहीं आ रहा होता कि जनाब आगे स्लाइड पे क्या चल रहा है। सो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी, ये बहुत बड़ा बैरियर है। इसी तरह हेयरिंग के मसले जो है वो भी आते हैं इधर ना, हेयरिंग में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी कह देना चाहिए कि बच्चे आगे आप आ जाए। फिर कोई भी पर्सनल डिस्कम्फर्ट है ड्यू टू एनी रीजन, कोई मतलब इन्वायरमेंट नहीं ठीक, मेरी चेयर नहीं ठीक, किसी वजह से कोई भी डिस्कम्फर्ट है, पेट दर्द है, कोई इस तरह से फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिर टायर्डनेस है, अगर मैं खास तौर पे चले एग्जांपल लेते हैं कि खाना खाने के बाद ये 4-4 बजे तक, क्योंकि लंबे लेक्चर चल रहे होते हैं, टीचर भी थक जाते हैं, स्टूडेंट्स भी सारी बात थक जाते हैं, उनके खास
एक लिमिट है, सबकी लिमिट है। तो उसके बाद फिर कम्युनिकेशन क्या ही होनी होती है। तो टायर्डनेस जो है उसका भी ख्याल रखना चाहिए। हेयरिंग डिफिकल्टी की बात हमने कर ली है जिस तरह से, पुअर आई साइट के। फिर इंफॉर्मेशन ओवरलोड, वेरी इंपॉर्टेंट। इंफॉर्मेशन ओवरलोड ये है कि मेरे पास चार, मतलब मैं, कोई बंदा आया है तो मैं इधर फाइलों के ऊपर साइन ही साइन कर रहा हूँ, उसकी बात ही नहीं सुन रहा। एक कर दिया, दूसरा कर दिया, वो कोई आया उसने अपनी बात की है, इधर से कुछ अपनी आ रही। सो मेरा दिमाग इतना ज्यादा नहीं है कि मैं साथ साथ बातें इकट्ठी सुन लूँ। एक काम मैंने करना है, उसके बाद फिर करना है, उसके बाद फिर करना है, तो वो ओवरलोड हो जाएगी चीज, तो वो नहीं चल सकती। उससे कम्युनिकेशन का बैरियर आएगा। फिर साइकोलॉजिकल जो स्टेट ऑफ माइंड के साथ, साइकी के साथ लिंक्ड है, उसमें एक बैरियर है एंकर का। एक सर्वे हमने किया, स्टूडेंट से हम पूछते रहते हैं कि जनाब आपको कौन सा टीचर जो है वो बड़ा अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा फलां टीचर जो है ना, अच्छा की तो छोड़ें, फलां टीचर जो है ना वो हर वक्त गुस्से में ही रहता है। तो उससे क्वेश्चन कुछ करें तो जनाब वो गुस्सा कर जाते हैं। अगर हमें ये चीजें पता होती सर तो हम इधर क्या लेने आते हैं। तो टीचर बास का तो नहीं हम समझते, हम कह रहे होते हैं कि जनाब पता नहीं क्या हो गया, तीसरी दफा इसने पूछा क्यों है हमसे। कई ऐसे टीचर होते हैं जो वैसे ही अथॉरिटी बड़ी पसंद करते हैं और गुस्से गुस्से में रहते हैं और दबाने के चक्कर में होते हैं कि जनाब किस तरह से स्टूडेंट जो है ना वो पैसिव निकले इधर से, कोई बात खुद से ना कर सके, और कोई भी बात होगी तो ऐसे। तो वो जैसे ही एंगर ने आना है, मेरा दिमाग बंद, मेरा खुद बंद हो जाता है। अगर कोई गुस्से में अगला बंदा हो तो मैं कहता हूँ यार छोड़ो ये काम, जाना फिर कभी होगा। इसी तरह से कोई एंजाइटी है, कोई पुराना काम पड़ा हुआ है, स्टूडेंट के ज़हन में आया यार अभी ये काम भी करना है, अभी वो भी करना है चार, सो एंजाइटी है, तो फिर भी एक बहुत बड़ा बैरियर हो जाएगा चीज़ें लेक्चर के समझने। या फ्रस्ट्रेटेड है टीचर और स्टूडेंट, अब मैं कहूँ हो जनाब मैंने तो 4 दफ़ा आपको पहले समझा दिया हो और आप हैं कि आपको समझ नहीं आ रहे, तो मैं तो बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ। तो जैसी फ्रस्ट्रेशन आनी है, स्टूडेंट जो है वो तो पहले ही उस जगह पे है जिधर उसको समझ नहीं आ रही। फ्रस्ट्रेशन चाहे स्टूडेंट शो करे या टीचर, कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। वो जो बात आप कह रहे हैं वो और उससे पीछे जा चुका है। सो फ्रस्ट्रेशन जो है ये बड़ा कॉज है। इस तरह से डाइवर्सिटी ऑफ माइंड सेट, टीचर यानी एक क्लास के अंदर एक जो भी बात कर रहा है उसको मुख्तलिफ एंगल से देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। सो डाइवर्सिटी जो है माइंड सेट की, उसकी वजह से भी चीज़ें जो है वो। फिर फिजिकल और एनवायरमेंटल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स में बैकग्राउंड नॉइज सबसे ज्यादा जो डिसरप्टिव चीज है वो बैकग्राउंड नॉइज। सो क्या है कि अगर इधर बोलते हुए यानी लेक्चर लेते हुए कोई ड्रिलिंग शुरू कर दे साथ वाले कमरे में, तो हम कहते हो लेक्चर छोड़ो पहले ये देखो क्या हो रहा है। या इधर लेक्चर होते हुए कि हम एक दूसरे को देख उस तरह से नहीं सक रहे, सो क्या होगा कि अगर किसी का माइक ऑन हो तो बैकग्राउंड नॉइज सारे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, यार ये माइक ऑफ करो, कम्युनिकेशन उसी वक्त ही खत्म। सो फिजिकल या एनवायरनमेंट बैरियर में बैकग्राउंड नॉइज जो है वो रिमूव करना बड़ा जरूरी है। पुअर लाइटिंग जो है वो, अगर कहीं पे बिजली चली गई है, समझ नजर ही नहीं आ रही कोई चीज़, तो हम किस तरह से होंगे। ये बैकग्राउंड नॉइज के ऊपर एक बड़ी एग्जांपल मेरे जहन में आई है। यूनिवर्सिटियाँ जो हैं फॉरेन के अंदर, पाकिस्तान में भी कुछ यूनिवर्सिटियाँ हैं जिधर जो उन्होंने कमरे ऐसे बना दिए हुए हैं जो कि जिस तरह डैम्प प्रूफ है, इस तरह वो नॉइस जो है वो डैम्पनिंग का काम देती है। जो दीवारों के ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, हनी कॉम लगे हुए हैं, जिससे क्या होता है कि आवाज अगर बोल रहे हैं तो वो मतलब वापस नहीं आती, एको जिसको कहते हैं, या वैसे ही लग के वापस आ जाती, वैसा नहीं, तो वो एब्जॉर्ब हो जाती आवाज उधर। सो ये यानी लाइब्रेरीज के अंदर ये यूज हो रही है टेक्नोलॉजी। फिर पुअर लाइटिंग पे बात हो चुकी है, इससे भी आएगा मसला। या वर्किंग एरिया ही बहुत, स्पेस बहुत बड़ी है और जनाब एक टीचर है और 100 स्टूडेंट्स हैं, तो किस तरह से समझ आएगी। स्टूडेंट टीचर रेशो जो है बहुत ज्यादा है, ना मुझे पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ना उनको पता चल रहा है कि सर क्या बोल रहे हैं। तो अगर लार्ज वर्किंग एरिया तो कनेक्शन नहीं होगा, वो जो कनेक्शन की फीडबैक जिसके बाद होना है वो नहीं होगा। या कोई जिससे मैं कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो वैसे इक्विपमेंट ये जो है वो आउटडेटेड है, तो उससे भी मसले हैं।
या टू कोल्ड और टू हॉट जो है अगर एनवायरनमेंट, कहते हैं जी पाकिस्तान का मौसम जो है वो 6 महीने गर्मी होती है और अगले 6 महीने सख्त गर्मी होती है। तो इधर तो ये सिचुएशन है और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो यही आती है कि जनाब हमें एसी लगवा के दिया जाए, एसी नहीं है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम। या इसी तरह से इसका उल्ट जो है, अगर टू कोल्ड इन्वायरमेंट है तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आएगी। माइंड है ना, तो सबसे पहले वो सुनना उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो उसके लिए अपना आप बचाना इम्पोर्टेंट। सो अगर कोल्ड या हॉट इन्वायरमेंट है तो वो उसने उसका सद्देबाब करना शुरू कर देना कि किस तरह से टेम्परेचर को मैं ठीक करूँ माइंड में। सुनना तो उसने बाद में। अगर अच्छा थर्मल कंफर्ट का ख्याल रखते हुए चीज़ें हैं, क्लासरूम्स हैं, तो फिर ये मसला नहीं होगा, अच्छी कम्युनिकेशन हो जाएगी। इस तरह से क्रॉस कल्चरल बैरियर्स हैं, कल्चर में कुछ चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, दूसरे में बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। जैसे ये छोटे छोटे जेस्चर्स हैं, जैसे ये एक जेस्चर है, ये जो इजिप्ट में इसका मतलब है ये 3, अगर हम उंगलियां 4 उंगलियां और अंगूठा इस तरह से करें तो इसका मतलब हमारे कल्चर में होता है कि बात सुन लो, या जैसे ही आप करते हैं आप जरा अटेंटिव हो जाओ। लेकिन पेशेंस का मतलब भी हमारे कल्चर में समटाइम्स लिया जाता है कि पेशेंट थोड़ा सा दिखाओ, लेकिन इटली के अंदर इसका मतलब है व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन। ग्रीस में इसका मतलब है दैट्स जस्ट परफेक्ट। सो परफेक्ट के लिए हम ये यूज करते हैं, लेकिन रशियन जो है इसको जीरो समझते हैं और जबान में है कि कितना, हाउ मच यू हैव अर्नड, कितनी मनी इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये है कि बहुत मनी इन्वॉल्व है। और ब्राजीलियन में ये मिडिल फिंगर के बराबर इसका इंसल्टिंग मतलब है। सो ये चीज़ें जो है वो हर कल्चर की जो थोड़े थोड़े नुआंसेस होते हैं ये समझने पड़ते हैं, फिर जाके कम्युनिकेशन जो है वो होती है सही, कि किस तरह से हमने इंटेंट और कंटेंट दोनों जो है समझने। सोशियो इकोनॉमिक बैरियर्स जो है वेल्थ की वजह से हमें पता है क्लासेस जो है वो बनी हुई हैं, लोअर मिडिल और अपर क्लास। तो कोई भी इंफॉर्मेशन फ्लोट होगी तो लोअर में कुछ उसका मतलब होगा, मिडिल में कुछ, और जो अपर क्लास है उसमें इसका कुछ मतलब होगा। तो ये चीज़ें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और फिर अर्बनाइजेशन जीडीपी के ऊपर डिपेंड करती हैं ये चीज़ें कि किस तरह से। या एक चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ पॉवर्टी स्ट्राइकन एरियाज की। कम्युनिकेशन जो है वो स्टाइल डिफरेंट हो जाता है। जितने भी बड़े यूएनडीपी या इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, यूएनओ के, एफएओ के, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं यूरोपियन यूनियन के, जब उन्होंने करने होते हैं ना पॉवर्टी स्ट्राइकन एरिया, वो कहते हैं जी हमें कम्युनिकेशन ही नहीं होती उनके साथ, समझ ही नहीं आती, हम कि कोई और तरह से सोच रहे हैं, वो कई और तरह से सोच रहे हैं। सो इसी तरह से अर्बनाइजेशन अगर बहुत ज़्यादा हो गई है तो हर जगह की जुबान डिफरेंट, हर जगह की जो इमोशंस डिफरेंट, कल्चर डिफरेंट, तो समझ जो है उस तरह से कम्युनिकेशन नहीं होती। तो ये सोशियो इकोनॉमिक बैरियर समटाइम्स ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर सिमेंटिक और लैंग्वेज के अपने बैरियर्स हैं। फॉर एग्जांपल जार्गन आपने वर्ड सुना होगा, हर लैंग्वेज की अपनी जार्गन स्लैंग है, हर लैंग्वेज की अपना स्लैंग है। जार्गन जो है वो एक बड़ा स्पेशलाइज्ड किस्म का जो लैंग्वेज, जैसे किसी आप अगर डॉक्टर से बात करें सो वो क्या होगा, वो डिफरेंट तरीके से उसकी लैंग्वेज होगी। लॉयर जो है वो उसकी डिफरेंट लैंग्वेज होगी। वो कहता है कि तकरीबन 70% फेल्ड जो ऑपरेशन हैं वो इस तरह से फेल हुए कि डॉक्टर और मरीज ने जब एक्सचेंज ऑफ नॉलेज किया तो समझ नहीं आई, ना उसको आई क्या कह रहा है ना उसको आई क्या कह रहा है। सो जार्गन है ये, इसका भी पता होना चाहिए। फिर स्लैंग लैंग्वेज जो है जिसको हम बाजारी जुबान भी हम लूज टर्म में कह देते हैं, सो ये लैंग्वेज समझने के लिए ये बड़ा जरूरी है। अब एक वर्ड है विकेट, मैं वर्ड इसलिए चूज किया है कि जब हम यूके में थे तो जनाब जब बॉल करवाई तो पहले ओवर में 2-3 आउट कर दिए, तो वो आया जनाब गोरा, उसने कहा यू विकेट। सो मुझे लगा पता नहीं विकेट का मतलब आमतौर पे तो ईवल होता है। सो ये लेकिन इसका इंथुजियाज्म था, ये मुझे नहीं लगता कि मुझे ये ईवल समझ रहा है। सो जब मैंने देखा आके तो उसका मतलब था परफेक्ट, इट इज नॉट गुड, इट इज ग्रेट। सो ये बेसिकली
स्लैंग में आ जाते हैं। अभी पंजाबी का एक वर्ड जो है वो मैं पहले भी एग्जांपल दिया है, जिसको कहते हैं ढक्कन। तो सबको पता है कि ढक्कन का क्या मतलब है। आमतौर पे तो हम ढक्कन को, हमें पता है कि लिड होता है, लेकिन स्लैंग के अंदर भी ढक्कन का सबको पता है कि क्या मतलब। सो हर जगह की जो स्लैंग है वो डिफरेंट ही होती है। इस तरह से जार्गन की बात हो रही थी। सो जैसे हम सीवीज में बढ़ा चढ़ा के अपनी बातें कर रहे होते हैं कि जनाब ये मैंने कर दिया और वो कर दिया। एक बड़े ये दो मैंने इधर एग्जांपल्स रखी हैं, ये वायरल हुए थे मैसेज, इसलिए आपने देखे होंगे इसलिए। सो एक पहला है हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट ऑफ सिरेमिक्स, एल्यूमिनियम एंड स्टील अंडर अ कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट। सो लग रहा है कि पता नहीं कोई बहुत ही बड़ा काम हो रहा है, कुछ सिरेमिक्स भी इन्वॉल्व है, बड़ा कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट है, हाइड्रोथर्मल ट्रीट पता नहीं क्या हो रहा है, कोई एटम बम भी बन। लेकिन एट द एंड जब देखा तो बॉस के कहने के ऊपर बर्तन धोए जा रहे हैं। इसी तरह से सिंगल हैंडेडली मैनेज द सक्सेसफुल अपग्रेड एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यू इल्यूमिनेशन environment illumination system with zero cost overruns and zero safety incidents। बड़ा लंबा चौड़ा बात है, और एट दी एंड ये है कि मैंने सिर्फ जो ना बल्ब चेंज किया है, खुद ही किया और आराम से करती है। सो जार्गन जो है बिल्कुल एक ऐसे बढ़ा चढ़ा के हम बात कर रहे हैं, और ये हर लैंग्वेज के यानी हर स्पेशलाइज्ड फील्ड के अपने अपने इसी तरह से होते हैं, जैसे हर लैंग्वेज की अपनी स्लैंग होती है। फिर ऑर्गेनाइजेशन के अपने बैरियर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर तो लेवल्स बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये डिपेंड करता है कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्गेनाइजेशन। अगर तो सादा है तो फिर मुझे पता है मेरा बॉस कौन है, मैंने किससे कम्युनिकेट करना। लेकिन समटाइम्स पता ही नहीं होता मैंने बात किससे करनी है, कोई मसला आ गया मैंने किसको बताना है, किस ऑफिस में जाना है, पता ही नहीं है मैंने किस ऑफिस में जाना करनी है। सो ना वो ऑफिस में अगर मुझसे कम्युनिकेट करना है तो उसको भी नहीं पता चल रहा होता कि किस तरह से। प्लीज ये माइक ऑफ कर लें। मेरा माइक भी आ जाता है। जी आपका होनी है, इसको ऑफ कर लें। सो अगर तो काफी ज्यादा लेवल्स हैं सो वो लॉस होना शुरू, जितने ज्यादा लेवल्स होंगे उतना ही कम्युनिकेशन के अंदर वो जो नॉइस ज्यादा होता जाएगा। लेवल ज्यादा होगा नॉइस और ज्यादा। जितनी सादा होगी कम्युनिकेशन उतनी सादगी से हो जाएगी, और कम्प्लेक्सिटी के साथ बहुत ज्यादा नॉइस। फिर पॉलिसी अगर नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, मैंने बात जैसे अभी हमने जिक्र किया किससे बात करनी है और फिर वो कैसे आगे जानी है। कोई मसला आ गया तो मैं किसको बताऊं, अगर ये क्लैरिटी नहीं है तो फिर जो मर्जी हो जाए, आप जो ऊपर से इंफॉर्मेशन कोई भी देना चाह रहे हैं वर्कर्स को वो नहीं आएगा। फिर समटाइम्स इस तरह से होता है, मैं बॉस के बड़ा करीब हूँ तो मैंने कहा मैं दूसरे ग्रुप को क्यों चीजें बताऊं, तो वो चुप करके जो इन्फॉर्मेशन आई अपनी जेब में डाल के बैठ गए। सो उससे भी मसले आते हैं कि इसका मतलब इंटरनल रिफ्ट्स जो है, राइवलरीज अगर चल रही हैं तो फिर भी कम्युनिकेशन जो है वो बैरियर है। या मेरा बॉस जो है, मैं एज अ बॉस बड़ा ही अथॉरिटेरियन हूँ, किसी की बात ही नहीं सुनता, जो कह दिया बस कह दिया, बस खत्म फिनिश, जैसा है भाई। सो कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, असली बात की समझ नहीं आनी। उस वक्त हो सकता है यस यस हो जाए कि ये कर ले वो बस ठीक है, उसके बाद समझ नहीं आनी कि क्या था फिर मकसद क्या था इस बात करने। सो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चंद एक बैरियर्स जो है वो आ सकते हैं। फिर अब ओवरऑल हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं तमाम बैरियर्स। कुछ वापस चलते हैं लेक्चर जो चेकलिस्ट है कि ये जितने भी बैरियर्स हैं इसको जरा क्लासरूम के हिसाब से हम देखते हैं, क्लासरूम में किस तरह से अच्छी कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन। मेरा स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, यानी मैं कैसा बोल रहा हूं, डू आई स्पीक क्लियरली, सूटेबल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मेरे एक्सप्रेशंस कैसे हैं, जेस्चर्स में कैसे दे रहा हूँ, गुस्से में हूं है या बड़े आराम से मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मूवमेंट्स मेरी कैसी है, एक ही जगह पे स्टक हूँ या मैं
इधर उधर मूव कर रहा हूँ। फिर डू आई स्पीक इन लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल टू द स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अक्सर जब पूछते हैं तो कहते हैं जनाब इस टीचर की हमें इसलिए समझ नहीं आती सर वो अंग्रेजी में पढ़ाता है, और वो भी उनका एक्सेंट ही पता नहीं कैसा है, ना उनको हमारी समझ आती है, वो अंग्रेजी के चक्कर में वो समझ ही कोई नहीं आती। सो वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ वो स्टूडेंट को समझ आनी चाहिए, वो चाहे अंग्रेजी है चाहे उर्दू है, जिस लैंग्वेज को वो बेहतर तरीके से समझते हैं। और फिर वर्ड्स आई एम यूजिंग, स्पीड ऑफ द प्रेजेंटेशन इज गुड। ये तो नहीं है कि मैं बस एक तरफ से शुरू हुआ हूँ जनाब और स्पीड पे स्पीड मारे जा रहा हूँ और ब्रेक कोई नहीं है। सो उससे भी मसले जो है वो आएंगे। और लेक्चर जो है वो मेरा डायडैक्टिक तो नहीं है, वो सॉक्रेटिक है, जिस तरह से हमने पहले बात की कि बस मैं आ गया हूँ चुप करके सुनो बच्चों आप। सो क्या होगा, चुप करके सुनते जाएंगे, वो पता नहीं सोए हुए हैं कि जाग रहे हैं हमें तो नहीं पता। सो टू वे अगर कम्युनिकेशन है तो उसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं। सो चीजें जो है वो टू वे चल रही है। मुझे उसी वक्त पता चल रहा है कि किसी को समझ आ रही है कि समझ नहीं आ रही, या मैंने एग्जांपल्स में ठीक दे रहा हूँ या मैं एग्जांपल्स ही गलत दे रहा हूँ, कौन सी एग्जांपल्स मुझे देनी चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए। सो टू वे कम्युनिकेशन जो है इंटरेक्टिव होना चाहिए, बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें। फिर एक जो रिलेशनशिप है बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर वो एक रिस्पेक्ट का है, मेरी बात सुनी जाए, मैं स्टूडेंट्स को रिस्पेक्ट दे रहा हूँ वो मुझे दे रहे हैं, वी आर लिसनिंग टू ईच अदर। ऐसा नहीं है अगर वो तो अथॉरिटेरियन है, मैं डरा धमका रहा हूँ थ्रेट टाइम कर रहा हूँ, तो फिर उससे क्या होगा, वो रियल लाइफ में रियल वर्ड्स में वो ट्रांसफर नहीं हो रही हमें चीजें, यानी वैसे ही उस वक्त सुन लिया तो सुन लिया लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। सो एक कनेक्शन में अच्छे तरीके से क्रिएट करो। फिर कंटेंट जो है, कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है कि मेरा एम्फोसिस किस चीज के ऊपर है। मैं मेन मैसेज मैंने दे दी है, यानी लेक्चर के अंदर मेजर पॉइंट्स जो थे वो मैंने दे दिए, लेकिन कुछ डिटेल्स मैंने छोड़ दी है, वो बच्चे खुद कर रहे हैं। जिस तरह क्रेडिट आवर्स के अंदर मैं पता 3 घंटे का काम जो है वो 2 घंटे घर में करने होते हैं, 1 घंटा यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में। सो वो आराम से उनके पास टाइम है ना तो वो खुद से भी पढ़े। मेरा काम था मेजर मैसेज बड़ा बड़ा दे देना, टाइम ही इतना होता। फिर सीक्वेंशियल और लॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये तो नहीं हैपेजेड मैंने उठा के लेक्चर पता नहीं किधर से बना दिए एंड दैट्स इट फिनिश। और इजी टू अंडरस्टैंड है इंफॉर्मेशन या बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, कॉम्प्लिकेटेड मैंने लैंग्वेज यूज़ की है और जो वर्ड्स हैं वो समझ नहीं आते बच्चों को, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो मैं अपने चक्कर में हूँ कि जनाब बड़ी ज़बरदस्त अंग्रेजी बोली है जी, बहुत अच्छे वर्ड्स लिखे, बच्चों को समझ नहीं आनी उसका क्या फ़ायदा। सो कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर प्लेस ऑफ लेक्चर जो है ये सारी बात है, कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हैं लेकिन वो ऐसी हम कंफर्टेबल होनी चाहिए जिसमें थर्मल कंफर्ट का ख्याल रखा जाना चाहिए, लाइटनिंग का ख्याल रखना चाहिए, नॉइस जो है बैकग्राउंड नॉइस का ख्याल रखा जाना चाहिए। और स्टूडेंट टीचर एक दूसरे को देख रहे हैं, स्टूडेंट कहता है कि जी मैं तब तक, अक्सर ऐसे ही होता है, मेरा खुद यही है, एक स्टूडेंट कहता है जी मेरे लिए सबसे बड़ा बैरियर ये है जब तक टीचर मुझे नजर ना आना आता हो मैं नहीं पढ़, मुझे समझ ही नहीं आती। अगर टीचर कहीं छुप गया है किसी उस एंगल पे होगा तो मुझे समझ नहीं आती। लिहाजा इस तरह से क्लासरूम होकर मैं स्टूडेंट्स को देख सकूं वो मुझे देख सकूं। सो सीटिंग कंफर्ट जो है उसका भी खास ख्याल रखा जाए। फिर टीचिंग एड्स हैं आजकल क्योंकि हर चीज़ जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। सो पावर पॉइंट के ऊपर प्रेजेंटेशन जो है वो ज़्यादा चल रही हैं, वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ऐसे तो नहीं है कि जनाब किसी का फॉन्ट बड़ा ही मैंने बड़ा कर दिया, किसी बिल्कुल छोटे छोटे कर दिए, पिक्चर जो है वो पूरी ऐसी बड़ी कर दी है, तो वो खास एक। लेकिन आती ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही है, मेरी बात एक दफ़ा लेक्चर बनाएंगे फिर अगली दफ़ा फिर अगली दफ़ा आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिकली उस जगह पे पहुंच जाएंगे जिधर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रेजेंटेशन होगी, बच्चों को भी समझ आ जाएगी। सो ये तो नहीं है वर्बस तो नहीं है ज़्यादा कि मैंने सिर्फ वर्ड्स ही वर्ड्स लिख दिए हैं पूरी के अंदर और वो फिर बुक की जिस तरह पढ़ना शुरू हो गए। सो ये चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि टीचिंग एड को मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ। फिर इजी टू रीड स्लाइड्स हो, यानी लेटर्स पिक्चर्स
लार्ज इनफ, वो छोटी छोटी, कईयों की नज़र जिस तरह से अभी हमने कहा कि इतनी नहीं होती, तो वो हम जनाब बिल्कुल 8 का फॉन्ट यूज करते, तो किसका हमें नहीं नजर आ रहा होता। समटाइम्स एज प्रेजेंटर हमें नहीं नजर आ रहा होता, पता नहीं क्या यार लिख दिया है, खुद ही लिखा है, पता नहीं क्या लिखा। तो ये सिचुएशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। 6 C's बड़े इंपॉर्टेंट, 7 C's हैं लेकिन 6 C's जो है वो इधर हम डिस्कस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है पूरी कम्युनिकेशन के अंदर। इनका अगर हम ख्याल रखें तो कम्युनिकेशन बेहतर हो सकती है। जैसे इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए और कंसिडरेट होनी चाहिए। जैसे मैं चले एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अगर बच्चों से कहूँ कि जी आपने मुझे मिलना है, तो ये बड़ी एम्बिगुअस स्टेटमेंट है, मिलने से क्या मुराद है। मैं अगर कहूँ कि जी मुझे कल आपने मिलना है, अभी भी कंप्लीट नहीं है इन्फॉर्मेशन। मैं उनको कहूँ जी ऑफिस में कल आके मिलना है, अभी भी कंप्लीट। मैं उनको क्लियरली डिफाइन करूँगा कि जनाब आपने मुझे कल 12:30 बजे मेरे ऑफिस में मिलना है, तो फिर ये क्लियर और कंप्लीट और विदाउट एम्बिग्विटी ये स्टेटमेंट होगी। अदरवाइज तो जिसको हम ये कहते हैं कि कल इस मुझे कल मिल लो, इसका मतलब होता है कोई नहीं मिलना, ये वैसे ही बात है। या कम्युनिकेशन का मसला है। फिर ग्रामेटिकली उसमें एरर्स नहीं होने चाहिए, सारी बात। जब लेटर्स खास तौर पे फॉर्मल कम्युनिकेशन जब कर रहे हो तो ये ध्यान रखना चाहिए कि स्पेलिंग एरर्स तो नहीं है, ग्रामेटिकली मसले मसाइल तो नहीं है। फिर टू दी पॉइंट, वर्बस नहीं होनी चाहिए, लंबी चौड़ी नहीं, बस टू दी पॉइंट कंसाइज होनी चाहिए कि खास तौर पे जिस तरह से बात हो रही है। वैसे इनफॉर्मल में भी, लेकिन फॉर्मल में ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और एम्पथेटिक हमें होना चाहिए, दूसरे की बात को सुनना भी चाहिए, कर्टसी एक होनी चाहिए, पोलाइटनेस होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल वो देते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, कि फिरौन के पास अगर आप जा रहे हैं तो उनसे बात नरमी से करना, ताकि वो डर जाए बात, यानी कि सुने आप। सो अगर कम्युनिकेशन के अंदर नरमी नहीं है तो फिर वो गया, वो जिस तरह हमने पहले बात की, अगर आपकी टोन सिंपथेटिक है और टोन जो है बड़ी अच्छी लो टोन में आप बात कर रहे हैं, उसके बड़े पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। वो आपके जो है फ्रेंड ज्यादा होंगे जो इस तरह से बोल रहा होगा या इस तरह से सुन रहा होगा। फिर सेंडर और रिसीवर का अपना रिलेशनशिप बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेंडर के ज़हन में कुछ चल रहा है, जिस तरह से हमने कहा कि दो चीजें, इंटेंट और कंटेंट, ये दोनों चीजों ने साथ साथ चलना है। सेंडर अगर प्लान नहीं कर रहा, मैंने पर्पस ही कोई नहीं है, मैंने अगर बॉस से मिलना है, बात करनी है, तो मुझे प्लान करना चाहिए ना कि क्या बात करनी है। अब मुझे ऑब्जेक्टिव्स क्या है मेरी इस बात करने के, और मैं कौन सी जुबान में, उर्दू में, अंग्रेजी में मिक्स मैसेज करना है, तो किस जुबान के अंदर मैं कर रहा हूँ। ये बैडली कोडेड तो नहीं है मैसेज, मैं कहना क्या चाह रहा था और जनाब वो क्या चला गया। और परसेप्शन ऑफ रियलिटी इज डिफरेंट है ना, मैं किसी और चीज़ों से देख रहा हूँ। कोई भी इवेंट हुआ है, कोई भी मसला हुआ है कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, मैं उसको किसी और तरीके से ले रहा हूँ, मेरा बॉस किसी और तरीके से ले रहा है। सो मैं अगर उसको समझाना चाह रहा हूँ तो मसला आएगा, एक पेज पे आना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अनशेयर्ड assumptions है ना, मेरी कुछ और assumptions है कि इसका बड़ा इफेक्ट होगा, वो बहुत समझ रहा होगा यार ये रूटीन मैटर। सो रॉन्ग चॉइस ऑफ चैनल, मैंने कोई भेजना था मैसेज, जनाब को बात करनी थी, मैंने ईमेल, फॉर्मल ईमेल की बजाय मैं व्हाट्सएप रात 12 बजे कर रहा हूँ। सो उससे बड़ा मसला मसाइल जो है वो पैदा हो सकते हैं। इसी तरह रिसीवर जो है उसके अपने मसाइल हो सकते हैं, जैसे मैं पुअर लिसनर हूँ फॉर एग्जांपल एज अ रिसीवर, इन टेंशन है, मेरा ध्यान कहीं और पे, ट्रस्ट नहीं मैं कर रहा, जिससे मुझे पता है यार इसने क्या बात करनी है, इसके तो जेहन में ही ऐसा पहले से ही हम सोच लेते हैं जनाब, प्री मेच्योर इवैल्यूएशन हो जाती है, ओहो मैंने पता है, पता नहीं ठीक है इस तरह से, और हो सकता है उस वक्त वो कुछ ऐसी बात कर जाए जो बेहतर हो। सो इसी तरह से लैंग्वेज की अपने मसाइल, सिमेंटिक बायसनेस आ जाती है बोलते हुए, ये तो बिल्कुल हर बंदे के अंदर बायसनेस है। डिफरेंट परसेप्शन ऑफ रियलिटीज की बात हो चुकी है। फिर एटीट्यूडल क्लैश जो है वो हो सकता है कोई पुरानी रंजिश हो, तो फिर भी कम्युनिकेशन जो है वो नहीं होती। तो इनफेक्टिव को इफेक्टिव हम इस तरह से कर सकते हैं, ये चीज़ों को समझते हुए कि जनाब ये चीज़ें मेरी स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, पूरे पर्सपेक्टिव में मैंने रह के समझना है कि अगला बंदा क्या कह रहा है, क्या मैं ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहा हूँ,
किस तरह से मैंने आगे चलना। सो ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। अब किस तरह से हम ओवरऑल कम्युनिकेशन के बैरियर्स हम कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि पीछे इतने ज्यादा हमने बैरियर्स देखे हैं, वही बेसिकली हम साथ साथ जब उनको एनालिसिस करते जाते हैं तो हमें पता चल जाता है। जैसे क्रॉस कल्चर बैरियर्स हैं, कल्चर डिफरेंट हुआ, तो अब उसको हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। ट्रेडिशंस और कस्टम्स को समझते हुए हमें पता चल जाए कि ये कल्चर की ट्रेडिशंस क्या है, इस तरह अंडरस्टैंडिंग देयर वैल्यूज। फिर इंफॉर्मेशन हर साइड की, मुझे अपनी साइड की भी इंफॉर्मेशन हो और ये अगले कल्चर में किस तरह से इसको लिया जाएगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से क्रॉस कल्चर कुछ बैरियर्स हम ब्रेक कर सकते हैं। इस तरह सोशियो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स जो है अगले बंदे को अटेंशन दे के हम कर सकते हैं कि जनाब मैं आपसे बड़ा सिंपथेटिक व्यू है मेरा, मैं आपकी बात सुनना चाह रहा हूँ और आप जरा बात करें। 50% वैसे ही वो बात ही बेहतरीन कर रहा होगा कि जनाब ये है और मैं भी सुन रहा हूँ, मोटिवेट अगला बंदा फील करता है ना मोटिवेशन। तो ये फिजियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं, इस तरह से काम हो सकता है। पर्सनल बैरियर्स अपने हैं कि फॉर एग्जांपल कोई मैंने कहीं भी जाके प्रेजेंटेशन देनी है या कोई इस तरह की कम्युनिकेशन होनी है, सो मुझे चाहिए, मुझे पता हो कि ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, ये मेरी वीकनेसेस हैं, मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे प्रिपेयर करना है, मैसेज मुझे प्रिपेयर करना है सबसे पहले। ये नहीं है कि मैं एक्सपर्ट हो गया वो तो खुद ही मैं बोलता जाऊँ घंटों। ये जिस दिन बात आ जाती है ना कि जनाब मैं बड़ा एक्सपर्ट और मुझे तो बड़ा ही पता है, तो समझे वो वीक पॉइंट है, वो वीक टाइम है आपका। कम से कम मेरे साथ ऐसे ही होता है। जब हम समझते हैं कि जनाब बड़ा फन्ने खा हो गए तो उस वक्त प्रॉब्लम है। सो हमें चाहिए कि अगर कोई मसला है तो प्रिपेयर होके जाए और प्रैक्टिस उसकी करें। इसी तरह से इमोशनल कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट। आम तौर पे ये चीज़ वही है जो हमारे पूरे कल्चर और सोसाइटी में बताई नहीं जाती, दैट इज इमोशनल कंट्रोल। जैसे ही मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो इमोशनल कोशेंट मेरा कितना है, EQ जिसको हम कहते हैं। तो एक IQ है, एक EQ है। सो मैं बात करते हुए जब नेगोशिएशन होनी है तो मुझे अगले बंदे को समझना चाहिए, उसकी नीड्स को समझना चाहिए, फिर होगी नेगोशिएशन, फिर मैं कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। सो इमोशनल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। टू वे कम्युनिकेशन, चाहे वो नेगोशिएशन है, चाहे मैं किसी को लीड कर रहा हूँ, चाहे मैं टीम के अंदर वर्क कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। आमतौर पे IQ के बारे में बड़ा बताया जाता है जी, IQ इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस एंड दैट। सो IQ जो है वो मेरे हिसाब से आम चीज है। इंटेलिजेंट, हर बंदा इंटेलिजेंट होता है। मसला किधर आता है, EQ पे कितना, कोई इमोशनल इंटेलिजेंस कितना है, दूसरे की जो जज्बात को कितना समझ रहा है, एहसासात को कितना समझ रहा है, ये है बेसिकली EQ पे, ये कितना आपका हाई लेवल पे। तो पर्सनल बैरियर्स जो है वो बेसिकली इससे कम हो जाएंगे। फिर फिजिकल बैरियर्स, जैसे ये अपने पहले बात की, सीटिंग अरेंजमेंट क्लासरूम की बेहतर करके, और फिर विजिबिलिटी ऑडिबिलिटी को किस तरह से हमने बढ़ाना है। इसी तरह से विजुअल या ओरल अगर डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, कोई आ जा रहे हैं बंदे, तो वो किस तरह से उस जगह पे लेक्चर हो। और रिडक्शन इन नॉइस लेवल किस तरह से हम कर सकते हैं, प्रॉपर मीडिया सिलेक्शन करके। समटाइम्स जनाब वो माइक जो होता है उसके अंदर से ही बड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं, वो शू शू शां शां की आवाज़ें आ रही होती हैं। सो उसकी सिलेक्शन है। फिर जो कमरा होता है समटाइम्स उस पर पोजिशन नहीं ठीक होती इसकी, तो वो रिबाउंड होके आ रही होती। तो ये चीज़ें जब हम लेक्चर में जा रहे हो तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगर बड़ा हॉल है जिसमें अगर हमने कम्युनिकेट करना, छोटा है तो चलें, फिर तो इतना मीडिया सिलेक्शन की नहीं है। फिर सिमेंटिक बैरियर्स हैं कि लैंग्वेज के अल्फाज के अपने बैरियर्स उनकी वजह से हैं। सिंबल्स एंड चार्ट्स जो हैं वो उससे हम मदद ले सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज यूज करके हम आसानी से अपना मतलब समझा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जनाब बहुत ही कोई कॉम्प्लेक्स किस्म की हम यूज कर रहे हो लैंग्वेज की, जनाब बड़ा ही जबरदस्त लैंग्वेज है जी। सादा, जितनी सादा होगी उतनी ज्यादा अगले बंदे को समझ आएगी, क्योंकि हम उसके साथ कम्युनिकेट का, हम अपनी नहीं बता रहे होते कि मेरे पास इतना नॉलेज है, हम तो अपनी चीज ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं कि इसको समझ आ जाए।
सो इसके लिए सादगी बड़ी ज़रूरी है और मैसेज का पता भी होना चाहिए कि मैं क्या मैसेज दे रहा हूँ। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशनल जो बैरियर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को सिंपल रख के हम कर सकते हैं। समटाइम्स ऐसा मुमकिन नहीं होता, ओवरलोड हो जाती हैं चीज़ें, मुझे एक काम मिला फिर अगला काम मिल गया फिर उससे अगला काम मिल गया। सो कम से कम ये तो हो कि मुझे अगर एक काम हुआ तो कंप्लीट हुआ है तो फिर अगला काम मिला, यानी फ्लेक्सिबिलिटी इन मीटिंग टारगेट्स अगर हम कर दें तो फिर भी है ना कि अगर मैं एक फाइल से हटाऊं तो दूसरी आ गई है, दूसरी से हटाऊं तीसरी, तो फ्लेक्सिबिलिटी कोई नहीं है, पता नहीं अभी सारे काम भी करते हैं। तो उस वजह से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है कम्युनिकेशन बैरियर्स आ जाते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं ये चीजें करते हैं। सो दिस वाज द ओवरऑल पिक्चर ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर एंड हाउ टू ओवरकम दैट। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, आपने बड़े ध्यान से सुना। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर मोर देन वेलकम। थैंक यू सर, अच्छा था सर। प्लीज एक स्लाइड अपनी सेंडर और रिसीवर का जो ये बैकग्राउंड नॉइस इतना ज्यादा है कि चीजें जो है वो कोई नहीं समझ आई। सेंडर एंड रिसीवर का, अच्छा ये जितनी भी इस तरह की चीजें हैं ये आपको जो है इसकी कॉपी मिल जाएगी, सॉफ्ट कॉपी, वो हम भेज देंगे PHEC को। सो आपको ये मिल जाएंगी। कुछ चीजें अगर इस तरह से हैं तो कोई मसला नहीं है, वो आपको मिल जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड एक्सीलेंट लेक्चर। चलिए थैंक यू। क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन है वो आपने बताया था कि एक शख्स जो है वो 150 वर्ड्स बोल सकता है, तो वो सुन कितने सकता है, वो कितने आपने बताया था नंबर? हाँ, ये इस तरह के साइंटिफिकली 150 to 175 तक हम बोल सकते हैं 1 मिनट में, पर मिनट जो हमारी स्पीड है। अगर ज्यादा हो जाए तो 200 तक भी हो सकता है पहुंच जाए, लेकिन 150 to 175। लेकिन प्रोसेस जो स्पीड है दिमाग की वो 600 है, यानी इतनी ज्यादा, दिमाग बड़ी चीज है, सो वो ज्यादा प्रोसेस कर सकता है चीजें। तो क्या होता है कि बोलते हुए चीजें कम आ रही होती हैं तो टाइम बच रहा होता है, तो दिमाग बाकी काम शुरू कर देता है जो भी वो कर रहा है, तो इसलिए वो कनेक्शन डेवलप नहीं हो पाता और जो है ना ध्यान कहीं और जाना शुरू हो जाता है। यानी बोलते हुए फॉर एग्जांपल कुछ और छोटा सा भी मसला आ गया तो दिमाग ने उसको ठीक करना शुरू कर देना है कि जनाब आपका ये फलां चीज दर्द हो रही है, या ये एक कोई ऐसा क्यों है जो आ गया, उसको आप ठीक करें पहले। सो दिमाग कहीं और चला जाता है। सो 150 to 175 एंड 600, ये लिटरेचर के अंदर ये दो नंबर्स जो हैं वो मुझे मिले हैं, जो मैंने डिस्कस किए हैं, शेयर किए हैं। और सर मैंने पूछना था कि सुनने में, तो आपने कहा ना कि बोल सकता है 150 175, तो सुनने में आपने कहा था कि एक पर्सन कितना सकता है? ये सुन तो जारी बात है, वो जो 150 आ रहे हैं वो 600 वर्ड्स जो है ना, सुन तो हो सकता है बहुत ज्यादा जाए, ये कान है ना, सो ये तो ओपन है, इसमें तो हो सकता है कई वर्ड्स आ रहे हो बैकग्राउंड में, कहीं हम खड़े हैं तो पता नहीं कितने कितने आ रहे हो। सो प्रोसेस है ना, दिमाग ने कितना प्रोसेस करना, हो सकता है कि 600 से ज्यादा हो, वो नंबर मेरे ज़हन में नहीं है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि कितना है, ये है कि कितना कनेक्शन कितना हुआ है एक रिसीविंग एंड पे और फिर प्रोसेसिंग कितनी हुई है। सो प्रोसेसिंग जो है वो 600 जो है वो कर सकता है, हो सकता है 600 से ज्यादा वर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल जा सकते हैं, वो बंदे बोल रहे हो पता नहीं इतने ज्यादा हो तो हजारों की तादाद में हम सुन सकते होंगे, हेयरिंग कर रहे होंगे, वी कैन हियर, आई डोंट नो हाउ मेनी वर्ड्स पर मिनट बट मैनी वर्ड्स। लेकिन प्रोसेस कितना हो रहा है, जो मीनिंगफुल प्रोसेस समझने के जिसको दिमाग अंडरस्टैंड कर रहा है वो 600 वर्ड्स है। आई थिंक नो मोर क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू PHEC।